So there have been questions which have been asked on ranking. Basically, let's have a look at the concepts. So let us presume that there are 10 people who are standing in this row, and let me just identify two persons here, A and B. Now this we know is the left end, and this shall be the right end of this row. Now if I just number these persons from left to right, okay, so the numbers would become first from left, this person, L stands for left end, second from left, third from left, fourth from left, fifth from left, sixth from left, seventh from left, eighth from left, ninth from left, and 10th from left. Now similarly, if I have to mark their positions from the right hand side, then this person's rank will be first from right, second from right, third from right, fourth from right, fifth from right, sixth from right, seventh from right, eighth from right, ninth from right, and 10th from right. Now let us make some observations. Now let us have a look at this person here, A. A's rank from the left is 3 and from the right is 8. And 3 plus 8 happens to be 11, which is one more than the total number of persons. Total number of persons in this row are 10. Okay. Now why is it that we are getting one more? Is because A is counted twice, once from the left end and once from the right end, and that is why the number has increased by 1. Now similarly, if you look at the positions of B from either ends, B's positions are 7 from left and 4 from right, and if we take the sum of this also comes out to be 11, which is one more than the total number of persons. Correct? So there are 2-3 things that we learn here. One is, for a person whose positions from left and right are given to us, position from left plus position from right will give us one more than the total number of persons standing in that row or in that group. Okay. Now the ends could be anything, left and right, front and back, top and bottom, anything for that matter. Also, we get to know that the sum of the positions of the two persons, sum of the positions of any two persons standing in this row, sum of the positions of any two persons who are standing in this row will always be equal. Like you found out for A, it is 3 left and 8 right. ठीक है, मतलब आई एम नॉट सपोज टू यूज द माइक, जरूरत नहीं है, उतार ही देता हूं फिर इसको। आ ही नहीं रही, आवाज ही नहीं आ रही, आ रही क्या? आ रही है? All right, so what we find here is that the positions of any person, if it is given from left and right, whatever is the sum, it will be the same for any two persons in this row. Okay. Now next point here is, how many persons are there between A and B? Well, it is quite visible here, I believe. From this, you will be able to find out that actually there are 3 persons between A and B. From this diagram, it is evident. But what if it is not known to us? Then what do we do? Well, if you need to find out how many persons are there between A and B, how many persons are there between A and B, then persons, let us say number of persons between A and B will be equal to higher position
minus lower position between A and B minus 1. Now, important thing here is that the positions of both A and B should be taken from the same end. Please remember this. This is important here. Alright, so the positions should be taken from same end. So I hope that this is understood. If it is understood, please kindly reply that if you have understood this. Alright, so these are two things that you need to take care of. L plus R is equal to T plus 1 and higher position minus lower position minus 1. If at all, you need to find out the number of persons between A and B. Alright, let's move ahead. The same thing is written here, as you can see. Okay, this is what I am talking about. Rest, you can read and you can, just know about it. I've already explained it. And also, the concept of finding out the number of persons standing between two persons. In a row of persons in the rank of Mr. A from left end is X. And the rank of Mr. B also from the left end is Y. Then the total number of persons between A and B is higher rank minus lower rank minus 1. That is X minus Y minus 1, where X is greater than Y. So kindly note this, very important. And that is the ranks of both A and B must be known from the same end. Very important. Please know this. So this can be found out only if the positions of the two persons is known from the same end. Alright, let's have a look at some questions here. In a row of people, Ramesh is ranked 12th from the top and 15th from the bottom. अब ये देखिए यहाँ पर टॉप से पोजीशन दे रखी है, यहाँ पर बॉटम से दे रखी है, मतलब दो डिफरेंट एंड से दे रखी है पोजीशन. So you will employ the formula L plus R is equal to T plus 1. Now you would say, sir, why are we using L and R here? It doesn't matter. Take any two ends, be it top and bottom, be it front or back. It doesn't matter. So it is nothing but 12 plus 15, which is equal to T plus 1. So T here is 27 minus 1, and that is 26. So there are 26 persons who are there in this row. So I hope this is understood. So the person who has written, explain once again, sir. It seems you have joined late, is it? I have clearly explained in the previous slide, if you have missed. And that is the positions from the two ends, if it is known for a person. If a person's position is given from left end and the same person's position is given from right end, add them. Add the two positions. It will be one more than the total. So three variables only. Position from left, position from right, and the total number of persons. That's it. So similarly, solve this question. Let us do this. Come on, hurry up. Well, I will try to take your doubts if at all it is possible. But you can't say that after this class. It should be pre-planned. We can plan for tomorrow or day after, but definitely not on the same day, because for today already I have my agenda, which is there. Come on, hurry up. And you people, some of you are not writing your names. Okay, correct, Shivam. Now in a row of 40 persons, so already total number of persons is given to you. Manoj is ranked 14 from the left end. What will be his rank from the right end?
So you have the formula n plus r is equal to t plus 1. Already know that there are 40 persons in this row. And from the left, the rank is given to be 14. From right, you have to find out. So it is 41 minus 14, that is 27. So choice C here is the correct answer as given by most of you, I would say. Well done, well done. Yes, yes. Correct. Very good. Kindly have a look at this question, please. Chalo, chalo, shabash. Hurry up. बहुत आसान है भाई. टोटल तो ऑलरेडी पता है 50 है. And A is 10 ranks ahead of B. Position of B is 27th from the bottom. तो ये हुआ B 27th from the bottom. And A is 10 ranks ahead of B. Ahead of B मतलब top के towards हुआ ना. Top के towards हुआ ना. Correct. So this is where A is 10 ranks ahead मतलब ऊपर. So this should be 37 from the bottom. Okay. Then what will be A's rank from the top? अब फिर वही बात है, कुछ भी लिख दो भाई. Top plus bottom is equal to total plus 1. So rank from bottom is already known. It is 37 for A. Total number of students already given 50. So from the top is what you need to find out. So top here is nothing but it is 51 minus 37. So it should be a 14. So choice D here should be the correct answer. No, you kindly refresh. I don't think anyone else has a problem here. Well done, well done. Shabashiyan, shabashiyan. Chalo ji. So let's have a look at the fourth question here. ये तो मैंने ऑलरेडी कराया था आपको. A's rank from the left is 10 and B's rank from the left only is 25. So how many persons are there between A and B? Well, higher rank minus lower rank minus 1. So it is 15 minus 1, 14 आना चाहिए. बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इस पे. करेक्ट करेक्ट शाबाश. चलो ये ट्राई करो जल्दी जल्दी. So in a class of students, A's rank from the bottom is 15 and B's rank also is given to you from the bottom. That means both persons' ranks are known from the same end, which is the basic requirement to find out the number of persons between them. Okay. So
What do you have? 22 higher rank minus 15 minus 1. So it is 7 minus 1. 6 आंसर आएगा. Yes. You got this. Shabash. Correct, Karan. Correct, Shivam. Correct, Chanmoy. Chamroy. Correct, Vanshika. रोहित 5Q क्या होता है? Q वाली चॉइस तो मैंने अभी दी नहीं यार रोहित. करेक्ट सुरभि. करेक्ट महक. ऑलराइट. चलो अगला क्वेश्चन पकड़ो. ये यहां पर 3 क्वेश्चंस हैं. पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. एनीहाउ आई विल टेक इट अप. चलो जी, तो इसके लिए कोशिश करते हैं यहां पे. आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम. तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन पे. ओके, now this is left end and this is right end. So what is given in a row of some people, so we don't know how many people are there in this row. A is ranked 10th from the left end. आइए बनाइए. A is ranked 10th from the left end and B is ranked 15th from the right end. आइए जी ये भी बनाइए. B is ranked 15th from the right end. आगे दिया है if A and B interchange their positions, then A's rank from the left end becomes 35th. तो मान लो A और B अदला बदली करते हैं अपनी जगहों की. If they interchange their positions, that means this is where A will come, this is where will be B. So in that case, A's rank now becomes 35th from left. In total, how many persons are there in this row? अब बेटा आपको यहां पर एक चीज तो समझनी पड़ेगी और वो ये है कि look at this place. Initially, B was there and B's rank was 15 from right. Now, A is sitting here and accordingly, A's rank is 35th from left. अब ये थोड़ा ना कि if A is sitting here, then his rank will change from 15 from right. It is not so. So it doesn't matter whosoever is the person who's sitting here, whosoever is the person who's sitting here, we know that from right his position will be 15 and from left his position will be 35. Clear? So simply to find out the total number of persons, we have L plus R is equal to T plus R, T plus 1. So left से position पता ही है 35 है, right से position also we know is 15. All right, that is equal to total plus 1. So 35 plus 15 is already known to 1 minute here.
So this is already 50 and 50 minus 1. Total number of persons standing in this row should be 49. Now having found that, what is B's rank from the right hand? Ab B kahan par hai? Now B is sitting here. So B's rank from the right hand, if you need to find out, let us say, फिर लगाओ ये फॉर्मूला, L plus R is equal to T plus 1. सारा गेम इसी का है. Okay. So B is currently here. Position is 10 from left. Okay, and you need to find out B's rank from the right end. So R is to be found out. Total number of persons now you know is 49. इधर लगा दो. So R here is 49 plus 150 minus 10 from left. So it should be 40 from right. Now how many persons are there between A and B? तो एक काम करो यार. You take the positions of A and B from the same end. From the same end. Correct? So this is 35 from left and this is 10 from left. Now here whosoever is sitting, it is B now. Isn't it so? ये तो initial positions थी. So higher rank minus lower rank minus 1. So it is 24. All clear? Give me an indication. नहीं सुरभि 7 का भी B है ना. नहीं वंशिका बेटा 7 का D कर दिया ना आपने. चामराय करेक्ट. Yes, Shivam, absolutely correct. Very good. सारे भी हैं भाई. 6, 7, 8 तीनों भी हैं. Please ask me if you have a doubt. Very fast. All clear. All right. Thank you, Shivam. Questions from previous year papers. Let's have a look at these. 2020 का question है, देख लो जरा. Try to solve it yourself. Come on. चलो भाई ये तो हो जाना चाहिए था अभी तक. But let me just have a look here. चले देखिए यहां पर देखिए. A is 16th from left end in a row of boys and B is 18th from the right end. चले जी. तो let us make a line here, which represents a row. This is the left end and this shall be the right end. तो यहां दिया गया है A is 16th from the left end. लीजिए. This is where we have A, 16 from the left end. And V is 18th from the right end. लीजिए. ये दिया गया है V, who's 18th from the right end.
Now G is 11th from A towards the right and third from V towards the right hand. अब 11th from A तो पता नहीं कहां पर आएगा, बट थर्ड फ्रॉम V टुवर्ड्स द राइट हैंड ये जल्दी निकाला जा सकता है ना. सो लेट अस सी G कहां आएगा. देखो ये 1, ये 2 और ये आ गया थर्ड बंदा G. So here G is third to the right of V. ये तो हो गया करेक्ट. Now it is also known that G here is 11th to the right of A. करेक्ट. 11th to the right of A. तो भाई तीन बंदे तो यही हो गए V1 and 2. करेक्ट. तो 11 to the right of A would clearly mean that position of G from the left end, मतलब 16 from left plus another 11. इसी तरफ जाएंगे ना. So it should be 27 from left. 16 तक तो A है, उसके आगे 11 और जाना है towards the right hand. तो 16 और 11 27th from left होना चाहिए G. Now also G here is third to the right of V. तो third to the right of V means कि ये G जो है ये यहां से कितना आ जाएगा 15th from the right. तीन पीछे चले जाओ ना यार. 18 minus 3. अगर V राइट से 18 है और G is 3 places to the right of V, तो ये हो गया 17, ये हो गया 16 और G हो जाएगा 15. You can count also. Now you know the positions of G from both the ends. Right से 15, left से 27. So we will make use of our grand formula L plus R is equal to T plus 1. ठीक है. So this shall become 27 from left plus 15 from right is equal to total plus 1. So total here is 27 plus 15, 42 minus 1. There should be 41 students in the class. अरे वाह, बहुत बढ़िया. श्वेता, नहीं करण, यस रोहित, नो चामरॉय, यस शिवम. अब देखो भाई, जस्ट फाइंड आउट वेयर ऑल यू पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड मेक करेक्शंस टू योर प्रोसीजर, योर मेथड एंड योर लर्निंग्स. करो ना. CSAT 2021 का एक क्वेश्चन है, देखिए. And this is data sufficiency kind of a question. Try to solve it yourself first. पहले खुद करो, खुद करो, खुद करो, आराम से हो जाएगा. कोशिश करो, इजी है. कम ऑन, हरी अप.
चले जी, I think you should have solved by now. Hurry up, hurry up. 30 seconds more. Now, first, you should always read the question. What is Seema's rank from the top in a class of 40 students? 40 students की class है जी. So, total is already given to us. So, we know from here to here, we have a total of 40 students. From here to here, it's a class of 40 students. What is Seema's rank from the top? Now, we don't know. So, obviously, to find out Seema's rank from the top, we need additional information which is provided in statement 1, statement 2, all right? Now, which out of these will be sufficient to get us the rank of Seema from top? Let's find out. Now, statement 1 says, ये statement 1 के लिए है, ये statement 2 के लिए है. Statement 1 says, Priya is 4 ranks below Seema. अब अपने को तो पता ही नहीं, we don't know. Where is Priya? All right? And is 31st from the bottom. So, Priya is ranked 31st from the bottom. So, just make that. All right, let us say this is Priya and she is 31st from the bottom. Now, read the initial part. Priya is 4 ranks below. So, if Priya is 4 ranks below Seema, then Seema must be 4 ranks above Priya. सही बात है ना? So, this is Seema. All right, and she must be 4 ranks above. So, which means that Seema's rank from the bottom should be 35. So, now can we find out Seema's rank from the top? You don't need to find. Don't find out Seema's rank from the top is 6. No need. The whole point is you look at the number of variables that we have. Okay. So, in the formula L plus R is equal to T plus 1, we have 3 variables, 1, 2, 3. If 2 are known, obviously you will be able to find out the third one. So, we can find out. So, that means statement 1 alone is sufficient to get us the answer. Okay. But if we go to the choices, look at the choices. Look at the choices. Choice A says statement 1 alone is not sufficient. So, which choice A cannot be the answer, obviously, because statement 1 alone is sufficient. Okay. So, now let us figure out statement 2 alone. What does it say? Ina is 2 ranks above Seema. We don't know position of Seema as yet. We are not supposed to carry over data from first statement to second statement. When you view the second statement, view it independent of the first statement. And Ina is 37th from the bottom. Chalo ji, let's do this. So, Ina here is 37th from the bottom. अब पहला पार्ट पढ़ो स्टेटमेंट का. Ina is 2 ranks above Seema. If Ina is 2 ranks above Seema, then Seema must be 2 ranks below Ina. है ना? तो 2 rank नीचे आओ भाई. So 2 ranks down. This is where we have Seema. So her rank again from the bottom is 35. यहाँ भी 35 था, यहाँ भी 35 है. So can we find out position of Seema from the top? Obviously, we have already found out. It is 6. So now B says statement 2 alone is not sufficient. Arey, statement 2 alone is also sufficient. अकेले. Now look at C. Choices ध्यान से पढ़कर फिर उसके बाद में मार्क कीजिएगा. Either S1 alone or S2 alone is sufficient to answer the question. बिल्कुल सही. आप S1 अकेले S1 से आप इंफॉर्मेशन ले लें और सॉल्व कर लें, या फिर अकेले S2 से इंफॉर्मेशन ले लें और सॉल्व कर लें. दोनों सेम है. So choice C here should be the correct answer. So I hope this is very clear to you. ठीक है ना? तो ये रैंकिंग था अभी आपके लिए. I hope this is clear. Now you can easily, because you have learned the concepts,
अरे वाह, लोगों ने पहले ही आंसर कर दिया यार मेरे बताने से, शाबाश, वेरी गुड. शिवम, रोहित, वंशिका, चामरॉय, रैना, all good. So that was ranking, and you can just go ahead and keep on solving questions which are based on this topic now. Let me take up another topic, and that is cubes and cuboids. It so happened that last time a question was asked on cubes and cuboids was one question, and that was in 2018. After 2018, since such a long time, I believe that there was no question asked. Or maybe it was in 20 or 21. But it was, after a very long time that questions were asked on cubes and cuboids, and that too, 2 questions were asked. Okay, in 2023 examination. So let's learn the fundamentals, first of all, okay, which are very important and very clear. Cube you already know, right? I mean, it's like a dice. Dice, with which you play Monopoly, Snakes and Ladder, Ludo, and so on. Hannah? So this is how it looks like. So a cube essentially has 6 faces. And these are 3 pairs of opposite faces. Which are those? Top and bottom, right and left, front and back. Alright, and please remember that in a cube there are 6 faces and each face is a square. Each face is a square. So essential points that you need to remember in a cube are these. A cube has 6 faces, 8 corners and 12 edges. अब edges क्या होती है? ये देखो ना. All these black lines that you see are edges. किनारे बोलते हैं इनको, है ना? तो basically edges are these lines, as you can see here, where 2 faces meet. यहाँ पर on this line, front and right face are meeting, correct? And what are corners? Well, corners are that point where 3 edges meet, or let us say 3 faces meet. Okay. Now this data that you have here, this is very important data, because based on these only we will come out with some formulas which are really required to solve questions. तो याद रखिएगा, a cube has 6 faces, 8 corners and 12 edges for sure. Okay, so alright, so let us take a cube here. I'm going to make one cut to this cube. ऐसे. Now this is vertically perpendicular. Okay. So how many pieces do we get? देखो जरा. 1, 2, है ना? So you get 2 pieces. Now let us make 2 cuts to a cube. 1, 2. दोनों cuts same direction में, vertically perpendicular. Now how many pieces do we get? 3 pieces. See, 1, 2 और 3. 3 पीस मिलेंगे ना. अब ऐसे ही मान लीजिए we are making 3 cuts to a cube. 1, 2 and 3. Correct है? Now how many pieces do we get? We have 4 pieces. है कि नहीं है? देखो 1, 2, 3 and 4. सही है ना? Correct?
तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? इससे क्या लर्न हुआ? वेल, दिस इज व्हाट वी गेट इन अ क्यूब if n cuts are made in the same direction, है ना? Same direction means parallel to same pair of faces, then the number of pieces obtained will be one more than the number of cuts, n plus 1. है कि नहीं है? ये देखो ना, one cut 2 pieces, 1 plus 1 2, 2 cuts 3 pieces, 2 plus 1 3, 3 cuts 4 pieces, 3 plus 1 4. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज सारे कट सेम डायरेक्शन में देती है ना ऐसे. Whereas if I change the direction, then what happens? I'm making 2 cuts here. One is vertically perpendicular and the other is horizontal. Now how many pieces do we get? Batao. 1, 2, 3, 4 obviously. So this time we get 4 pieces. Let us say if I make 3 cuts. 3 cuts मैं ऐसे लगा रहा हूं, तीनों different directions में. All 3 cuts made in different directions. First, one vertically perpendicular. Second, horizontal. Third, vertically parallel. तो 3 directions है, vertically perpendicular, horizontal and vertically parallel. अब कितने पीस मिलेंगे भाई? ये 1 2 3 4 तो टॉप पे दिख रहे हैं और 2 रोज हैं, है ना? तो 4 into 2 अपने को कितना मिल गया? 8. So we'll get 8 pieces. अरे भाई ये क्या हो गया? 2 cuts 3 pieces, यहां पर 2 cuts 4 pieces. टुकड़ों की संख्या बढ़ गई. The number of pieces have increased. Here also you see 3 cuts 4 pieces and here 3 cuts 8 pieces. हाँ? तो यहां पर भी टुकड़ों की संख्या बढ़ गई. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो 3 cuts दिए गए थे, the 3 cuts which were given or made in this particular diagram or fashion were actually parallel to the same pair of faces or they were made in the same direction, that is vertically perpendicular. तीनों same direction में. तो same direction में देंगे तो number of pieces आपको ये ज्यादा मिलेंगे. तो चलिए जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं. If we make 10 cuts in the same direction, what would be the number of pieces obtained? It is 10 plus 1, एक बढ़ जाएगा, है ना? 11 pieces मिलेंगे. If I make 100 cuts in the same direction, बिल्कुल, है ना? Vertically perpendicular या फिर सिर्फ horizontally में अगर 100 cuts मार देता हूं, what would be the number of pieces obtained? Obviously, 100 plus 1, 101. Why? All the cuts have been made in the same direction or parallel to the same pair of faces, right? Parantu, if at all we change the directions and distribute the number of cuts as equally as possible in 3 different directions, in that case, the number of pieces produced would be maximum. अर्थात कि अगर मान लेते हैं कि आपने 2 कट्स दिए यहां पर और दोनों कट्स अलग अलग डायरेक्शन में दे दिए, you made these 2 cuts in different directions. Which ones? Vertically perpendicular एक and horizontal दूसरा. Okay, then you get maximum 4 pieces. You have 3 cuts and you make these 3 cuts in 3 different directions. One vertically perpendicular, right? Second horizontal and third vertically parallel. So in such a case, the number of pieces produced is 8. All right, which means what? Which means that 8 is the maximum number of pieces that can be produced with 3 cuts. All right, so that is why टुकड़ों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि कट्स जो हैं, कटाव जो हैं, उन्हें 3 अलग अलग डायरेक्शंस में जितना हो सके उतना बराबर बराबर बांट दिया गया. So that's exactly what you need to learn here. In order to obtain maximum number of pieces,
the number of cuts should be distributed as equally as possible in 3 different directions. अब अपने पास में 3 cuts थे, तो 3 is a number which is divisible by 3 anyhow. Okay, so that is why 3 cuts were distributed equally in 3 different directions as 1 cut in each direction. अब ऐसे हमारे पास में अगर 6 cuts होते, 6 cuts, how will you distribute 6 cuts in 3 different directions? भाई 6 cuts अगर सेम डायरेक्शन में लगा दिया तो कितने पीसेस मिलेंगे? 7. लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम पीसेस चाहिए तो मैं क्या करूं? 6 divided by 3, you get 2. So 2 cuts in each direction. 2 vertically perpendicular, 2 horizontal, and 2 vertically parallel. That's how it will be. ठीक है जी. सी रोहित 4 कट्स या 100 कट्स भी दे सकते हो यार, अलग अलग दिशाओं में, है ना, आड़ा तिरछा जैसे चाहो काट दो, बट दैट्स नॉट अ प्लेन विच इज डिफाइंड. As you know, there are 3 planes which are defined, right? Or 3 axes, as you know, x-axis, y-axis and z-axis, है ना. अब ऐसे देने को तो तुम किसी भी एंगल पे दे सकते हो, बहुत सारे कट्स लग जाएंगे, करेक्ट. बट यूजुअली दीज आर द स्टैंडर्ड 3 डायरेक्शंस दैट वी टेक. ठीक है ना. अब देखो ना, यहां पर मैं बात कर रहा था आपसे, लेट अस नो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट यू कैन ऑब्टेन विद 9 कट्स. अच्छा, 9 cuts if I make in the same direction, तो फिर number of pieces produced will be 1 more, that is 10, है ना. लेकिन I want maximum number of pieces, 10 से ज्यादा चाहिए. मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं पीसेस 9 cuts से? Well, you are going to divide these 9 cuts in 3 different directions. So it will be like 3 plus 3 plus 3. ठीक है ना. अब every direction you made how much? 3 cuts. So 3 cuts made in the same direction. मतलब ये वाले एज पे, मान लो ये किसी क्यूब का एज है, मेरा हाथ जो है, इस पे मैं 3 कट्स दे रहा हूं ऐसे, तो पीस कितने मिलेंगे? 4 ही मिलेंगे ना भाई, एक ज्यादा, 1 मोर. यस, बिकॉज 3 कट्स हेयर along this edge are being made in the same direction, no? Same direction, no? So whenever we make n cuts in the same direction, the number of pieces produced is 1 more, n plus 1. ठीक है जी. So everywhere the number of pieces obtained will be 1 more than the number of cuts made in that direction. So it shall be 4 into 4 into 4. 64 pieces मिलेंगे जी. So with 9 cuts, maximum 64 pieces can be obtained. With 9 cuts, maximum 64 pieces can be obtained. ठीक है जी. अब देखो ना यार, अगर 12 कट्स होगा तो ऑब्वियसली हमको क्या मिलेगा 12 कट्स में? बताओ कैसे डिवाइड करोगे 12 कट्स को 3 डिफरेंट डायरेक्शन में? 4 4 4, इंक्रीज ईच ऑफ दीज नंबर्स बाय 1, 5 into 5 into 5. So we will get 5 cube, that is 125 would be the total number of pieces that would be obtained. अब अगर 15 cuts है क्या करोगे? How would you distribute 15 cuts in 3 different directions? 5 5 5, right? Increase by 1, all right? So it will become 6 into 6 into 6. 6 का cube, that is 216. अच्छा चलो, अब ये तो 9, 12, 15, these number of cuts basically are multiples of 3, है ना. ये तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर है ना. Let us take a number which is not divisible by 3. लेते ना यार, चलो 10 लेते, चलो 10 cuts. Now first of all, how would you distribute 10 cuts? अरे यार 10 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3s are 9. What is the remainder? Remainder is 1. Now this one you will throw in any direction, है ना. भाई 10 cuts should be divided as 3 plus 3 plus 3. 9 तो ये हो गए, but there is one remainder also. So what will you do? That you will add in any direction. So it shall become 3 plus 3 plus 4. The point here is
the difference between the number of cuts made in any two directions should be kept minimum. And that is why we say that the number of cuts should be distributed in three different directions as equally as possible. जितना हो सके उतना equal. चले जी, number of pieces find out कीजिए. +1, +1, +1. So this shall be 4 into 4 into 5. So 16 into 5, we get a total of 80 pieces. Alright, so I hope this is clear to you. अच्छा, इसे अगर तुम चेंज कर देते हो, let us say 10 cuts if I distribute it as 2 cuts plus 3 cuts plus 5 cuts. That means +1 in each direction. What should I get? This shall be 3 into 4 into 6. 12 6 72, 12 6 are 72. You will get 72 pieces. Now see, 72 here is less than 80. 80 is still the highest. Worse than that, let us say, if you just divide, you make these 10 cuts only in one direction. Only in one direction. So the number of pieces produced obviously is one more in each direction, you know that. So it shall become 11 into 1 into 1. So that shall be 11 pieces. 10 cuts दोगे same direction में तो 11 pieces तो मिलेंगे भाई, है ना? अब देखो ना यार, हर जगह पे देखो, यहां पर जरा ध्यान से देखो. See, what is the difference between the number of cuts in any two directions? 10 and 0. Difference कितना है? 10 है. 10 ही maximum हो सकता था because there are 10 cuts. Difference 11 तो नहीं हो सकता. So when the difference here is the maximum between the number of cuts made in any two directions, the difference is maximum, then obviously least number of pieces is obtained. Least number of pieces, कम से कम, है ना? तो न्यूनतम संख्या, कम से कम यहां पर कितने मिलेंगे? We will get 11 pieces, 10 plus 1, as we know, because all cuts are made in the same direction. यहां पे भी देखो 2 और 5 में how much is the difference? 3 का difference है ना? But here the difference is only 1. So as the difference between the number of cuts made in any two directions keeps on increasing, the number of pieces produced keeps on falling. So if you want maximum number of pieces, what would you do? You would distribute the cuts in 3 different directions. That's what you will do. As equally as possible. As equal as possible. Keeping least difference between them. यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है ना यार, इसलिए 72 पीसेस मिल रहे हैं, कम हो गए. यहाँ डिफरेंस लीस्ट है, सिर्फ एक का डिफरेंस है 3 और 4 में. Correct? So that is why you want maximum number of pieces, that is 80. Okay, so that's exactly what I meant here. And this is what is written. In a cube, if n number of cuts are made, then in order to obtain the maximum number of pieces, the n cuts should be distributed in 3 different directions as equal as possible. As equal as possible. ठीक है जी, तो इसके बारे में बातचीत हुई हमारी. अब देखिए, अगर कहीं पर भी नंबर ऑफ पीसेस आपको दिए गए हैं 27, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 3 क्यूब, है ना? नाउ I would like to define one variable, and that is n. N is total number of pieces along each edge. हर एक एज पे जितने भी टुकड़ों की संख्या है वो n के बराबर होगी, है ना? And please know this, that in a cube, total number of pieces shall always be equal to n cube. 3 डायरेक्शंस है ना यार, तो n into n into n, n cube बन गया. That would be the total number of pieces. Please know this. So if at all it is given that a cube has been cut into 27 pieces, so you need to just find out the value of n.
So 27 is what? 3 cube. So that means n cube is 3 cube. N cube क्या होता है? Total number of pieces. So this means n is equal to 3. If total pieces, a cube is divided into 64 pieces, which is 4 cube, which is equal to n cube. So that means n की value कितनी हो गई? 4. If you are given total pieces as 125, देखो ये perfect cubes हैं, 27, 64, 125. Okay, that is nothing but 5 cube, which is equal to n cube. So this implies the value of n has to be 5. So I hope this is clear to you. And this is a must. We require the values for n so that we can, further find out how many cubes have 2 faces colored or 1 face colored kind of questions. ये देखिए. So let us say I pick up a cube, I dip it in a bucket full of red paint, so that all the 6 faces are covered with red color. After that, I have divided the cube into 27 identical pieces. तो 27 identical pieces का मतलब क्या हुआ? हाँ, हर एक एज पे 3 क्यूब्स होंगे. 3 क्यूब हो गया ना. 27 is 3 cube. So value of n is 3. And on an edge, if you want 3 pieces, obviously you require two cuts. So 2 cuts in one direction. So in 3 directions, 2 into 3, we will have 6 cuts in total. ये देखो, ये जा रहे हैं cuts. Alright. Now you have to find out those small pieces which have 3 faces colored. 3 faces colored तो भाई कहाँ मिलते हैं? ये कॉर्नर पे ही मिलेंगे भाई. ये देखो ना, ये colored है. 3 faces are colored, the other 3 faces are covered. Okay. So these are found on corner. So we may as well call them the corner cubes. और कॉर्नर कितने होते हैं भाई? हमेशा 8. So this number will remain the same. It will always be 8. It will always be 8. अच्छा, 2 faces colored कहां पर मिलेंगे? ये 2 faces colored ये रहे ना, बीच में देखो, ये है ना. So only 2 faces are visible. The other 4 faces are covered. Other 4 faces are covered. ठीक है ना. तो where are they found? They are found along an edge between 2 corner cubes. They are found along an edge between 2 corner cubes. Okay. So एक edge पर एक ऐसी क्यूब. Edges कितनी है? 12 होती है. Okay. So we will have 12 such cubes which have 2 faces colored. 1 face colored. अब ऐसे डायग्राम देखोगे तो मिल ही जाएगा. ये रहा, बीच में है. तो बड़े फेस में के ठीक बीचों बीच there is one such cube which has only 1 face colored. तो हैं कितने भाई? 6 फेसेस होते हैं ना. तो हर एक पे होगा ना यार बीच में. यहां पर भी, यहां पर भी. तो 6 फेसेस हैं तो 6 हो गया. ओके. अब देखो कितने हुए है. टोटल 27 है. 8 plus 12, 20 plus 6, ये तो 26 ही हुए आउट ऑफ 27. एक क्यूब कहां गई? एक टुकड़ा कहां गया? वेल, इट इज राइट इन द मिडल ऑफ दिस अरेंजमेंट. How many of its faces are colored? 0. Can you see that cube? No. You can't see that tukda. Alright, so no face colored or 0 face colored is going to be 1. So what will be the total number of small cubes at the edges? कहां चाहिए? Edges पे चाहिए. मतलब बीच वाले तो नहीं चाहिए ना. मतलब वो जो अंदर वाली एक थी जो हमें मिली थी 0 कलर वाली, 0 फेस कलर वाली, वो तो नहीं चाहिए ना, है ना. बड़ा सिंपल सा है भाई सवाल. इसमें करना ही क्या.
सो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स एट द एजेस, पहले तो देखो 27 हमारे पास टोटल क्यूब्स है कि नहीं है? अब इसमें हमें वन फेस वाली नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एजेस पे नहीं है ना, हमें कौन सी चाहिए? एट द एजेस। ये एजेस में थोड़ा ना, एज तो ये होती है बाहर वाली, ये है सारी, इसमें तो नहीं है ना, ये तो बीच में। तो ये 6 हमें नहीं चाहिए, बची कितनी? 21। फिर ये नो फेस कलर्ड वाली जो एक है, जो ठीक बीचों बीच है, इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे, वो भी नहीं चाहिए। तो -1 करो, कितना आ गया? 20। तो बाकी ये जो 20 बची हुई है कौन सी है? 2 फेस कलर्ड और 3 फेस कलर्ड वाली है कि नहीं है? 2 फेस कलर्ड और 3 फेस कलर्ड वाली। ऑल्टरनेटिवली ये भी कर सकते थे, 2 फेस कलर्ड कितनी है? 12 है। 3 फेस कलर्ड कितनी है? 8 है। आ गए अभी 20 आ गए। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब वहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहां पे डायग्राम बनाएंगे, सो इट इज बेटर इफ एट ऑल वी सॉल्व देम विद सम फॉर्मूलाज। ये देखो, ये फॉर्मूलाज है, ये याद कर लो। सो नंबर ऑफ पीसेस ऑन एन एज n इज नथिंग बट इट इज टोटल कट्स बाय 3 + 1। अब पीछे 6 कट्स थे, तो 6 बाय 3 कितना हुआ? 2 + 1, है ना? 3 हो गया। अगर 9 कट्स होंगे, 9 कट्स में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n इज, यार 9 है, तीनों डायरेक्शन में 3 3 जाएंगे, और नंबर ऑफ पीस कितना होगा? एक अधिक, एक ज्यादा, सो इट शुड बी 4। क्लियर है? ठीक है ना? अब ये याद करना है यार, अभी के अभी, अभी के अभी। तो क्या है ये? टोटल पीसेस मैंने आपको बता दिया था, दैट इज n³। 3 फेस कलर्ड हो, वो तो हमेशा 8 होंगे, बिकॉज दे आर फाउंड एट कॉर्नर्स एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स विल ऑलवेज बी 8। 2 फेसेस कलर्ड हो, उसके लिए फॉर्मूला है 12 इंटू n-2। याद कर लो बस, डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाना है अभी, है ना? तो सीधा इसको याद करें। सो 12 इंटू n-2, ये याद रहे कि 12 एजेस होती है ना? और ये एजेस पे मिलते हैं 2 फेसेस। 1 फेस कलर्ड कहां मिलते हैं? एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, फेस पे। तो 6 फेसेस होते हैं, देखो, है ना? हर एक फेस पे नंबर ऑफ हर एक फेस पे नंबर ऑफ 1 फेस कलर्ड क्यूब्स जो है ना, वो होंगी n-2 होल स्क्वायर। कैसे भाई? n-2 n-2, है ना? 2 एक्सेस होंगे ना उसकी, तो n-2 होल स्क्वायर हो गया, और 6 फेसेस हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 0 फेस की अगर फाइंड आउट करनी है, तो दैट इज n-2 होल क्यूब, n-2 होल क्यूब। सो प्लीज राइट डाउन एंड मेमोराइज, राइट डाउन। जल्दी से जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बस सिर्फ नोट डाउन करना है इसको। बी वेरी वेरी फास्ट, कम ऑन, हरी अप। जल्दी करो भाई। अब इसके बाद में सीधा फॉर्मूला से क्वेश्चंस बनाएंगे। वी डू नॉट रिक्वायर टू ड्रॉ अ डायग्राम, वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस मच फास्टर with the help of these formulas here. शिवम का मैसेज आ गया है, डन सर। अदर्स, विल यू प्लीज कॉरेस्पॉन्ड विद मी?
चले जी, let us know the answers to these questions. And now this time we are given 64 small cubes. So what shall be the value of n? You know that 64 is what? Huh? It is 4 cube. Huh? And these are total number of cubes. So it is equal to n cube. So this means the value of n is 4. अब n की वैल्यू मिल गई तो फॉर्मूला में लगाइए और आंसर पाइए. So all the faces of a cube are colored red and then the cube is divided into 64 small identical pieces. How many small pieces will have 3 faces colored? भाई ये तो हमेशा ही 8 होता है. 2 faces colored क्या फॉर्मूला है? 2 faces colored का क्या फॉर्मूला है? 12 into n minus 2. n तो आपने कर लिया ना, 4 है ना? तो 4 minus 2 is 2. So 12 into 2 it is equal to 24. One face colored, what is the formula? 6 into n minus 2 whole square. Okay, so 6 into n की value 4, 4 minus 2 is 2, 2 square is again 4. So 6 4s are 24. No face colored, that is n minus 2 whole cube. So n minus 2, 4 minus 2 is 2. So 2 cube, which is equal to 8. सब निकल गया, ठीक है ना? At least 2 faces colored. At least 2 का मतलब क्या होता है भाई? कम से कम 2, मतलब 2 और 2 से अधिक, 2 and more than 2. So at least 2 here shall be 2 face plus 3 face colored. 2 face निकाला आपने 24, 3 face आपने निकाला 8. So that should be 32. ऐसे ही just like that JLT. ये आपके सामने मैं डायग्राम दे रहा हूं, हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है. Still I am giving you the diagram. क्या बात है? That was fast. Very good Karan. Very good वंशिका. लेकिन गड़बड़ कर दी थोड़ी. नाइन्थ क्वेश्चन वंशिका एक बार देखो ना बेटा. 8th भी गड़बड़ हो गया. करण शाबाश, सारे करेक्ट है तेरे. वेरी गुड बेटा. बाकियों ने पोस्ट ही नहीं किया आंसर. मर्जी आपकी. चले जी आगे बढ़ते हुए. अब डायग्राम मत खेलो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन. इफ ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 6 सेंटीमीटर्स, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द बिगर क्यूब दे रखा है, is colored red and then it is cut into small cubes each of 1 centimeter, then how many pieces will? अरे सब कुछ बताएंगे भाई. First of all we need to find out the value of n. अरे n कितना होगा? come on बताओ भाई. अरे दिया तो है यार. अगर एक बड़ा क्यूब है 6 सेंटीमीटर, उसे एक सेंटीमीटर की क्यूब में डालोगे, काटोगे, तो कितनी क्यूब्स बनेंगी? ऑब्वियसली यार 6 बनेंगी ना, है ना? That's how it is going to be. Okay. So the value of n here is nothing but it is total length of the edge of large cube divided by total length of one edge of small cube. अब देखने में इतना लंबा लग रहा है, अबे कुछ भी नहीं है यार. जो बड़ा क्यूब है उसकी एज कितनी है? द मेजरमेंट ऑफ दैट एज इज 6 सेंटीमीटर्स. और छोटा क्यूब जिसमें आपको उसको काटना है, बांटना है ना, उसकी एज कितनी है? 1. सो 6 by 1, 6 ही तो आएगा यार. अच्छा चलो, 6 सेंटीमीटर की एज है, कोई बड़ी क्यूब है ना, उसको आपने 1.5 सेंटीमीटर वाली छोटी छोटी क्यूब्स में बांटना है. तो बताइए जी n की वैल्यू कितनी होगी? हाउ मेनी स्मॉल पीसेस विल बी देयर?
on an edge. How many small pieces will be there on an edge? 1.5 सेंटीमीटर वाले पूछ रहा हूं यार मैं. सीधी बात है ना, 6 सेंटीमीटर है बाय 1.5, 4 ही तो होंगे ना यार. 15 चौके 60, 15 4 जा 60, सो 1.5 4 जा 6. हाँ, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो और ध्यान से सुना करो. ये नहीं हो सकता कि क्या है क्वेश्चन एंड ऑल दैट स्टफ. तो चलो, हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ n एज 6. तो बस n की वैल्यू मिल गई. नाउ लेट हिम आस्क यू एनी क्वेश्चन. इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, है ना. ये लो. सो हाउ मेनी पीसेस विल बी देयर इन टोटल? टोटल कितने होंगे? ऑब्वियसली यार, टोटल तो फिर n क्यूब है, दैट इज 6 क्यूब. 216. 3 फेसेस कलर्ड ऑलवेज 8. उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कॉर्नर तो 8 ही होते हैं ना. 2 फेसेस कलर्ड, भाई फॉर्मूला लगाएंगे. क्या लगाएंगे? 12 इंटू n-2, है ना. तो यहां पर n की वैल्यू तो मिल चुकी है आपको, 6 है. 6 - 2 कितना हुआ? 4. सो दिस इज 12 इंटू 4, दैट इज 48. 1 फेस कलर्ड 6 इंटू n-2 होल स्क्वायर. तो 6 इंटू 4 स्क्वायर, 16 6 96. No face colored, you already know, n-2 whole cube, so that is 4 cube, which is 64. Hope this is clear यार. हाला, it's just totally dependent on the formulas. कुछ करना ही नहीं है इसमें. n is equal to 4 for 2.5 सेंटीमीटर, नहीं शिवम, for 1.5 सेंटीमीटर. लो भाई, CSAT 2017 कर लो जरा. अभी तो किया मैंने यार. परफेक्ट संजना, शाबाश. चलो चलो चलो. यस महक, करेक्ट. यस करण, करेक्ट. सिक्सटीन्थ क्वेश्चन बताओ जल्दी से भाई. हाँ हाँ, और क्या, अभी तो किया था. वेरी गुड. तो भाई ऑलरेडी दे रखा है 64 स्मॉल क्यूब्स हैं और 4 सेंटीमीटर इज बीइंग कट इनटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. तो 64 तो एनी हाउ इज 4 क्यूब, n क्यूब. सो दिस मींस n इज इक्वल टू 4. नो फेस कलर्ड. देखो इतने सारी चीजें हैं जो हमने की थी, उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, है ना. तो नो फेस कलर्ड इज 0 फेसेस, दैट इज नथिंग बट n-2 होल क्यूब. सो 4 - 2 होल क्यूब, दैट इज 2 क्यूब, विच इज इक्वल टू 8. आसान सा प्रश्न. चलो भाई ये भी करो, 2016 में भी आया था. निकल तो गया आराम से. अरे यार सिंपल सी बात है, 1/4 है, चाहे जितना मर्जी मेजर हो, है ना. एज ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इज 1/4.
द एज ऑफ द बिग क्यूब। तो मतलब चार छोटी क्यूब बनाकर मिलकर ही तो वो बड़ी क्यूब की एज बना रही है। तो इसका मतलब n कितना आ गया 4। बस सारा गेम n का है ना, सारे फॉर्मूले n में है ना। n इज इक्वल टू 4। ओनली वन फेस मांग रहा है, दैट यू नो इज 6 इंटू n माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 4 माइनस 2 कितना चल रहा है 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24। एक मिनट, इसमें लेट मी जस्ट हैव अ लुक हियर। तो एक करेक्शन करनी पड़ेगी। आ गया जी आपका CSAT 2023। This question was asked in CSAT 2023 apart from the other one. So 125 cubes are arranged in the form of a cubical block. So इसका मतलब क्या हुआ, 125 कितना होता है, देखो कितना आसान था। हाँ, दिस मीन्स n कितना हो गया, ये कितना है 5 क्यूब है ना, 5 हो गया। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, ये कौन सी होंगी क्यूब्स जो दिखाई नहीं पड़ रही, दे आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो दे आर नॉट विजिबल। नॉट विजिबल मीन्स उनके कितने फेसेस कलर्ड हो सकते हैं, 0। So he is asking you the number of zero facet cubes, which is already given by the formula n minus 2 whole cube, that is 3 cube, which shall be equal to 27। बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले में थोड़ा सा दम लगाना था, ठीक है ना। क्या दम लगाना था अभी देखते हैं। तो ऑल्सो यू सॉ दैट द लास्ट टाइम द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स वाज इन 2017। फिर 6 साल के बाद में ये CSAT वाले जागे and they gave you 2 questions on cubes, so nothing is fixed. Any number of questions can be asked on any topic, so you have to be thorough with each topic. Okay, कुछ छोड़ नहीं सकते आप कि सर ये आया नहीं, वैसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। अच्छा चलिए, मैं अब आपको एक क्यूबॉइड के बारे में बताता हूं, या अगर नंबर ऑफ कट्स आर डिफरेंट इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। तो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I'm going to make 12 cuts to a cube, but this time these will be made as 3 plus 4 plus 5. 3 cuts in one direction, 4 cuts in another direction, and 5 cuts in another direction. ठीक है, तो इसको कंपेयर करते रहो with whatever that we have learned till now. First of all, if at all I would have given 12 cuts here, है ना, then you know I would have distributed them equally. Is it or not? 4 plus 4 plus 4 in case of a cube. The number of pieces, it would have increased by 1, so it would become a 5 cube, that is 125. How? Because we have n, that is n cube, as the number of pieces in each direction is same, it is equal, so n into n हमें n cube मिला। बट यहां पर इक्वल तो नहीं होंगे ना यार, हाँ। In this direction we have made 3 cuts, so the number of pieces will be 1 more, here also 1 more, here also 1 more, so here 4, here 5, and here 6. Okay, so total number of cubes here work out to be 120. And this is where you need to learn, this is n1, this is n2, this is n3, because we have 3 different values. सही बात है ना? Okay. So then ये n minus 2 जो है यहां पर वो क्या हो जाएगा? Well, obviously this shall be n1 minus 2. Here I'll get n2 minus 2. Here I should take an n3 minus 2. कितना आ जाएगा? 4 minus 2, 2. 5 minus 2, 3. 6 minus 2, 4. 2, 3, 4. Easy है ना? Okay. So total तो we have found out. अच्छा, क्यूब में if you remember as it is,
as it is. Number of corner cubes is 8, and here also the number of corner cubes is going to be 8. ठीक है? Two-face cube, you remember what is the formula? 12 into n minus 2, है ना? So इसमें what you need to understand is this 12 here is for 3 different directions, no? 4 into n minus 2 plus 4 into n minus 2 plus 4 into n minus 2. ऐसे ही हो रहा है यार. n minus 2 is common, so 4 3 is 12 is what we will get for 3 different directions. अब यहां पर तो n सेम नहीं है ना, it is n1 n2 n3. So actually speaking, मैं derive करके बता रहा हूं बकायदा. This is 4 into n1 minus 2 plus 4 into n2 minus 2 plus 4 into n3 minus 2. थोड़ी पेशेंस रखो. So this shall be 4 into n1 minus 2 plus n2 minus 2 plus n3 minus 2. Hope this is clear. Okay. अब देखते हैं जी, यहां पर जरा लगाओ, वैल्यूज लगाओ. ये है ना n1 minus 2 n2 minus 2 n3 minus 2, है ना? वैल्यूज कितनी आएंगी बताओ? 4 into 2 plus 3 plus 4. Now if I write this as a formula तो लंबा लगेगा ना यार, ये तो छोटा ही लगेगा. So it is 4, 2 और 3 5 और 4 9. So this should work out to be 36. ये 8 है, ये 36 है. करेक्ट है ना? ऑलराइट. अच्छा, वन फेस का पता फॉर्मूला क्या था? इट वाज 6 into n minus 2 whole square. Alright. So again, this is the sum of one facet cubes in all 3 directions. You know, top पे, bottom, top पे, front पे और left right पे. So this actually is 2 into n minus 2 into n minus 2. तभी तो n minus 2 whole square बना. यहां पर भी 2 into n minus 2 n minus 2 और तीसरी डायरेक्शन में भी 2 into n minus 2 n minus 2. करेक्ट? अब वन फेस अगर मुझे यहां निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अब यहां पर तो n आर डिफरेंट, नो? तो बस यही है यार, n यहां पर n1 n2 n3 n4 n4 तो नहीं है, ये लेकर खत्म करूं. सो 2 शुड बी कॉमन हियर. इट शुड बी n1 minus 2 into n2 minus 2 plus n2 minus 2 into n3 minus 2 plus n3 minus 2 into n1 minus 2. ऐसे ही होगा ना? अब जरा यहां पर ये लंबा लग रहा है ना फॉर्मूला तुमको, वैल्यूज लगाओ. वैल्यूज लगाओगे तो हो जाएगा. So this is equal to 2 into कौन से n1 minus 2 n2 minus 2 n3 minus 2 2 3 4 है ना? चलो जल्दी जल्दी करते हैं. 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 2. Right? So 2 into 6 plus 12 plus 8. So 2 into 26. This should be 52. Clear? Okay. Now see, if you have something like zero facet is colored, है ना? तो क्यूब के केस में क्या होता था ये? n minus 2 होल क्यूब. तो क्यूबॉइड के केस में क्या बन जाएगा ये?
0 फेस, n1 minus 2 into n2 minus 2 into n3 minus 2। लगाओ भाई, वैल्यूज लगाओ। 2 3 4 है ना, तो 2 into 3 into 4, ये कितनी हो जाएंगी? 24। अब गिनो ना यार, 24 and 36 इजी टू ऐड है ना, इसलिए। तो 60, 52 and 8 60, 60 60 120 आ गया ना, 120 है ना। तो यहां पे मैं आपको एक बार बना के भी दिखाता हूं एज सच। लेट मी जस्ट मेक अ क्यूबॉइड हियर। बहुत बड़ा तो नहीं बन पाएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई। कट्स हैं 3 4 और 5, यही है ना। तो लो भैया, मैं यहां पर कट्स लगा देता हूं। और कितने हैं? 3 है और 4 है ना। यहां पे 3 कट्स देता हूं। ये क्लियर हुआ? अब देखो ना, यहां पर अगर मान लेते हैं कि मैं यहां पर रेड कलर दे रहा हूं, ऊपर नीचे ग्रीन दे रहा हूं, और दाएं बाएं ये ब्लू दे रहा हूं। नाउ व्हाट यू नीड टू लर्न हियर इज बेसिकली द फैक्ट कि फ्रॉम हेयर टू हेयर हाउ मेनी पीसेस डू यू हैव? 1 2 3 4 5 6। फ्रॉम हेयर टू हेयर how many pieces you have? See, 1 2 3 4 5, so 5 यहां आ गए। and from here to here how many pieces? 1 2 3 और 4, ये लो, हो गया काम। ठीक है। now if I ask you how many pieces have only red color on them? only red color। तो याद है ना कि वन फेस पर क्यूब के n-2 होल स्क्वायर होता था, n-2 होल स्क्वायर होता था ना। अब यार यहां पर तो n अलग अलग है ना, तो सीधा ये n-2, ये n-2 है ना। तो कितना हो गया ओनली रेड? 6 - 2 4, ठीक है। और ये कितना है? 5, तो 5 - 2 3, है ना। कितना हुआ? 12। एक फेस पे 12 है, तो पीछे वाले फेस पे भी तो होंगे, ठीक है ना। तो 12 × 2 कितने हो गए? ये 24 हो गए। ऐसे ही आप ब्लू के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। ब्लू क्या होगा? यहां 4 है, ये 6 है, तो 4 - 2 2, 6 - 2 4, राइट। सो 4 2 8, 8 2 16। ग्रीन के लिए देखो, ग्रीन के लिए कितने हैं? हाँ, ये 1 2 3 4 है, -2 2, और यहां पर कितना है? 5 है, 5 - 2 3, 3 2 6, 6 2 क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है ना, 12 हो गए ग्रीन वाले, ओनली ग्रीन वाले। अब देखें और बताएं, हाउ मेनी पीसेस हैव ओनली ग्रीन एंड ब्लू कलर ऑन देम? ओनली ग्रीन एंड ब्लू, मतलब रेड ना हो उन पे, रेड ना हो। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई ये वाले होंगे, वो ये 2 दिख रहे हैं,
ओनली ग्रीन एंड ब्लू, है ना? चाहते हो तो इसको थोड़ा सुंदर बना देता हूं। आय हाय, बस यही लगा था मुझे यहाँ पे ये वाला गंद मचने वाला है, पूरा डायग्राम उड़ गया। कोशिश तो देखो ना यार, ये वाला तो ग्रीन होगा, और ये वाले ब्लू होंगे, सीधी बात है। ये हुआ ना ओनली ग्रीन एंड ब्लू वाले, दो ही हुए ना, करेक्ट? तो कैसे निकालूं? ऐसे थोड़ा ना डायग्राम बनाते रहेंगे यार, वहां पर हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। तो ओनली ग्रीन एंड ब्लू के लिए डायमेंशंस देख लो बस कितनी है। ये कितना है? 4 है ना? इसमें 4 है। ग्रीन और ब्लू के बीच में जो कॉमन एज है उसमें टोटल पीसेस कितने हैं? 4 हैं। ऑब्वियसली उसमें से 2 कॉर्नर क्यूब्स होंगे, तो बीच वाले पकड़ोगे तो 4 - 2 2 हो गया, करेक्ट? सो 2 ऑन 1 एज, कॉमन एजेस कितनी होंगी? 4 होंगी। सो 2 4 8। सो 8 पीसेस होंगे जिन पे ओनली ग्रीन एंड ब्लू होंगे, ओनली ग्रीन एंड ब्लू। 8 पीसेस होंगे विच विल हैव ओनली ग्रीन एंड ब्लू। ये समझ में आया? अरे कंफर्मेशन दो ना यार, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताइए, ओनली रेड एंड ब्लू कितने होंगे? ओनली रेड एंड ब्लू, ऐसे पीसेस जिन पे केवल रेड और ब्लू कलर हो, ग्रीन कलर ना हो। ओनली रेड एंड ब्लू, बताओ, शाबाश। चलो चलो, शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर यू। Which part you want me to explain again, Sanjana? See, you can't say, sir, please explain again. I'm not going to explain everything. You have to be specific from which particular part you want me to explain again. Because I don't believe that you haven't understood anything. हाँ शिवम, संजना, तो तुमने तो रिप्लाई भी कर दिया, करेक्ट है तुम्हारा रिप्लाई, फिर कहां समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? बताओ, ओनली रेड एंड ब्लू कौन सा होगा भाई, बताओ? तो ब्लू तो ये रहा, ये 4 पकड़ेंगे हम, करेक्ट है? ओनली रेड पकड़ी है। इन्हीं की बात हो रही है। तो कितने हैं ये देखो ना, 1, क्या हो गया, 1, बड़े बदतमीज हो भाई, 2 3 4, चलो शायद चमक गया हो तुमको, कलर चेंज करना पड़ेगा भैया। 1 2 3 4, तो एक एज पे 4 है। कॉमन कितनी होती है? हमेशा 4 ही तो कॉमन होंगी, है ना? तो भाई 4 चौक 16 हो गए। कितना आसान है यार। चलो जी, तो हैविंग स्टडीड दिस, लेट्स हैव अ लुक एट CSAT 2023 का ये वाला क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन आए थे। प्रीवियस वन वाज डैम सिंपल बिकॉज इट वाज यूजिंग ओनली वन फॉर्मूला n - 2 होल क्यूब, है ना? ये वाला देख लो, इसमें भी बहुत आसान सी चीजें पूछी गई है सर, आपको डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट हैव अ लुक।
A cuboid of dimensions 7, 5 and 3 centimeter is painted red, green and blue color on each pair of opposite faces of dimensions 7 into 5, 5 into 3, 7 into 3. अब इतना छोटू सा डायग्राम तो बन सकता है भाई, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है ना? तो आओ बनाओ भाई, ये 7 कर देता हूं, करेक्ट, इसे थोड़ा बड़ा रख लेता हूं, 5 कर लेता हूं, इसे थोड़ा कम कर लेंगे यार, 3 कर लेंगे. So this is what 7, this is what 5 and this is what 3. क्या कह रहा है वो? अब 7 into 5, ये रहा 7 into 5, alright? So this has to be colored red, opposite faces. 5 into 3, 5 into 3 क्या बोल रहा है वो? सेकंड ग्रीन. 5 into 3 कौन सा हुआ? ऊपर वाला हुआ. ठीक है जी, तो ये ग्रीन, तो ये भी ग्रीन. और तीसरा ब्लू किस पे? 7 into 3. अब 7 into 3 कौन सा होगा बेटा? बताओ जरा. ये वाला ही हुआ. ये 3 है तो ये 7 है. ओके, सो ये क्या बन गया? आपको बोल रहा है वो ब्लू. लो जी, हो गए तीनों कलर इस्तेमाल. अब ध्यान से पढ़िए, जो इंफॉर्मेशन है बस बेसिक आपके पल्ले पड़ गया है. क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब्स ईच ऑफ साइड ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर. तो हर जगह पर n की वैल्यू क्या होगी? सेम एज द लेंथ, है ना? मतलब यहां पर n की वैल्यू 7. अरे 7 सेंटीमीटर में 1-1 सेंटीमीटर वाली 7 क्यूब ही तो बनेंगी यार. फिर यहां पर 5, यहां पर 3, करेक्ट. So which of the following statements is correct? There are exactly 15 small cubes with no paint. No paint क्या होता है भाई? याद है कुछ? जीरो फेसिट, है ना? क्या होता है वो? क्यूब में क्या होता है? n-2 होल क्यूब. यहां क्या होगा? n1-2 into n2 -2 into n3 -2. करेक्ट है जी. तो 7, 5 और 3, 7, 5 and 3. From each of these figures keep on subtracting 2. 7 - 2, 5. 5 - 2, 3. 3 - 2, 1. 5 into 3 into 1 बता रहे हैं आजकल 15 होता है. करेक्ट. So there are exactly 15 small cubes with no paint on any face. Absolutely correct. बिल्कुल सही है जी, सही जवाब. आगे देखो क्या किया उसने. There are exactly 6 small cubes with exactly 2 faces, blue और green. ब्लू ग्रीन याद है? ब्लू ग्रीन. अबे कितना है यार? ये 3 पीसेस हैं बेटा. हाँ, 3 पीसेस हैं, याद है? तो ये 3 पीसेस में यहां पर कॉर्नर में कितने पीस आएंगे? एक ही पीस आएगा ना, जिसपे सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू है. क्योंकि 3 में से 2 तो कॉर्नर क्यूब हो जाएंगे. 3 में से 2 तो कॉर्नर क्यूब हो जाएंगे. तो बीच का जिसपे ग्रीन और ब्लू हो सिर्फ एक ही फेस होगा, सॉरी एक ही क्यूब होगी. तो एक एज पे एक ऐसी क्यूब, 4 एजेस पे 4 ऐसी क्यूब. लिखा कितना है? 6 है. झूठ बोल रहा है ये इंसान. 4 होनी चाहिए, गलत हो गया. चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर. तो इसके बीच, इसके लिए थोड़ा सा भी, मैंने तो आपको ये बहुत डिटेल में कराया है. टफ से टफ क्वेश्चन भी दे देगा ना अगर, तो यू विल बी नाउ इन अ पोजीशन टू सॉल्व. और ये तो अब आप आराम से देख ही पा रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए. यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. ठीक है भाई, समझ में आ गया? सो दैट इज क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स फॉर यू. जस्ट रिवाइज करो, यू कैच अ गुड होल्ड. गुड गुड गुड. शिवम, संजना, आपने भी आंसर दे दिया. शिवम ने अपना आंसर चेंज किया. चीटिंग चीटिंग चीटिंग. पहले डी दिया था, फिर ए दे दिया. रहना का आंसर भी ठीक है. सो आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस. इंफॉर्मेशन तो दो यार. कमान कमान कमान.
I've done my bit, so now it's all on you how you practice, you know, किस तरह से प्रश्नों का हल बनाते हैं आप. ठीक है जी, तो this is how it goes. Let me introduce you to some concepts of LCM HCF. In fact, cyclicity happens to be the next topic which I want to do in continuity, so I will do it after LCM HCF. LCM HCF थोड़ा स्टार्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे. क्लियर? चलो सुबह. कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया बेटा, गलती से मिस्टेक हो गया, हो जाता है. तो चलो जी शुरुआत करें मैथ्स के साथ में. ऑलराइट, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है ना, मैथमेटिक्स. तो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, देखो क्या खतरनाक क्वेश्चन आते हैं. देखो मैं तुमको दिखाता हूं. ओ बेटा, है कि नहीं, ये करेंगे आज हम. ये देखो ऐसा पूछा गया था CSAT 2023 में. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड दिस वी विल सॉल्व टुडे ओनली. ओके, but then I would like to start with something else. Aha, divisibility rules. Yes. Let me start with this. तो जी divisibility rules में I think you people know most of the divisibility rules by the numbers, right? तो बहुत ही आसान है, आप जानते ही हैं. A number, if it is divisible by 2, last digit should be 02468. If it is to be divisible by 3, then sum of the digits should be divisible by 3. 4 के लिए divisibility rule क्या है? The number formed by the last 2 digits of the original number should be divisible by 4. 5 last digit is 0 or 5. 6 it is the number should be divisible by 2 and 3. ऐसा भी कह सकते हैं that every even number which is divisible by 3 will be divisible by 6. 7 के लिए divisibility rule होता है, लेकिन मत करना उससे कम टाइम में 7 से डिवाइड कर लोगे. ठीक है, so 7, 13, 17, 19 you do not require any divisibility rules. 8 देख लो. Number formed by the last 3 digits should be divisible by 8 or should be 3 zeros. अब इसमें मैं तुम्हें सिंपल सा फंडामेंटल बता देता हूं कि नंबर यहां पर अगर लेना है तो लास्ट कितने डिजिट्स उससे डिविजिबल हो, ये मैं आपको बताता हूं. ये 2 की पावर्स के लिए होता है. देखें जरा ध्यान से. सो 2 power 1, दैट इज इफ अ नंबर इज टू बी डिविजिबल बाय 2, then last digit should be divisible by 2 or should be a 0. 2 की power 2. If a number is to be divisible by 4, then in that case last 2 digits should be divisible by 4 or should be 2 zeros. अरे बड़ा सिंपल है यार, जितनी पावर उतने जीरो, जितनी पावर उतने जीरो, सीधी बात. और जितनी पावर उतने ही लास्ट के डिजिट्स. पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट्स, पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट्स. देखो 2 क्यूब दैट इज 8. 8 क्या होता है? 2 क्यूब पावर क्या है? 3. सो लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8 और शुड बी 3 zeros, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है. तो आप बताएंगे मुझे 2 की पावर 4 कितना होता है? 16. इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? पावर कितनी है? 4 है ना. तो क्या बन जाएगा? लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 16 और शुड बी 4 zeros. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो 2 की पावर्स के लिए तो ऐसा डायरेक्ट बन जाता है यार, कोई इश्यू ही नहीं है, बहुत आसान है ना. चलो 9 का देखो, जैसे 3 का है सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, वैसे ही 9 का है सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9. आगे देख लो भाई. 10 का तो सबको मालूम ही होना चाहिए, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी 0. करेक्ट. 11 का देख लो. उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं
दैट इज कॉल्ड को प्राइम्स। अब को प्राइम्स में प्राइम करके एक आपको वर्ड दिख रहा है, एज सच देखा जाए तो को प्राइम्स का पूरा पूरा ताल्लुक तो नहीं है प्राइम से, लेकिन प्राइम नंबर से ताल्लुक फिर भी है। कैसे होते क्या है? को प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ दोज नंबर्स whose HCF is 1। मतलब को प्राइम्स उन दो संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनका HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 हो। ऑलराइट, देखो एग्जांपल देखो 25 27। अब ये देखा जाए तो ये दोनों ही क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं भाई। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? अरे नंबर सीरीज में बात हुई थी ना यार। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो कम से कम 3 नंबर से भाग होते हैं। ठीक है, तो 25 27। अब देखो ना यार, ये 25 को खोलो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या होता है ये? 5 स्क्वायर इंटू 1। 27 क्या होता है? 1 इंटू 3 क्यूब। बताओ ना HCF क्या है? बोलो बोलो, टेल। अबे यार तुम कहां से आ गए? ये 1 ही तो है यार जो कॉमन है एज अ फैक्टर। तो HCF क्या बना? 1 बना। अब ये देखिए 17 और 23 क्या है ये? दीज आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। सो दिस इज 17 इंटू 1 और ये क्या है? 1 इंटू 23। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि HCF क्या आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी संख्या जो 17 और 23 दोनों को डिवाइड करे, वो तो 1 ही है। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर को प्राइम्स कहलाएंगे। कोई भी 2 प्राइम नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे। अब इसके अलावा देखिए 19 क्या है? 19 हो गया एक प्राइम नंबर। 44 क्या है? ये है कॉम्पोजिट नंबर। तो एक प्राइम नंबर और एक कॉम्पोजिट नंबर, ये भी आपस में कोप्राइम्स हो सकते हैं, बशर्ते ये जो कॉम्पोजिट नंबर 44 दिख रहा है ना, ये 19 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब 19 और 38 तो नहीं हो सकते ना। 19 और 38 ये कोप्राइम्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि इनका HCF क्या होगा? कौन सी होगी वो सबसे बड़ी संख्या जो 19 और 38, 19 और 38 दोनों को डिवाइड करेगी? भाई 19 ही तो होगी। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। तो ये जो नंबर है कॉम्पोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, व्हाट इज दिस? 19 इंटू 1 एंड व्हाट इज दिस? ये 4 से जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 11। तो अभी भी देख रहे हैं अगर, तो HCF 1 ही तो आ रहा है, और तो कोई संख्या नहीं है जिससे ये डिवाइड होता है। बाकी कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लो। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या है। 555 556 यही होता है ना। 555 के बाद 556, कोई भी ले लो यार। 823 824, 1028 1029, कोई भी ले लो। 978 979, सही बात है ना। कोई भी लो, 58 59, कुछ भी लो। बट any 2 consecutive numbers are always co-primes. They are always co-primes. ठीक है जी, उनका HCF 1 होता है। तो ये बताने का मकसद क्या है, अभी आपको बताता हूं मैं। एक सेकेंड, यही मैं बता देता हूं। तो मुझे बताएं कि भाई किसी भी नंबर को अगर 24 से भाग होना हो तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 24? इफ अ नंबर इज टू बी डिविजिबल बाय 24, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू चेक? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल? तो क्या करोगे? अबे क्या करोगे? हाँ,
what we are going to do here is we are going to factorize 24. पूरे फैक्टर्स लिखो ना, क्या क्या आएगा 1 into 24, HCF तो 1 है ना? और कैसे लिख सकते हो, बोलो बोलो, 2 into 12 लिख सकते हो, HCF 2 आ गया। 2 है वो नंबर जो 2 और 12 दोनों को डिवाइड करता है। 3 into 8, HCF 1 आ गया। 4 into 6, HCF 2 आ गया। 2 है वो नंबर जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करता है। सही बात है। अब देखो यार, वी कैन नॉट टेक दिस नो, ये तो नहीं ले पाएंगे हम। क्यों? When do you say a number is divisible by 24? You will not say a number is divisible by 24 if it is divisible by 1 and 24. ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार। तो अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो भाई इस पेयर को तुम लोगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ऐसे कभी कहते हो क्या? अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कोई नंबर 36 से कब डिवाइड होता है, तो आप क्या कहोगे? जब वो नंबर 36 से डिवाइड होता है तभी वो 36 से डिवाइड होता है। ये क्या मतलब हुआ भाई? मजाक चल रहा है? तो भाई अगर नंबर रिपीट हो रहा है एक पेयर में तो वो वाला तो ना लीजिए आप। तो आप इसमें कौन सा पेयर लेंगे? वेल, यू विल चूज ओनली दैट पेयर विच आर कोप्राइम्स, विच आर कोप्राइम्स। इज इट और नॉट? ध्यान से देखिए, है ना? तो ये क्या है? ये कोप्राइम्स है। तो when do you say a number is divisible by 24? If it is divisible by both 3 and 8. If it is divisible by both 3 and 8. ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम किसी के लिए भी, ठीक है ना? तो चलो भाई, ये 11 का देखो क्या होता है। The difference between the sum of the digits in even places and in odd places should be a multiple of 11 or be 0. आओ मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, आज शाबाश मेरा बच्चा। 3091, देखो देखो देखो, ऐड करो जरा, ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो नंबर्स है उनको ऐड करो। 3 plus 9 is 12, 0 plus 1 is 1। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 minus 1, 11. All right. So as 11 is a multiple of 11, 11 से डिवाइड होता है। So that is why 3091 भी 11 से डिवाइड होगा, है ना? एक और तुम्हारा देखा हुआ नंबर है, देखो 1331, क्या होता है ये? अरे 11 क्यूब होता है यार। 1 and 3 कितना बना? 4। 3 और 1 कितना बना? 4। सही है ना? है ना? तो अब देखो ना, 4 और 4, 4 minus 4, 0 आया कि नहीं आया? तो या तो डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल हो या फिर डिफरेंस 0 हो, तब हम कह सकते हैं कि वो संख्या 11 से भाग होती है। इट इज डिविजिबल बाय 11। सो आई होप दिस इज क्लियर। 12 का बताओ। अब 12 का 6 and 2 थोड़ा ना बोलोगे यार। 6 और 2 जो है उसका वो तो कोप्राइम्स नहीं है ना, उसका तो HCF कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो हमें क्या चाहिए? HCF 1 चाहिए ना, ठीक है ना? तो क्या लेंगे? 4 and 3, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 14, 2 and 7, 15, 3 and 5, ठीक है जी। और 16 अभी मैंने आपको बताया भी था। 16 क्या होता है? लास्ट 4 digits should be divisible by 16 or 4 zeros. So we are done with the divisibility rules for some of the numbers. Let's have a look at the questions that have appeared in examination. So the number something is divisible by 7. What is the value of the digit p? Now this is where you have digit p. Okay. So you should never leave questions which are based on addition, subtraction, multiplication and division. These are very basic arithmetic operators. You already know how to solve questions. Now, where must be the value of this p? Obviously, it is amongst the choices. Okay. So we will substitute the value of p
as 1, 6, 7 and 9, right? Wherever required, and find the answer. But every time we are not going to perform this calculation. It will become very lengthy. So let's do one thing. Let us just write the number here. 379812 we have P here, and then 369. ये number 3798125 3798125 P 369. Absolutely correct. Now this is to be divided by 7. Obviously, we do not require the quotient. So why should you bother, writing the quotient again and again? So keep on dividing this. That is writing the nearest multiple of 7. So let's do it. 35. So remainder 2. 9 comes down. So it goes by 28. Alright. So you have 1. 8 comes down. 18. So 14. 4. 1 comes down. 41. So goes by 31. 35. 6. 2 comes down. Goes by 56. You have a 6. 5 comes down. 65. Goes by 63. Now you're left with 2. And obviously you can't take down P here. Okay. So now your calculation part actually has reduced. Is it or not? So it would be starting with 2 here. So that means now your calculation is 7 shall divide 2, and then you have P. Okay. Followed by 369. So let us first of all substitute the value of P here using choice A. P is equal to 1. Try. So now 7 will divide, let us say, 2, and I have taken the value here as 1. 369. This I shall divide by 7. And see whether it is divisible or not. 21, so it is 0. So 3 and 6 I have to take down, so 35, so it is 1. 19. Obviously, you don't need to write 14 below this. You know that 19 is not divisible by 7. So hence choice A cannot be the answer. Okay. So let us try, and this time substitute P equal to 6. So what we get is 7, 2, and this time P is 6. And you have a 369. So goes by 21. So 53 goes by 49. So 46 goes by 42. So 49. Yes, 49 is divisible. Yes, so if the value of P is 6, then this number becomes divisible by 7. That's it. Such a simple question. Should never leave out such questions actually. CSAT 2021. Okay. Now read the question carefully and divide it into various parts. It is no use using reading when a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises of ones only. What is smallest number? No use. You'll have to read it again. Okay. So do it like this, please. When a certain number, is the number given? No. So whatever is unknown is mathematics, we write it as x. Is multiplied, so multiplied by 7, so 7. The product here is nothing but it is 7x from here. Entirely comprises means consists of ones only. That is 7x will be equal to 1, 1, 1, 1 and so on. Only ones will come in the product. So there are two ways of solving this. You can use choices, keep on multiplying them with 7. Alright, or else that x here is nothing but it is 1, 1, 1, 1 and so on, divided by 7. Let's do this. It's a simple question on division. Let's do this. So you should never leave out such questions actually. Right, so 7 ones are 7. So 41. So 7 fives are 35. So 61. Correct? So 7 eights are 56.
Look at the choices once. Oh, 158. This is the answer. But in the examination hall, at the time of examination, you want to solve the question completely because you know you are nervous. There might be something wrong. Never mind, if that is how you feel. So 51. So 7 sevens are 49. You get a 2, 21. So 21 again is divisible, goes by 3. So 15873 is what you get. The other way around is you keep on multiplying this number by 7 so that you get 11111. Okay, isn't it so? X value here is 15713 or 15723 or 15783 or 15873. Let's do it. So multiply this with 7. 7 threes are 21. 2 remains. 7 ones are 7. 2, 91. No, we want only ones. Only one we require. So multiply this by 7. 3s are 21. So 2 remainder. Carry over. 7 2s are 14 and 2, 16. No. We want only ones. So 7 3s are 21. 2 carry over. 7 8s are 56 plus 2, 58. No. So hence this is the answer. But I know you will check it. Isn't it so? So let's do it. So 7 3s are 21. 2 carry over. 7 7s are 49 plus 2, 51, 5. 7 8s are 56 plus 5, 61, 6. 7 5s are 35 plus 6, 41, 4. So 7 4s are 7 1s are 7 plus 4. There you go. You're getting this number. So either ways, choice D happens to be your answer. I hope that you have understood the question. I mean, it's a simple question actually. That's the whole point. How you perceive the question. How you perceive the question. If you think it is difficult, then obviously your mind will not be able to solve it. है ना? तो दिमाग का साथ दो, दिमाग को अपने साथ लो. है ना? Think in simplistic manner. What did I do? अरे come on रे. It is division here and multiplication there. And just by doing this much, if at all it fetches you 2.5 marks, that's lovely. Right? Okay. ये देखो. Thank you. How many 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of digits? यार क्या सच में ये CSAT वाला बंदा जो है तुमसे 5 डिजिट का प्राइम नंबर मांग रहा है? अरे यार तुम्हें 1 से 100 तक अभी प्राइम नंबर याद तो हुए नहीं है. 5 डिजिट का प्राइम नंबर कहां से कर लोगे? हाँ, सो ऑब्वियसली दिस इज अ सीमिंगली डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो एक बात तो पक्की है, यू डोंट हैव टू फॉर्म 5 डिजिट प्राइम नंबर. सो स्टॉप थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. स्टॉप थिंकिंग कि यूनिट प्लेस पे 5 नहीं होगा. स्टॉप थिंकिंग कि यूनिट प्लेस पे 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा. दैट मीन्स यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फॉर्म प्राइम नंबर. कैसे बना लोगे यार 5 डिजिट का प्राइम नंबर? नहीं बन सकता है तो कोशिश ही क्यों कर रहे हो? यू आर वेस्टिंग योर टाइम. तो भैया मेरी बात सुनो, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे? ये कैसे पता करोगे? यू विल डिवाइड द नंबर विद प्राइम फैक्टर्स. चलो एक काम करते हैं, इसे छोड़ो, इसे छोड़ दो, चलो कुछ सीखते हैं. 127 है ना? क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं पता. ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आई विल चेक फॉर डिविजिबिलिटी विद नंबर्स. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ऑड नंबर है. तो प्राइम नंबर 2 से तो मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि 2 को छोड़कर सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड होते हैं. करेक्ट? सो द होल पॉइंट हियर इज आई विल चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 3. 5 तो हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता. ओके, एंड देन बाय 7, 11, 13, दैट्स इट, दैट वुड सफाइस. क्योंकि 127 के पास में जो स्क्वायर है वो कौन सा है? एक तो 121 है और दूसरा 169 है. तो बस इतना तक हो जाएगा, बहुत है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. तो मैंने 3 से चेक किया. 1 + 2 + 7 कितना होता है? 10, है ना? तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं होता.
7 ones are 7, 12 minus 7 is 5, 57. 57 is not divisible by 7. 1 plus 7 is 8, 8 minus 2 is 6, not divisible by 11. 13, 13 tens are 117. Sorry, 13 nines are 117 and 13 tens are 130. 127 नहीं होता. तो yes sir, 127 is a prime number. तो यहां पर कुछ नहीं करना, आप कोई भी नंबर बनाओ 1 2 3 4 5 अगर उसमें डिजिट्स है 5 डिजिट नंबर. इफ there is a 5 digit number which consists of digits as 1 2 3 4 5 without repetition, तो भाई पहले 3 से तो डिवाइड करके देख लो, कितना आसान है. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 15 होता है. कोई भी नंबर बनाओगे 1 2 3 4 5 से किसी भी ऑर्डर में रख दो, सम ऑफ द डिजिट्स तो 15 ही आएगा. एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3. तो भाई साहब कोई भी प्राइम नंबर नहीं बना सकते आप 1 2 3 4 5 से जो कि 5 डिजिट को. देखो बेटा, CSAT में एवरी सीमिंगली डिफिकल्ट क्वेश्चन हैज अ सिंपल सॉल्यूशन. बस CSAT वाला जो है वो थोड़ा खूंखार है, वो डराता है, धमकाता है, आप डर जाते हो. आप यहां प्राइम नंबर बनाने के लिए निकल पड़े. क्यों किया ऐसा? यही तो सीखना है कि भाई 5 डिजिट प्राइम नंबर बनाने की सोचनी नहीं है. देयर मस्ट बी अ सिंपलर मेथड. और सिंपलर मेथड क्या है? व्हाट डू वी डू? How do we find out whether a given number is a prime number or not? We check whether that number is divisible by 3, 7, 11, 13 and so on. तो हमने चेक कर लिया, 3 से ही चेक कर लिया. पहले इंस्टेंस में मालूम पड़ गया भाई सम ऑफ द डिजिट्स 15 है ना. इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय 3. करेक्ट. तो कोई भी नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 से, इट विल बी डिविजिबल बाय 3. सो इट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर. समझ में आ गया अभी? यार मैसेज भेजते रहा करो, जरा थोड़ा सा बताते रहा करो समझ में आ गया कि नहीं आया. ट्राई करो, चलो शाबाश. How many integers are there between 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? तो 1 से लेकर 100 तक इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसमें कि एक संख्या में 4 तो है लेकिन वो संख्या 4 से भाग नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 4. करण, वंशिका, शिवम और श्रेया, इन चारों ने मुझसे कम्युनिकेट किया. यस सर, समझ में आ गया. बाकी लोग भी किया करो यार. तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा. जाओ. कमाल कमाल, हरी आप कोशिश करो. ये तो पजल है यार, मैथ्स कहां लग रही है इसमें? देयर इज नो मैथ्स इन्वॉल्व्ड.
कमान कमान हो गया होगा। क्या बात है भाई, वेरी गुड। यहां पे सबने ना अलग अलग से आंसर दे दिए मेरे को, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार थोड़ा सा तो दम लगाते हैं। ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं। ये लो, ये सारे नंबर्स हैं जिनके यूनिट्स प्लेस में और टेंस प्लेस में 4 है। यूनिट प्लेस वाले में भी लो और टेंस प्लेस वाले भी लो। अब इसमें जो 4 से डिवाइड होते हैं वो निकाल दो यार। ये देखो, 4, 24, 40, 44, 48, 64, 84, ये सब हटाओ तो बचे कितने देख लो भाई, गिन लो, ठीक ठीक लगा लो। ओके, सो यहां पर बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है जी। ये सी आंसर आएगा भाई। अब यार ऐसे क्वेश्चंस को तो सिंपल कहा जाता है ना, तो इतनी तो तैयारी रखनी पड़ेगी। शाबाश जिन लोगों का सी आया। देखो भाई, CSAT 2021 ट्राई जरूर करो, ढंग से पढ़ो, ट्राई करो, उसके बाद देखो तुमसे मिस्टेक कहां हुई। कोई बात नहीं, मिस्टेक करो लेकिन सीखो तो सही। नहीं शिवम, नहीं रहना। हाँ रहना, वेरी गुड, करेक्ट रहना। नहीं करण, किसी ने भेजा है 5B, उसके बाद में लिखा नहीं है कौन है वो बंदा, तो मैं कैसे पुकारूं? फायदा क्या लिखने का फिर? काफी बार बता चुका हूं यार, अपना नाम लिखा करो। बेटा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स कहां से कहां तक होते हैं? 1 से 9 तक होते हैं, मतलब जीरो ना हो ऐसे डिजिट्स, है ना। एंड दीज नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। यही गड़बड़ कर गए, है ना। तो भाई ये जो 3 डिजिट नंबर्स बनाने थे आपने, ये बनाने थे 3 6 9, यही तो है वो 3 डिजिट विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। फिर से पढ़ो। कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये नॉन जीरो डिजिट्स कौन से होंगे विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3? 3 6 9। तुमने कुछ और मतलब लगा दिया। बनाओ सारे नंबर। 396, 639, 693, 936,
963 लिखा है लेट एस बी देयर सम, तुमने तो ये इग्नोर ही कर दिया, यू हैव जस्ट इग्नोर्ड दिस, लेट एस बी देयर सम लिया ही नहीं तुमने। अब देखो यार, हर बार यहां पर 9 9 6 6 3 3 हर रो में, हर कॉलम में दे रखे हैं, 2 बार 9 2 बार 6 2 बार 3, सो 9 + 3 + 6 18 होता है, 18 2 36, तो हर कॉलम का सम है 36, नहीं तो ऐड कर लो, फिर 36 + 3 39, फिर ऐड कर लो 36 + 3 39, ये है सम। यहां तक पहुंचे ही नहीं सर आप, इसलिए बी आंसर दे रहे हो मुझे आप। अब वो ये कह रहा है कि S is always divisible by 74, करके देख लो होता है क्या, देखें जरा एक बार। 3996 डिवाइड बाय 74 डिवाइड होता है कि नहीं होता? 5 से जाएगा यार ये तो। 5 4 जा 20, 2 कैरी ओवर, 7 5 35 37 आ गया यार। ये 9 और ये 2, 296, वाह वाह वाह, साफ दिख रहा है। 4 चौक 16, 1 कैरी ओवर, 7 4 जा 28 + 1 29, बिल्कुल होता है जी। S is always divisible by 74. S is always divisible by 9, yes, ये दोनों तो 9 है ही, 3 + 6 भी 9 होता है, so both 1 and 2, choice C is the correct answer. अब गलतियां करोगे तो सीखोगे ना, तो अब सीखो। Now what you basically need to learn is approach the question by breaking it into small bits or small parts and then handle the question part by part भाई छोटी छोटी टुकड़ियों से लड़ाइयां करोगे तो जंग जीत जाओगे। अगर एकदम से बड़ी सेना से लड़ाई करने लग गए तो फिर कैसे चलेगा, है ना? तो छोटे छोटे ग्रुप्स में करो उसको। करेक्ट जी, चलो। अरे बाप रे बाप, 91 × 92 × 93 × 94 × 95 × 96 × 97 × 98 × 99, ये करना पड़ेगा। और फिर ये पूरा निकालने के बाद में 1261 से डिवाइड भी करना है। हाँ, तो एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, क्या रैली में इन सबको मल्टीप्लाई करना है? नहीं करना है ना। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये क्वेश्चन इतना लॉन्ग लग रहा है, इतना इंपॉसिबल लग रहा है, तो इसका मतलब इसे एक्चुअली में लिटरली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका कोई शॉर्टकट है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं मैथ्स में वो याद रखें। एक तो 91, ये फेवरेट नंबर है सीसैट वाले का, और ये होता है 13 × 7। कहीं पर भी 5 मिल जाए, कहीं पर भी 2 मिल जाए, भैया मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा 10। अर्थात कहीं पर भी 5 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर मिल जाए तो बन जाता है 100। और एक याद रखें, 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, करेक्ट, ये होता है 36। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, इसके अलावा भी बताऊंगा, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है ना। तो बेटा अब यहां पर हमें 91 तो दिख रहा है, और 91 हमें पता है 13 × 7 है ना। और ये 1261 क्या पता 13 से या 7 से डिवाइड हो रहा हो, तो बात बन जाएगी ना हमारी, है ना। तो क्वेश्चन एक तरह से ऐसे है, ये 91 × 92 इंटू वगैरह वगैरह, 97 98 99 डिवाइड बाय 1261, ऐसे भी तो लिख सकते हो यार फ्रैक्शन में, कहां प्रॉब्लम है लाइफ में। अब ये क्या है, ये है 13 × 7। तो जरा 1261 को 13 से डिवाइड करके देखो ऐसे वेलेपना में। हाँ, 13 9 जा 117। अब पहाड़े नहीं आएंगे तो क्या कर सकते हो, फिर कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। तो ये 9 आ गया, 1 नीचे उतारो, अरे वाह, 13 7 जा 91, बहुत ही बढ़िया। तो ये 1261 को तुम लिख सकते हो 13 × 97। लो जी, काम बन गया।
बन गया ना, ये 13 13 कैंसिल हो गया, ये 97 97 कैंसिल हो गया, ठीक है, पूरा कैंसिल हो रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। क्लियर हो गया बेटा? चलो जी, तो भाई जरा यहां पे नजरें गड़ाए रखें इस नंबर पे खासकर, और जहां 5 मिल जाए, जहां 2 मिल जाए, मल्टीप्लाई करके सीधा 10 कर दो। ये लो, ये कोशिश करो। ये है आपका CSAT 2023 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। For any choices of values of XYZ, the 6-digit number of the form XYZ is divisible by। तो भी XYZ कैसे मालूम पड़ेगा 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? कैसे मालूम पड़ेगा 11 या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है? कोई वैल्यू ले लो ना यार, छोटी सी वैल्यू ले लो 1 2 3 1 2 3, क्या प्रॉब्लम है? अब देखो, चेक करते रहो, डिवाइड तो करना है, यहां पे करना क्या है, और इतना तो आसान है भी। क्वेश्चन छोड़ने वाले तो थे ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ सही है, जिसने भी मुझे फोटो भेजी है, वेरी गुड। क्या बात है, ये होती है ना स्पीड। अब किया है शिवम और रैना, स्पीड मारी इन्होंने, बहुत बढ़िया। कर दो भाई, देख लो, ठीक ठीक लगा लो। चलो 1 2 3 1 2 3, लो जी, 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2 is 6, 2 + 1 + 3, भाई साहब ये भी 6 होता है, ये तो, हाँ, 6 - 6 is 0, है ना? सो दिस फिगर इज डिविजिबल बाय 11। 11 से तो होगी पक्की बात, ये रहा 11, ये रहा 11, इसमें 11 है ही नहीं, हटाओ इसको, ये रहा 11। अब 7 से डिवाइड करके देख लो, 1 2 3 1 2 3, 7 से आता है क्या? 7 12 - 7 is 5, 53 49, है ना? तो ये नीचे आया कितना, 41 हो गया, 35 6 आया, 62, 56 से जाएगा, कितना बचा, 6, 63, 63 इज डिविजिबल, बिल्कुल जी, 7 से भी डिविजिबल है ये। 11 और 13 में तो 7 दिख ही नहीं रहा, यहां पर भी 7 है, बचा क्या? अरे कर लो फिर से, 13 बचा है तो 1 2 3 1 2 3। अरे यार, छोटा सा डिवीजन पे क्वेश्चन है, और क्या चाहिए, बच्चों को भी मिलता है ये तो, है ना? ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं चाहिए। बस डराने धमकाने के लिए क्या किया, XYZ ऐसे कर दिया, हम डर गए। डरना ही तो नहीं है। अरे बेसिक्स पे ही आधारित होता है पेपर। क्यों डिफिकल्ट लगता है? प्रेजेंटेशन जो है वो डिफिकल्ट दे रखी है आपको, इसलिए आप डर रहे हैं। तो 9 जा कितना है, ये 117 है ना, करेक्ट? तो कितना, 61, तो 52 गया, 9 तो 92, ये है ना, करेक्ट है। 91 1 बचा, 3 उतारा, हाँ ये आ गया ना, इससे भी डिवाइड होगा, करेक्ट है ये तो। क्या है इसमें, कितना टाइम लगता है? सच अ सिंपल क्वेश्चन। अब देखो बेटा, कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन लगता है जब हम पढ़ते हैं डिफिकल्ट, और जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं तो वो तो बड़ा सिंपल लग रहा है। हाँ यही तो गेम है सारी की सारी, कि एक डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन आसान होते हैं, इसलिए आप आसान तरीके से सोचिए तो सही, तभी तो मिलेगा। आप एकदम से कॉम्प्लेक्स तरीके से और उसको देख कर ना, एक तो भौंतला जाते हो बिल्कुल नर्वस, ये क्या है, ऐसे हो जाते हो। अरे भैया, इनिशियल परसेप्शन बहुत जरूरी है, कि शुरुआती 10-15 सेकंड अपने आप को बनाए रखें, अपने आप को बोलते रहे आई कैन सॉल्व दिस, आई कैन सॉल्व दिस। इसे सिंपलेस्ट वे में कैसे किया जा सकता है, तो उसे सिंप्लीफाई करें और सिंपल वे में सोचें
ये नहीं कि आप उसको कॉम्प्लेक्स और बना रहे हैं। तो डरते क्यों यार, XYZ दे रखा है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो वैल्यू चिपका दो यार, कोई भी 1 2 3 1 2 3 सबसे छोटे नंबर है, कर दो, क्या जा रहा है। तो डरने का नहीं। अब देखो मैं बताता हूं, ये मैं सॉल्व करूंगा, तुम रहने दो। एक बात जान लो कि लिटरली क्या इनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा? आपको लगता है अगर इनको मल्टीप्लाई करने बैठोगे और ये सब चीजें करोगे तो भैया 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा, मतलब ही नहीं बनता यार। तो पक्की बात कोई तो मेथड है, क्योंकि आप इसको 100 से डिवाइड करने वाले हो। अच्छा सुनो, 100 से डिवाइड करोगे, इधर देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई नंबर है, इसे अगर आप 10 से डिवाइड करोगे, है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 10 से डिवाइड करोगे तो 9 ही आएगा ना लास्ट डिजिट, है ना। और मान लो 100 से डिवाइड करोगे तो तब क्या आएगा? 89 लास्ट 2 डिजिट्स। 1000 से डिवाइड करोगे तो लास्ट 3 डिजिट्स। 10,000 से डिवाइड करोगे तो लास्ट 4 डिजिट्स। करेक्ट है कि नहीं है? चलो जी, अब मैंने आपसे कहा था कि भाई इन लोगों का ख्याल रख देना। एक तो 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 7 है, और उसके बाद सीधा लिखा था 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। इन्हें जब फैक्टराइज करोगे तो इसे क्या लिखोगे? 7 इंटू 5 है ना ये, इसे क्या लिखोगे? 2 इंटू 31 है ना ये मिल रहा है ना, ये भी मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में, तो 5 और 2 मिल रहे हैं ना। तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आने वाला है ना, उसके लास्ट 2 नंबर यहां पर क्या आ सकते हैं? भाई लास्ट डिजिट तो 0 आके रहेगा, लास्ट डिजिट तो पक्की बात 0 है, पक्की बात 0 है। तो लास्ट डिजिट 0 हो ऐसी कौन सी संख्या है? चॉइसेस देखो, आंसर करो, खत्म बात। वो चाह रहा है कि इजी वे में करो। अब आप कहोगे सर अगर दूसरा एक और नंबर दिया होता 20, मतलब 2 नंबर दिए होते जो 0 से एंड होते, तब हम क्या करते? तब हम छोड़ देते। क्यों देगा वो? ही वॉन्ट्स यू टू टेस्ट ओनली अप टू दिस लेवल, बस, इससे ज्यादा आगे जाना नहीं चाह रहा है वो। IIT जेई का इम्तिहान नहीं है भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्वेश्चन को समझने पर मेहनत कीजिए, उस पर बेसिक रूल्स अप्लाई करने में मेहनत कीजिए। आप तो एकदम से डिटेल में जाके कह रहे हैं कि भाई अगर ये 3 डिजिट होते, ये होता, वो होता, तो क्या करता? नहीं करना है बेटे, ये है ही नहीं सीसैट का लेवल। तुम क्या समझ रहे हो सीसैट को? तो लास्ट में 20 ये 20 होता और मैं 3 4 चॉइसेस, चारों चॉइसेस में लास्ट में 0 होता तो क्या होता? अरे नहीं देगा भाई वो ऐसे। उसने इतना ही टेस्ट करना था कि तुम में इतनी स्मार्टनेस है, तुम्हें ये समझ में है कि लास्ट डेट 0 आएगा। हाँ समझ में है सर, हम जान रहे हैं कि लास्ट डेट 0 होगा, करेक्ट। तो जो भी रिमाइंडर है वो तो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। 100 से डिवाइड करोगे तो लास्ट 2 डिजिट्स ही तो रिमाइंडर होंगे, और जो रिमाइंडर होगा उसका अंतिम अंक यूनिट्स प्लेस पे 0 होगा। और वो ऐसा हमें सिर्फ एक ही दे रखा है, चारों चॉइसेस एक बार देख तो ले यार, स्मार्टनेस तो यही कहती है। एक ही चॉइस है जिसके एंड में 0 है। आंसर आ गया, समझ में आया? ये सब करना है। तुम पता नहीं, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। अब इसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो डिफिकल्ट होगा ना। गुड गुड गुड। लेकिन शिवम 8 का डी नहीं होगा ना मेरे बच्चे? हाँ, यूज ऑफ 2 इंटू 5, करेक्ट। अरे रहना, वेरी गुड, तुम्हारा तो आंसर भी निकल आया। ठीक है, इसको कोई फैक्टराइज नहीं करो, कुछ मत करो, सब बकवास है। बहुत जगह पे बहुत डिटेल सॉल्यूशन दे रखे हैं, छोड़ दो। अरे थोड़ी डिटेल में जाना ही नहीं है भैया, सीसैट वाला चाहता ही नहीं है उस डिटेल में हम जाएं। उन्होंने हमारे लिए आसान रास्ते छोड़ रखे हैं। Only thing that he wants to do is, or wants to judge or see, is whether you are able to search those easy ways of solving questions or not. Basic apply करो।
ये देखो एक और आ गया। कब आया? पीछे वाला क्वेश्चन देखा आपने, सीसैट 2020, ठीक 3 साल बाद सीसैट 2023 एक और आ गया। करोगे मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करोगे? बोलो बोलो, लिखो इसको एक बार। 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91। अच्छा, अपना फेवरेट नंबर 91 भी आया है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है इस बार। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 100। क्यों चक्करों में पढ़ रहे हो ज्यादा? अब वो डिवाइड करना 100 से, या तो हम डिवाइड करके उसको बैलेंस आउट करो और खत्म करो। कर लो, चलो ऐसे भी कर लो। चलो लो, ये लो बच्चा, 5 से जाएगा ना ये कि नहीं जाएगा? हाँ, 5 1 जा 5, 17 आ गया। निकालो इसको 5 से, कितना आया? 20 आया। लो, किससे करोगे? 4 से जाएगा ना कि नहीं? तो ये 24 आ गया। लो, ये 4 पंजे, ये 5 से जाएगा ना? कितने से भी जाए यार, 5 यहां पे कट गया ना, तो नीचे क्या हो गया? सारा कट गया, 1 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। फिर देख लो क्या करा उसने। अच्छा, अभी भी देखो, स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दिस। इतना इजी क्वेश्चन है, तुम डर जा रहे हो। दैट इज द ओनली थिंग। Look, easily you can get a 5 from here and another 5 from here. And easily यहां पे आपको 4 मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 4 कितना होने वाला है? 100। मतलब लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 0 ही तो होंगे। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। बात खत्म। 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे ना, तो 0 ही आने वाला है। खत्म बात। ऐसे कर लो, नहीं तो एक कटम कटाई कर लो तो भी हो जाएगा। कमाल। ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कहलाते हैं बेटा। चलो जी, सो नाउ आई वुड लाइक टू पिक अप एलसीएम एचसीएफ, बाद में करेंगे। पहले मैं तुमको एक बेहतरीन टॉपिक बताता हूं, एंड दैट इज साइक्लिसिटी। जो फर्स्ट टॉपिक हमने लेना था, साइक्लिसिटी में कुछ इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए, सीसैट 2023 का सवाल है ना? तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बड़ा ही सिंपल बेसिक है जी इसका। हाँ, हेयर इज यूज ऑफ 5 इंटू 2 इंटू 2 नहीं बेटा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। चलो, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स बेसिकली इज यूज्ड टू फाइंड आउट द यूनिट्स प्लेस। अब वो तो क्या था, वो क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था 5 6 7 4 2 5 3 4 7 2, है ना? रेस टू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस? तो सिर्फ यूनिट्स डिजिट निकालनी है। तो उसके लिए हम यहां पर साइक्लिसिटी क्या होती है पहले तो समझते हैं। साइकिल, किसी चीज की साइकिल बन जाए तो मतलब रिपीटिशन। रिपीटिशन, कोई चीज बार बार दोहराई जा रही है। तो देखिए, अब साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द यूनिट्स डिजिट, to find the units rate. ओके, चले जी, मैं यहां पर पहले तो कुछ संख्याएं लेता हूं। 2 से स्टार्ट करते हैं। सिंगल डिजिट नंबर जो देखते हैं उनकी साइकिल क्या है पावर्स के हिसाब से। तो आप मुझे अब सिर्फ यू ओनली टेल मी दी यूनिट्स प्लेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस पावर। देखो देखो, समझ में आएगा। देखो, 2 पावर 1 क्या होता है? हाँ, 2 होता है। 2 पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 2 पावर 4 क्या होता है? होता 16 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए?
मुझे चाहिए 6, क्यों? आई रिक्वायर ओनली द यूनिट्स डिजिट, हमें तो सिर्फ यूनिट्स डिजिट चाहिए भाई, है ना। 2 पावर 5 क्या होता है? कुछ मत करो यार, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 2 12 ना। 2 पावर 6 क्या होता है? 2 2 4। 2 पावर 7 क्या होता है? 4 2 8। 2 पावर 8 क्या होता है? 8 2 16 का मिला 6। देखो भाई, ध्यान से देखो, रिपीटेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखिए, ये 2 पावर 1 है ना। इसमें अगर 4 और जोड़ दूं तो आएगा 2 पावर 5। देखो यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है। 2 पावर 2 है, 2 में 4 और जोड़ रहा हूं तो ये बन गया 2 पावर 6। यहां भी 4 आ रहा है, यहां भी 4 आ रहा है। 2 पावर 3 में 8 मिलता है तो 2 पावर 7, 3 प्लस 4 7, उसमें भी 8 मिलता है। 2 पावर 4 में 6 मिलता है तो 4 प्लस 4 8, 2 पावर 8 में भी 6 मिलता है। अर्थात आप यहां पर कह सकते हैं दैट 2 has a cyclicity of 4 powers. 2 has a cyclicity of 4 powers. करेक्ट है? तो भी यहां पे बड़ा जरूरी है ये देखना कि भाई कितनी पावर्स के बाद में ये रिपीट हो रहा है, कितनी पावर्स के बाद में रिपीट हो रहा है। हाँ, 4 पावर के बाद में, 1 2 3 4, 2 4 8 6, फिर स्टार्ट हो गया 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, है ना। 4 पावर का ग्रुप बन रहा है। ओके, सो 2 हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4 पावर्स, मतलब हर 4 पावर्स के बाद में द यूनिट्स डिजिट विल कीप ऑन रिपीटिंग। ओके, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर। चले जी, आओ 3 का भी हिसाब किताब करें। 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27 का 7, 3 पावर 4 7 3 जा 21, है ना। फिर 3 पावर 5 3 1 जा 3, 3 पावर 6 3 3 जा 9। आ गया? फिर से देखो, आया कि नहीं आया? 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। तो इसमें भी 4 ही पावर्स है। ओके, सो यहां पर हम कह सकते हैं दैट 3 हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4 powers. 3 has a cyclicity of 4 powers. हर 4 पावर के बाद में the units digit is repeating 3971, 3971, 3971. All right? फोर का देखो, 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 16 होता ना 6, 4 पावर 3 64, या फिर 6 4 24 कर लो। 4 पावर 4 4 4 फिर 16, अरे सो इट मीन्स ये 2 के बाद ही हो रहा है भाई। देखो 4 6 4 6 4 6 4 6, सो इट मीन्स दैट 4 has a cyclicity of 2 powers, है कि नहीं। हर दूसरी पावर के बाद में you find that the unit digit happens to be the same. लीजिए 5, अरे 5 पावर n इज 5 ओनली रे। 5 की कोई भी पावर हो, 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25 5, 5 पावर 3 125 5 यूनिट्स प्लेस, 5 पावर 4 625 5, है ना।
तो 5 ही आएगा हमेशा यूनिट्स प्लेस में। Similarly, 6 power n, you will get 6. 6 power 1, 6. 6 power 2, 36. 6 आ गया units place. 6 cube, 216. Okay. So here you can say that 5 and 6 have cyclicity of 1 power each. हर एक पावर के बाद में, मतलब हर दूसरा नंबर। ओके, आओ जी देखें जरा। 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49, सो 9। 7 पावर 3 7 9 63, 7 पावर 4 7 3 21, 7 पावर 5 7 1 7, 7 पावर 6 7 7 49, अगेन अगेन अगेन। क्या हो रहा है ये, ऐसे थोड़ा लिखा जाएगा। सेवन नाइन थ्री वन 7931 7931 7931 7931 7931, यही चलता रहेगा। करेक्ट है जी। सो अगेन आफ्टर 4 पावर्स, आफ्टर 4 पावर्स। सो खैर एक बार हम 8 भी कर देते हैं यार, जरा मालूम पड़ जाएगा फिर थोड़ा सा और हमको ना। 8 पावर 1 8, 8 पावर 2 8 8 64, 8 पावर 3 8 4 32, 8 पावर 4 8 2 16, 8 पावर 5 8 6 48, 8 पावर 6 8 8 64। फिर स्टार्ट हो गया है ना, आफ्टर पावर्स ऑफ 4। करेक्ट है ना, है ना। सो हेयर वी कैन से कि 7 की और 8 की दोनों के लिए ही there is a cyclicity of 4 powers. There is a cyclicity of 4 powers. So 7 and 8 each has a cyclicity of 4 powers. 7 and 8 each has a cyclicity of 4 powers. 9 का तो बताइए यार तुमको, कौन सी बड़ी बात होगी। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है तो इसलिए पता नहीं मुझे नंबर बदलने पड़ेंगे, कलर्स बदल रहा हूं मैं, कितने बदलूं ये भी समझ में नहीं आता। चलो ये ले लेता हूं। 9 पावर 1 इज 9, 9 पावर 2 81, 9 पावर 3 अगेन 9, 9 पावर 4 फिर 1 अगेन। 9 हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 2 पावर्स, दिख रहा है ना। So 9 has a cyclicity of 2 powers. हर दो नंबर के बाद में सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, 9 1 9 1 9 1 9 1। ओके, तो यहां से अब कुछ सीख लेंगे हम। ये सारी वैल्यूज नहीं याद रखनी है, बट साइक्लिसिटी किस डिजिट की कितनी है ये जरूर याद रखनी है। तो आइए मैं आपको कुछ और देता हूं। नंबर इसकी साइक्लिसिटी कितनी है। अच्छा ये देखो यार, now 2 has a cyclicity of 4 powers, है ना, करेक्ट है ना। 3 also has a cyclicity of 4 powers. Okay, 7 also and 8 also, they have cyclicity of 4 powers. ठीक है ना जी।
तो बस ये चीज याद रखनी है कि 2, 3, 7, 8 these have cyclicity of 4 powers. 2, 3, 7, 8. 2, 3, 7, 8 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है. ओके, 2 and 8 is 10, 3 and 7 is 10. करेक्ट है ना? ऐसे कर सकते हो ना तुम, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 10 ले लो उसको. अच्छा, और ऑब्जर्वेशन करो. ये देखा तुमने 4, it has cyclicity of 2 powers. Now similarly 9, it has cyclicity of 2 powers. और 4 और 9 स्क्वायर्स भी है ना, इस तरह से भी याद रख सकते हो. स्क्वायर 2 की पावर 2 is 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 is 9. 4 and 9 are squares and they have cyclicity of 2 powers. तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है जी. 4 and 9 cyclicity of 2 powers. बचा कौन? बचा 5 और 6 ना, वो तो पता ही है हमको. cyclicity of 1 power. So I just simply want you guys to memorize this. ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना. और एक ऑब्जर्वेशन है भाई जो इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आओ देखते हैं वो भी. साइक्लिसिटी एंड्स इन. एंड्स इन का क्या मतलब है? अब देखो ना, 2 से देखो ना. 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 6 है. तो 2 की पावर 4 आफ्टर दैट अ न्यू साइकिल बिगिंस of 4 groups. So in the last power in a group, I mean 2 has groups of 4 powers, right, in a cycle. So in the last power, what is the number that you get in the units place? 6. ठीक है ना. तो सारे इवन नंबर देखो जरा ध्यान से. 2 2, उसके बाद 4 देखो, 6 आ रहा है, एंड हो रहा है 6 पे. ये देखो लाइन लगी हुई है नीली वाली, है ना. और 6 का तो आप जानते हो वैसे ही 6 होता है. 8 देखो ये लाइन लगी हुई है, 6 आ रहा है. ओके, सो एज सिंपल एज दैट. जो इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, their cyclicity ends in 6. मतलब 2 की पावर 4 you will get 6, 2 की पावर 8 you will get 6 in the units place, 2 की पावर 40 is divisible by 4. Huh? So 6 will be the units place digit. 2 power 4 crore. 4 crore is also divisible by 4. Again you will get only 6 in the units place, क्योंकि 4 की ही साइकिल है. अच्छा, ऑड देखो. अपार्ट फ्रॉम 5, 5 छोड़ दो, लीव 5. अपार्ट फ्रॉम 5 विच आर द ऑड नंबर्स? बोलो. 379. 379 है ना. तो देखो ना भैया, 379 देखो ना. ये लो 3. सी, ये लाइन जहां लगी है नीली, द साइक्लिसिटी इज एंडिंग इन 1 because 3 has a cyclicity of 4 powers. So 3 power 4, what do you get? You get 1. Similarly 7. See, cyclicity ends in 1. That is what we say. Okay. Similarly 9. See, cyclicity ends in 1. ठीक है. Here you can say odd numbers apart from 5, leave 5. 3 7 9. The cyclicity always ends in 1. Cyclicity always ends in 1. तो चलिए, बच्चा कौन? बच्चा कौन? वेल 5 की साइक्लिसिटी किस पे एंड होती है भाई? 5 पे ही होती है. 5 की पावर कितना भी ले लो, यूनिट्स प्लेस पे तो 5 ही आने वाला है. करेक्ट है ना कि नहीं?
चलो भाई, so I want you guys to memorize this as well. Okay, so please note down these two. अभी के अभी note down these two. Come on, hurry up. ये दोनों note down कर लो, एक नजर फिरा लो. Watch these carefully so that we are able to solve questions which are based on these. Hurry up. And if at all you have completed, you have noted these down, so kindly put in a message, done sir, or noted, so as to let me know. संजना, वंशिका, they have put in a message, they are done with this. आप लोग जरा जल्दी से करें. करण का भी हो गया. चलो चलो, शाबाश बच्चा. चलो जी, नोट डाउन करने में इतना टाइम थोड़ा लगता है. अब करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व. पहले तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लो इसको. तो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स में ये इस तरह से था 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना. हालांकि ये सब याद नहीं रखना, जो याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया दो डब्बों में जो थे. So numbers that follow the cyclicity of 4, there are 4 such numbers, 2 3 7 8. Cyclicity of 2, there are 2 numbers, 4 and 9. Cyclicity of 1, again there are 2 numbers, 5 and 6. लो बेटा, 2 power 74, which digit will appear in the units place? So what I want you to do is find out the nearest multiple of 4, क्योंकि 2 power 4 पे cycle end होती है ना. Cyclicity of 2 is of 4 powers, is it or not? Cyclicity of 2 is of 4 powers. So 2 raised to 74, you will have to write this as a multiple of 4. तो पास में देख लो ना multiple of 4. अरे इतना तो आता है सबको यार. 2 power 40 is a multiple of 4. 64 is a multiple of 4. 80 is a multiple of 4. तो 64 से या तो आगे चले जाओ या 80 से पीछे आ जाओ. 64 plus 4, 68 plus 4, 72. मिल गया भाई. So 2 की पावर 72 into 2 की पावर 2. I'm gonna write it like this. I just want the nearest multiple of 4. Okay, lesser than 74. क्यों? Because 2 has a cyclicity of 4 powers. तो यहां पर अपने को 4 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए. क्यों? क्योंकि ये तो हमें 6 देगा यूनिट्स प्लेस में, और ये क्या है 2 स्क्वायर, ये 4 है. 6 4 का कितना हो गया 24. 4 आएगा जी यूनिट्स प्लेस में. अच्छा चलो, लेट मी शो यू समथिंग एल्स. 6 into 2, 6 into 4, 6 into 6, 6 into 8, 6 into 10. 6 2 कितना होता है 12. 6 4 24. 6 6 36. 6 8 48. 6 10 60. जरा नोटिस करो बेटा एक बड़ी मजेदार चीज. यहां पे 2, 6 2 तो लास्ट में 2 आएगा. 6 4 तो लास्ट में 4 आएगा. 6 6 तो लास्ट में 6 ही आएगा. 6 8 तो यूनिट्स प्लेस में 8 ही आएगा. 6 10 तो लास्ट में 0 ही आएगा. है कि नहीं है?
तो इसका मतलब है कि ये 6 जो है इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज 6 मल्टीप्लाइड विद 4 विल गिव यू 4, 6 मल्टीप्लाइड विद 8 विल गिव यू 8। ओके, तो एक्चुअली स्पीकिंग देखा जाए तो इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को, सीधा 2 स्क्वायर 4 आंसर आ गया। ओके, चलो देखते हैं अब 3 रेज टू 67, ये भी करके देता हूं, रुको। नियरेस्ट मल्टीपल बताओ ना, बिकॉज यू नो दैट 3 has a cyclicity of 4 powers। तो जितने की साइक्लिसिटी पावर उतने से ही डिवाइड होनी चाहिए। सो 3 हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4 पावर्स, सो 3's पावर हैज टू बी डिविजिबल बाय 4। तो नियरेस्ट पावर कौन सी है? अरे यार ये ना यार 64। अब ये सब तो याद रखना पड़ेगा यार थोड़ा बहुत, तो 4 का क्यूब होता है 64। कितना बचा? 67 माइनस 64, 3 रेज टू 3। क्यों किया? बिकॉज वी नो दैट द साइक्लिसिटी ऑफ 3 एंड्स इन 1, साइक्लिसिटी ऑफ 3 एंड्स इन 1। तो भैया जी सीधी बात, ये तो 1 देगा, बात ही खत्म हो गई। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 क्यूब कितना होता है? 27। यूनिट्स प्लेस में क्या आ गया? 7 आ गया। So I hope this is clear. अच्छा तुमने कर भी दिया, क्या बात है यार, वेरी गुड, वेरी फास्ट। तो ये भी करो, कमान कमान, हरी अप। ओके, 4 रेज टू 81 एंड 4 हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 2 पावर्स। 2 पावर्स का मतलब डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? इवन नंबर होता है यार, तो पास का इवन नंबर ले लो। दिस यू नो इज 6, नो छोड़ दो इसको। सो 4 इज द आंसर, ओवर। शॉर्टकट में करो बात, लंबा हिसाब किताब मत बनाओ यार। समझ में आ रहा है भाई? करेक्ट है भाई। अब देखो मैं तुमसे ना, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तुम लोगों पे। नाउ आई फील दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ रियल टफ क्वेश्चन। भाई साहब 5 रेज टू 1 2 3 4, तो बहुत मुश्किल है यार, कैसे कर पाओगे ये तुम? बहुत मुश्किल हो जाएगा ये तो। ये तो आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक, क्या हो गया तुमको? आंसर क्यों नहीं आ रहा? हे राम, पता नहीं तुम्हारे आंसर्स मुझ तक इतनी लेट क्यों पहुंच रहे हैं।
अच्छा, अब जाके आंसर आए हैं। ऐसे तो डिले हो रहा है मेरे ख्याल से, रिस्पॉन्स देयर इज अ डिले काइंड ऑफ अ थिंग। नेवर माइंड। ये देखो एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया मैंने, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने तुमको। कम ऑन, लेट्स सी वेदर यू कैन डू इट। ऑब्वियसली 6 होगा ना यार, 6 टू द पावर ऑफ n इज 6, बात खत्म। 7 रेज टू 343 क्या आ जाएगा? अरे 7 हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4, तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? 7 पावर 43 होगा। ये 3 चाहिए ही नहीं अपने को भाई, ये 3 चाहिए ही नहीं। तो इट विल बी 7 पावर 40 इंटू 7 का क्यूब। ये तो 1 आएगा, छोड़ दो इसको। 7 का क्यूब कितना चल रहा है? 3, बात खत्म। 343 होता ना, 343 होता ना। ये लो, once again 8 raised to 515. We just require the last two digits because 8 has a cyclicity of 4 powers. तो 4 powers है तो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो 12 आ गया। 8 क्यूब, ये तो 6 देगा, इसको छोड़ दो। 8 क्यूब कितना होता है? 512। अभी तक क्यूब्स याद नहीं हुए तो पता नहीं कब की प्रिपरेशन है आपकी। 9 रेज टू 734। अरे यार 9 की साइक्लिसिटी 2 पावर्स की होती है ना? तो ये 9 रेज टू इवन पावर विल ऑलवेज गिव यू 1, खत्म बात। साइक्लिसिटी ऑफ 2 है ना। ये देखो भयानक, 2 रेज टू 89। तो लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए ना, बिकॉज 3 हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4 पावर्स। सो 3 रेज टू 13, बात खत्म। लास्ट 2 ही चाहिए अपने को डिजिट्स। तो 2 रेज टू 89 को कैसे लिखोगे? 2 raised to 88 because 2 has a cyclicity of 4 powers into 2 raised to 1। और इसको कैसे लिखोगे? 3 raised to 12 into 3 raised to 1, है ना? तो ये क्या आ गया? 6, ये क्या आ गया? 2, 6 2 जा 12, 2 ही आ गया। ये क्या आ गया? 1, ये क्या आ गया? 3, तो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। देखो डरने का नहीं, अब ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो सकता है, करने वाले बनो। 7 रेज टू 71, है ना? What is this? Well, you can have this as 7 raised to 68 into 7 cube. 68 is divisible by 4. अरे यार 64 you know is 4 cube, plus 4 कर दो ना, डिफिकल्ट का है? थोड़ा अलाउ तो करो अपने आप को ऐसा करने के लिए। 6 raised to anything is 6. 3 raised to 65 is 3 raised to 64 into 3 raised to 1. तो ये तो 1 होगा, इसको हटाओ। 7 का क्यूब 343, है ना? इंटू, चलो ये 6 नीचे ले लेते हैं, ये फिर 1 आ जाएगा, ये फिर 3 आ जाएगा। 6 3 जा 18 और 8 इंटू 3 कितना होता है? 24। तो अपना आंसर आना चाहिए जी 4। क्या बात है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो गुरु, सेट, वेरी गुड, सही पकड़े हैं। लो जी, CSAT 2021। मैंने आपको बताया था इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, हाँ, देन यूनिट्स डिजिट विल बी द रिमाइंडर ना, है ना?
तो भाई 3 raised to 2019 को तो पहले आप ये देखें कि 3 की साइक्लिसिटी 4 पावर्स की होती है, तो 4 से डिवाइड करना है ना, तो वी रिक्वायर ओनली लास्ट 2 डिजिट्स। तो पहली बात तो 3 raised to 19 लिखें। ओके, फिर लिखो इसको 3 raised to 16, 4 से जाएगा ना यार। 3 raised to 3, ये क्या है, ये तो 1 है। 3 का क्यूब 27 का 7 आ गया, 7 रिमाइंडर होगा। अब ये मैं करवाता हूं, अभी ये एक्सपोनेंट्स है, पहले ये करते हैं CSAT 2023। अब फिर वही बात है, ये कुछ भी लिखा हो यहां पर, ही इज आस्किंग अबाउट यूनिट्स डिजिट, करेक्ट, सो वी रिक्वायर ओनली द यूनिट्स डिजिट, बात खत्म। बाकी सबका क्या करना है, करो करो करो, सॉल्व करो, ये तो खुद करो। हो गया होगा। बस क्वेश्चन को डरावना बनाता है CSAT, और कुछ नहीं करता है, समझे ना, डरने का नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है रक्षा। अभी तो 12 का तुम बता रहे हो मुझे, 14 है बेटा ये। करेक्ट संजना, करेक्ट विनय, चलो ठीक है। अब जरा पीछे आते हैं, तो ये तो हो गया आपके cyclicity का क्वेश्चन। देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स आल्सो, जैसे क्वेश्चन आया था, नाउ यू नो दैट 4 and 8 आर बेसिकली पावर्स ऑफ 2, 2 power 2 is 4, 2 power 3 is 8. So which number amongst 2 raised to 40, 3 raised to 21, 4 raised to 18, 8 raised to 12 is the smallest चाहिए। तो यार इसको कन्वर्ट करो ना यार, इसको लिखो ना 2 square raised to 18, और इसको लिखो ना 2 cube raised to 12। तो क्या बन गया 2 power 36, 2 power 36। स्मॉलेस्ट नंबर ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज देयर कैन नॉट बी 2 आंसर्स टू अ क्वेश्चन। ओके, वी कैन नॉट हैव 2 आंसर्स टू अ क्वेश्चन, आउट। एंड ऑल्सो 2 raised to 40 इज ग्रेटर देन 2 raised to 36, तो स्मॉलेस्ट ये भी नहीं हो सकता। लो भैया आंसर आ गया। सी अगेन, डज ही एक्चुअली इंटेंड टू मेक यू वर्क हार्ड एंड फाइंड आउट दी स्क्वायर्स? नहीं ना, सबके शॉर्टकट्स हैं, देखो सभी के शॉर्टकट्स हैं। तो सोचना कैसे है, सिंप्लीफाइड मैनर में सोचना है, दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू, ही वांट्स यू टू डू। आप सोचते हो डिफिकल्ट वे में। अभी तो कुछ बच्चे मैं जानता हूं जो पावर्स निकालने लग गए थे, ऐसे थोड़ा चलता है भाई। तो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल था इसका, लेट अस से x to the power of m raised to n is nothing but x raised to m into n। अब ये भी पता होगा 1 by a raised to minus m is equal to a की पावर m। चाहिए क्या? इतना इजी क्वेश्चन है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे इजी क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट 2 raised to 6, 64 होता है, ठीक है। ये क्या है 4 cube 64 होता है। अब हाईएस्ट वैल्यू यार 2 चॉइसेस तो नहीं हो सकती ना, तो सी और डी देख लो।
दिस इज 3 पावर 4 81 है ना, और दिस इज 6 पावर 2 36 हाइएस्ट। बस इतना ही है। सो दैट हैपेंस टू बी साइक्लिसिटी फॉर यू। डिविजिबिलिटी रूल्स तो हमने कर लिए। एक टॉपिक और कराता हूं तुम्हें, एंड दैट इज LCM HCF। पहला टॉपिक है। पानी वानी पी लो तब तक थोड़ा सा, है ना। गुड गुड गुड। चलो जी, तो आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में जरूर देखा होगा LCM HCF क्या होता है। सो व्हाट इज LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं 2 नंबर दे दूं आपको, मान लो, अब ये एग्जांपल इनफ होना चाहिए आपके लिए, ध्यान से देखें, है ना, 10 और 15, ठीक है। इसका LCM आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं बताता हूं, अगर इजी नंबर्स हो ना, इफ यू हैव इजी नंबर्स लाइक 10 एंड 15, 15 एंड 20, 20 एंड 25, 16 एंड 24, है ना, 24 एंड 30, ऐसे कुछ इजी इजी से नंबर्स हो। इजी नंबर ये हुए, डिफिकल्ट कौन से हुए? अरे 128 एंड 369, ये मुश्किल हुए ना, है ना। तो ये नंबर तो इजी नंबर्स हैं, छोटे छोटे नंबर हैं। तो इनका LCM जब आपने निकालना हो तो यू नो द टेबल्स ऑफ 10 एज वेल एज 15. So out of 10 and 15, the higher value is 15. So recite the table of 15. Wherever you get a number divisible by 10, obviously that is the answer. 15 ones are 15, 10 से डिवाइड नहीं होता। 15 twos are 30, बस हो गया। ये तो बहुत इजी था, आगे भी कर पाऊंगा। अभी HCF क्या हो सकता है? HCF is the highest number which will divide 10 and 15. साफ साफ दिख रहा है 5 है, साफ साफ दिख रहा है 5 है। कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 10 और 15 दोनों आते हैं? सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में 10 और 15 आते हैं वो नंबर है 5। अच्छा मेरे को ये बताओ फिर, 20 एंड 25। अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो यार, यहां पे आपको 0 दिख रहा है, दोनों नंबर में से एक तो 0 है, 20, तो पक्की बात, पक्की बात, लास्ट डेट जो है वो 0 याद है। अब 25 का टेबल बोलो, 0 होना चाहिए लास्ट में। 25 वन जा 25, क्या करेंगे हम? 25 टू जा 50, 20 से डिवाइड नहीं होता। 25 फोर जा 25, 3 जा क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? क्योंकि वो 75 देगा ना, हमें तो लास्ट डेट 0 चाहिए, है ना। तो इसलिए 75 इंटू 3 नहीं ले रहा मैं, 25 इंटू 3 75 नहीं ले रहा। तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 इंटू 2 10 होगा, है ना। सो 25 फोर जा 100, अरे 100 तो डिवाइड होता है यार 20 से, बस हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 20 और 25 आता है? अभी भी 5 है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा ये है कि आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी प्राइम नंबर में। जैसे कि इसमें देखूं मैं तो 20 क्या होता है? 4 5 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5। 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर होता है। तो LCM क्या होगा? जो भी यहां पर प्राइम फैक्टर्स दिखे आप उन्हें ले लें, और फिर उसके बाद देखें कि इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर 2 की 2 है, 5 की भी 2 है, ठीक है ना। तो 4 इंटू 25 कितना हो गया? 100। ये देखो अब HCF में what you basically have to do is you have to take a common prime factor but which has less or least power,
सो HCF here is 5 because 5 power 2 भी है, 5 power 1 भी है, 5 is common, है ना, but lesser of the two is 5 की power 1. So lesser of the two will be the answer. ठीक है जी, तो that is the start that you have in LCM and HCF. So let's have a look. So least common multiple of two numbers is the smallest or least value which is completely divisible. Completely divisible होगा तभी तो multiple कहलाएगा by each of the n numbers. Highest common factor or HCF of n numbers is that highest value which completely divides. Divide करेगा तभी तो factor कहलाएगा each of the n numbers. अब co-primes, two numbers such that HCF is 1. In other words, the co-primes do not have any common factor other than 1. ये तो मैंने बताया भी था. अच्छा, यहां पे एक पॉइंट रह गया और वो ये है कि मैं आपको बड़ा बढ़िया सा नंबर देने वाला था, 10 और 20. LCM बोलो 20, HCF बोलो 10. देखा है ना. अच्छा, अब 10 और 20 में से लोअर वैल्यू क्या है, लेसर वैल्यू 10 है, हायर वैल्यू क्या है, 20 है. ओके, तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो, यहां पे आप क्या देख रहे हो, 10 क्या है, लेसर वैल्यू है, और 15 क्या है, हायर वैल्यू है ना. सो 10 इज लेसर वैल्यू, 15 is higher value. This 10 here is lesser value, 20 is higher value. अब यहां पर HCF क्या है, HCF is lesser than lesser value. lesser value क्या है, 10 है, जो इन दोनों में से कम है. 10 और 15 में से कम क्या है, 10. और HCF 5 है, 5 तो 10 से कम होता है ना. और यहां देखो HCF 10 है और लेसर वैल्यू भी 10 है, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल. सो सिंपल एज दैट, HCF इज लेस देन और इक्वल टू लेसर वैल्यू, है ना. अब जरा ये देखो, LCM देखो, LCM देखो, LCM क्या दिखा रहा है, कितना है LCM, 30, है ना. नाउ दिस इज ग्रेटर देन द हायर वैल्यू. 30 जो है वो 15 से बड़ा है, 15 इज द हायर वैल्यू. और यहां पर ये देखो LCM कितना है, 20. इट इज इक्वल टू द हायर वैल्यू, इट इज इक्वल टू द हायर वैल्यू. ओके, सो लेट अस से we have two values, and that is lesser value and higher value. दो नंबर है अगर मान लो, लेसर वैल्यू एंड हायर वैल्यू. ओके, सो HCF is going to be less than or equal to lesser value. Okay, and LCM is going to be greater than or equal to the higher value. HCF is less than or equal to lesser value, है ना, and LCM is greater than or equal to the higher value. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. दिस आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर. ये मैं चाहता हूं कि आप लोग कृपया इसे याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लिख ले कहीं पर, प्लीज राइट इट डाउन.
चले जी, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैं करूंगा, मैं भी खेल रहा हूं। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 इज अ फैक्टर ऑफ 20, सो इसको निकाल दो। हाँ, सो जो फैक्टर्स होते हैं, अगर नंबर आपको दिए गए हो उसमें कोई फैक्टर है अगर दूसरे नंबर का, तो उसे हटा दो, ठीक है ना। तो 15 एंड 20 सीधी बात है, आ गया ना। 30 आ गया, अरे नहीं यार 30 कैसे आएगा, 60 आ जाएगा ना 15 एंड 20 का। तो 21 सा 20 15 से डिवाइड नहीं होता, 22 सा 40 डिवाइड नहीं होता 15 से, 23 सा 60 डिवाइड होता है 15 से। बिल्कुल सही, करेक्ट, ओके। अब देखो ना, मैं तुमको कहता हूं फाइंड आउट दी एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18, इतने सारे नंबर। तो 3 हटाओ बिकॉज 3 डिवाइड्स दीज नंबर, 6 हटाओ 6 डिवाइड्स 12, 9 हटाओ 9 डिवाइड्स 18। So ultimately this is equal to LCM of 12, 15 and 18, है ना। So what do you do? Remove the factors, that's all। 3, 6, 9 फैक्टर है ना किसी और नंबर के, उनको हटा दो। तो एक्चुअली इतने लंबे, इतने 6 नंबर नहीं है, ये 3 ही नंबर है, 12, 15, 18। चलो एनी हाउ, अब ये बड़े नंबर आ गए, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे जी, वेल 18 है, 2 से जाता है तो 2 9 आ, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर। 28 है, 4 से जाता है तो 4 7 आ, है ना। 108 है, हमें पता है 12 इंटू 9 108 होता है। 12 क्या है, 4 इंटू 3, ये 3 भी इधर मिलेगा ना। सो इट इज 2 स्क्वायर, है ना, इंटू 3 क्यूब, 27 इंटू 4, 108 होता है वैसा। फिर आया 105, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा, 5 2 जा है तो ये 5 तो आएगा ही, क्या हो गया, ये 5 तो आएगा ही। तो 5 इंटू 5 2 जा है तो 21 क्या होता है, 3 इंटू 7, लो जी बन गया काम, एलसीएम। अब मैंने कहा ना जहां पर 5 और 2 दिखता है तो भैया अलग कर दो। तो ये तो आ गया मेरा 2 इंटू 5, ये मैंने यूज कर लिया, तो 2 स्क्वायर है यहां पर, तो मैंने एक यूज कर लिया, बाकी एक 2 यहां पर बच गया। अब 3 की सबसे बड़ी पावर 3 क्यूब, और क्या है 7 है, बस खत्म बात। अब ये देखो ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसको 10 को सेपरेट करो। ये क्या है 27, 27 इंटू 2 कितना चल रहा है भाई, 54 है, इंटू 7 करो, तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 37, ये आ गया 0। सो 3780, ये है जी आपका एलसीएम। आई होप दिस इज क्वाइट ऑल राइट, है ना। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं, बिकॉज ऑन दिस क्वेश्चन CSAT 2023 में क्वेश्चन आया था विच वॉज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so let's have a look at this. The traffic signal lights on 3 separate roads change after 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds. If all the 3 change at the same time at 8:20, then at what time will they again change together? कब करेंगे? Again, when will these signals change together? In future only, no? Okay, in future only, no? So if at all we have all these timings which are given to us merging or converging at one place in future or in past, okay, then we always find LCM. We always find
एलसीएम, क्योंकि माइंड में यही आता है ना कि सर क्या करें, व्हाट डू वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ. हाँ, obviously when you want a larger number, when you want to find out a timing in future, you will take LCM. Take LCM. तो लो जी करो, क्या क्या दिया है, 48 है, 72 है, 108 तो अभी किया हमने, है ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, 27 फोर जा अभी किया ना हमने, याद रखो कुछ चीजें, ठीक है ना. 48, 16 थ्री जा, सो 2 की पावर 4 इंटू 3, 72 16 से तो जाता नहीं है ये तो 8 से ही जाता है, 8 9 जा, सो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. एलसीएम 2 है और 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है ये बताओ, 2 की पावर 4 दिख रही है और यहां पर 3 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3. अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब. एक 2 मैंने अलग कर दिया इसलिए क्योंकि ये 2 क्यूब 3 क्यूब क्यूब्स कॉमन हो गए, सो दिस बिकम्स 2 इंटू, आई होप यू पीपल नो दिस, 2 इंटू 3 whole cube, so 2 into 6 cube, so 2 into 216, so this is what, 432 seconds. So it is after 432 seconds that the three signals will change again together in future after 432 seconds. अब यार ये 432 seconds से तो बात बनेगी नहीं, क्या करें, आवर्स और मिनट्स में कर दें, करो जी, आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करो उसको. उसके लिए क्या करोगे, 432 सेकेंड्स को डिवाइड करोगे 60 से, करेक्ट, बिकॉज इन 1 मिनट देयर आर 60 सेकेंड्स, 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स, तो 6 7 जा 42, ये आ गया 12 सेकेंड. ठीक बात. तो भाई पहले जब वो मिले थे एक दूसरे से तो क्या टाइम था, 8:20. अब 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स के बाद मिलेंगे तो इट शुड बी 8:27 and 12 seconds. Choice C should be the answer. बोलो भाई, इज इट क्लियर. अच्छा, 3 का आंसर भी दे दिया तुम लोगों ने, शिवम ने दिया, वेरी गुड, सही जवाब. कमन कमन कमन, आंसर्स नहीं आ रहे मेरे पास. लो भाई, ये तो उसका सॉल्यूशन है, ये लो अगला क्वेश्चन. Find out the largest 4-digit number which is completely divisible by 12, 15, 18 and 27. Obviously इनसे वो नंबर डिवाइड होगा जो इनका मल्टीपल होगा, सो एलसीएम ही फाइंड आउट करना होगा ना. चलो करो, शाबाश.
आओ जी, पहले तो इसका एलसीएम निकालो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? 12 15 18 27 का करो करो करो। 12 15 18 27 तो भैया 3 क्यूब होता है, ठीक है ना? ये 4 तिया 12 है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 है। दिस इज 3 इंटू 5 है ना, 9 2 जा, सो 2 इंटू 3 स्क्वायर। सो एलसीएम हेयर इज व्हाट, 2 की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है यहाँ पर, एंड देन यू हैव अ 3 क्यूब एंड यू हैव अ 5 ऑल्सो। तो एक 2 इंटू 5 अलग कर दो यार, इंटू 2 इंटू 3 क्यूब, दैट इज व्हाट आई हैव, है ना? 3 क्यूब तो 27 है, 27 2 जा 54, ये कितना बन गया? 540। रुको तो सही, रुको तो सही। व्हाट डज ही वांट? ही वांट्स लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले तो यही बता दो, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? क्या चल रहा है आजकल? डबल नाइन, डबल नाइन, है ना? अब इसे डिवाइड करें किससे भाई? 540 से डिवाइड करें, क्योंकि जो नंबर 540 से डिविजिबल होगा वो 12 15 18 27 से तो होगा ही होगा, क्योंकि 540 इज एलसीएम ऑफ 12 15 18 27। ठीक है, चलो करो फिर। 540 है, 9 5 एंड 4, 4 5 9 आ गया, 4 5 9 9 हो गया, है ना? 1 जा 8 से जाएगा, 8 5 40, 8 चौक 32, हाँ बिल्कुल 8 से जाएगा। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 3 279 हो गया। अबे 279 है क्या? ये तो रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर, ऑलराइट? सो द नंबर नाउ which is going to be exactly divisible is going to be 9999 में से you subtract the remainder. Obviously remainder is extra, no? If you remove remainder then the number will become completely divisible. So 0 2 7 और 9, ये लो जी 9720 जो है ये संख्या आ गई। परफेक्ट, यस। अरे विनय, तुम आंसर दे रहे हो ए और नंबर लिखा है 9720, तो 9720 तो बी में है बेटा, इसे तो कंफ्यूज करने के लिए 9270 दे रखा है। फंस गया क्या रे? अरे यार ये 12 24 36 64 में 12 तो काटो ना यार, क्या जरूरत है 12 की? 12 विल डिवाइड 24 एंड 36 ना, फैक्टर है ना ये किसी और नंबर का, उसको हटाओ। आओ करते। 24 36 64, I told you this is 2 power 6, this is 2 square into 3 square and this is 8 3s, so 2 cube into 3। तो एलसीएम में कुछ है ही नहीं जी, 2 पावर 6 आ गया यहाँ पे और 3 स्क्वायर ये आ गए, so this is 64 into 9, 9 4s are 36, 6 9s are 54, 57, एलसीएम तो आ गया। Which is the smallest 4 digit number? Smallest 4 digit number is 10,000, नहीं 5 digit number, sorry। This when divided by 576, what does it do? कुछ नहीं है यार, इतना सिंपल है क्वेश्चंस। 576 है ना, 424 आगे सिर 7 से जाएगा ये,
8 से जाएगा, 8 7 56, 8 5 40, नहीं 7 से जाएगा, 7 6 42, 7 7 49 एंड 4 53, 5 बचा, 7 5 35 और 5 40। तो ये तो भैया 208 आ गया। ये क्या है? रिमाइंडर है जी। और रिमाइंडर तो एक्स्ट्रा होता है, उसको निकाल दें। ठीक। So first of all, you find out a number which is exactly divisible by 576. वो कैसे निकालोगे? This minus 208, 10,000 minus 208, तो 9,800 होता अगर 200 होता, तो 9,792, 9792. Hold on, रुको. So 9792 is that number which is exactly divisible by 576 after removing the remainder from 10,000. But what do we need? We want smallest 5-digit number. ये तो 4 digit है यार। तो इससे अगला नंबर जो होगा कैसे मिलेगा भाई? 576 जोड़ दीजिए वापस इसमें, आगे का नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। व्हाट इज द इशू? 2 and 6 8, 9 and 7 16, this is 3 and this is okay 10368 डी में दिया हुआ है। एंड दिस इज नथिंग बट एक्चुअली इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 10,000 प्लस 576 माइनस 208। ओके यही तो किया है, प्लस किया 576 माइनस किया 208, एक ही बात है यार। ऐसे करना है, ऐसे कर लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये तो पता ही है, तुमने बचपन से किया ही हुआ है। ठीक है ना? ऑलराइट। ओके, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये तो पढ़ा ही होगा बचपन में, है ना? एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम फैक्टर्स। भाई कोई भी नंबर है, जैसे 15 है और 20 है, रिमेंबर? सो बेसिकली इफ आई टेक अ रेशियो बिटवीन देम, तो कैसे लिखोगे? अरे यार 3 इंटू 5 है, ये 4 इंटू 5 है, 5 इज व्हाट? कॉमन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या? यही तो एचसीएफ है ना? सो हेयर एचसीएफ इज इक्वल टू 5। ओके, तो इसके अंदर रेशियो क्या बन जाएगा? 3:4। सो इट विल बी 3H:4H। H क्या है? H है जी HCF। ओके चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। ओके clearly HCF of two numbers is 11, LCM is 7700, one number is 275, so LCM into HCF is equal to first number into second number, यही था फॉर्मूला। तो 7700 into 11 is equal to 275 into second number। अब कटिंग वटिंग करो यार थोड़ी सी, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो 11 से जाता है भाई, ये देखो 11 2 जा 22, 55 आ गया, आया कि नहीं आया? 25 से इसको निकाल दो ना। इसको कैसे लिखूं मैं? इसको लिखूंगा 77 into 100। अब 25 और 100 को काट देता हूं मैं, तो 4 7 28, 4 7 28, आ गया 308। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड, ये सीधा एप्लीकेशन थी इसमें, यू जस्ट हैड टू डू कैलकुलेशंस, नथिंग एल्स। ये करो सीसा 2022। come on हरिया।
अजी 6 और 9 तो हटा दीजिए। 6 12 को डिवाइड करता है, 9 18 को करता है, तो इनको हटाओ। क्यों हटाओ? अरे क्योंकि कोई भी नंबर अगर 12 से डिवाइड होगा तो वो 6 से तो डिवाइड होगा ही होगा। फैक्टर्स हटा दिया करो बड़े नंबर्स के। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। सो 12 15 18, फिर से दोबारा एक बार और इनका एलसीएम लीजिए। सो 4 इंटू 3 होता है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 मिल गया। अच्छा 2 इंटू 9, तो एलसीएम यहां पर क्या आया देखें तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अरे यार सीधा ही कर दो ना, 36 इंटू 5 क्या बन गया 180। स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 है तो भाई पहले 1000 को करके देखो ना, 180 से डिवाइड। ये 0 0 नहीं काटते कभी भी, तो भी ये 900 5 से जाएगा ना, क्या बचा 100। तो एज इट इज 1000 माइनस 100, 900 ही तो है वो नंबर। हाँ, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 180। लेकिन ये क्या है, ये तो 3 डिजिट नंबर है भाई, है ना, करेक्ट। तो लो 900 में 180 जोड़ दो, you get 1080 as the number which is exactly divisible by 180. Hence it is exactly divisible by 12 15 and 18 also. Exactly divisible का मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 0, बट ये तो कह रहा है रिमाइंडर चाहिए इसको, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। अच्छा 3 चाहिए, अरे जितना रिमाइंडर चाहिए उतना ऐड कर दो यार। 5 चाहिए होता तो 5 ऐड कर देते, 10 चाहिए होता तो 10 ऐड कर देते, 10 तो नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि 6 से डिवाइड नहीं होता ना, फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो बड़ा आसान था जी ये तो 1083। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो। ये लो, Joseph visits the club on every 5th day. Harsh visits on every 24th day. तो ये तो भैया 5 इंटू 1 ही होता है, ये 2 क्यूब इंटू 3 होता है, और सुमित visits on 9th day, ये 3 स्क्वायर होता है। एलसीएम क्या आ जाएगा, हाँ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अरे मैंने कहा ना 2 और 5 को अलग करो, है ना, इंटू ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मैं बता चुका हूं आपको 36 होता है, आगे करो 0। 360 डेज के बाद में उनकी मुलाकात होगी साथ में, है ना। सो व्हाट आर दीज आर ऑड डेज, और ऑड डेज कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होते भाई। सेवन 5 35, है ना, फिर समझ आएगा कितना बचा। ये क्या हो रहा है यार, गंदी राइटिंग हो गई अचानक। 3 ऑड डेज, लो जी आगे दोबारा संडे के बाद में 3 ऑड डेज, मंडे ट्यूसडे। ये क्या कर दिया, अच्छा थोड़ा सा रास्ता पलटता हूं इसका मैं। संडे के बाद में 3 ऑड डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अरे वाह 7 सही पकड़े, 7 का तो सही है, अभी आया शिवम का, सही है। वेडनेसडे इज द आंसर। ये लो, if you have 2 straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length you can measure? मेजरमेंट वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ना कि कम से कम कितना मेजर लेंगे, है ना, वो हमेशा एचसीएफ वाले होते हैं, ये भी याद रखो।
अदरवाइज ऑल्सो मैंने आपको कहा था कि एलसीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाईएस्ट नंबर, जो भी हाईएस्ट होगा वैल्यू उसके या तो बड़ा होगा एलसीएम या उसके बराबर होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 7.5। हाँ, क्या इनमें से कोई भी ऐसी संख्या है, कोई ऐसी चॉइस है जो 7.5 के बराबर हो या उससे बड़ी हो? नहीं है ना, है ना, छोटी है उससे। ऑलराइट, सो हेंस एचसीएफ लेंगे, ये भी एक आसानी से कर सकते थे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक एचसीएफ ऑफ 7.5 एंड 3.25। अब यार तो डेसिमल्स में आ गए यार फालतू में, है ना। तो एक काम करो, इनको करो यार, फिर खत्म करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। सो ये आ जाएगा 750 और ये आ जाएगा 325। अब यहां मैं बात करता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि इस्तेमाल होता है फॉर डिवीजन टू फाइंड आउट एचसीएफ। ये देखो ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करो, 2 जा 650, बचा कितना? 100, बचा कितना? 100, है ना। अब पता है क्या करना है, ये जो नंबर है ना 325, जो पहला पिछला डिवाइजर था, उसे इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना आया? 100 से डिवाइड करेंगे 325 को, 300 से जाएगा, क्या बचेगा? 25, है ना। अब क्या करना है, अब जो ये पिछला डिवाइजर था, है ना, कौन सा था? 100, इसको डिवाइड करना है 25 से, तो ये तो पूरा जाता है। तो लास्ट में जो भी नंबर हो एचसीएफ होगा वो, क्योंकि उससे ही लास्ट में 0 आ रहा है। तो भैया यहां पर तो आ गया 25। अरे लेकिन हेलो, यहां पर तो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 100 से, तब जाके आया ये 25। तो अब क्या करें, आंसर के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? 0.25। तो आसान क्वेश्चन था वैसे, है ना, 1-2 स्टेप्स थे इसमें बस, और कुछ नहीं। लीजिए एक बार 23 का क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट और ले लेते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपको शुरुआत में मैंने कराया भी था, इफ यू रिमेंबर, सिग्नल्स वाला जो था। सो देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो ग्रीन से रेड होता है, फिर रेड से ग्रीन होता है। फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 seconds, second takes 39 seconds, third takes 60 seconds। याद है ना कि इसमें आपको एलसीएम लेना है ना। और ये क्या है? 13 3 और ये 60 क्या है? अब यार 12 5 60 ना, तो 2 क्यूब कर दूं उसको? क्या नहीं, 8 से नहीं जाता ना, 4 से जाएगा, 15। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, तो एलसीएम कितना आया पहले तो ये निकालो यार। हाँ, अरे वाह, मजेदार बात हो गई। देखो यहां पर ये रहा 5 स्क्वायर, ये रहा 2 स्क्वायर, है कि नहीं? बचा कितना? एक 3 और 13 बचा। वो 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर वैसे ही 100 होता है बॉस, ठीक है ना। और ये कितना है? 13 और 3 39, तो ये कितना बन गया? 3900 सेकेंड्स। इसके बाद सिग्नल चेंज होगा, ठीक है जी। तो अभी 3900 सेकेंड्स है, इसको यार मिनट्स में तो कन्वर्ट करो, आवर में, मिनट में, कुछ तो करोगे, करो ना। सो ये 3900 आई डिवाइड बाय 60, करेक्ट? 6 जा
360 कितना आया 300, 5 जा 300, तो मतलब 65 मिनट्स, और ये 65 मिनट्स किसके बराबर है 1 आवर एंड 5 मिनट्स के बराबर है कि नहीं है? 1 आवर एंड 5 मिनट्स के बराबर है। अब ये कह रहा है चेंजेस द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ड्यूरेशंस फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर द सेम। तो जितना टाइम ग्रीन से रेड चेंज होने में लगता है सिग्नल्स को, उतना ही टाइम रेड से ग्रीन कलर में चेंज होने में लगता है। वो कह रहा है ड्यूरेशंस आर सेम। एट 2 PM they turned green. At what time will they change to green next simultaneously? तो भाई अगली बार जो है वो तो रेड पे जाएंगी, फिर ग्रीन पे जाएगी, और ये कितना टाइम लगेगा यहां पर हमने देखा 1 घंटा और 5 मिनट, तो इतना ही टाइम यहां पर लगेगा 1 घंटा और 5 मिनट। तो भाई 2 बजे में 2 घंटा 10 मिनट जोड़ दो, 4-10 आंसर आ जाएगा। इतना आसान सवाल था ये। देयर यू गो, सच ए सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सो दैट इज दैट। सो वी विल कंटिन्यू विद आवर मैथमेटिक्स टुमारो। हो गया अपना, रीजनिंग तो हो चुका है, तो मैथमेटिक्स कल से और आगे लेकर जाएंगे इसको, परसेंटेजेस होना ना जाने क्या क्या है ना। बट प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, और कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो प्लीज ब्रेक इट इनटू टिट्स एंड बिट्स, यू नो, स्मॉल पीसेस, एंड देन हैंडल ईच पीस इंडिविजुअली rather than, you know, taking a question on the whole. All right, let's start with today's session. So let's have a look at average. Now in average, as you know, what is average? Average is, let us say, a mid number between two numbers, right? Or let us say, if at all we have lots of numbers given to us, we will add those numbers and we will divide by those number of quantities. Okay, so in short, you can simply say that average is nothing but it is sum of quantities by number of quantities, as it is. So again, whatever quantities are given to you, it is somewhere in between those quantities that we will find the average of those quantities. So this is a very basic thing that you need to remember. Now, how do you represent, let us say, three consecutive numbers? Now that is to be written as, let us say, x minus 1, x and x plus 1. Please remember that. Don't write three numbers, consecutive numbers, as x, x plus 1 and x plus 2. It is not to be written like that. So if I take sum of these numbers, it will be 3x. Why? X minus 1 plus x plus x plus 1. Plus 1 minus 1 will cancel. Okay. And if we have, let us say, 5 consecutive numbers, they are to be represented as x minus 2, x minus 1, x, x plus 1 and x plus 2. इसी तरह लिखना है. So that minus 2 and plus 2 cancels, minus 1 and plus 1 cancels, and if you have to take the sum of these numbers, it will be 5x. So what is this? 5 here is nothing but it is number of quantities. X is what? X is the average. So as to say, if you have three consecutive numbers here, the middle number here is the average. So again here, the middle number is the average. Please remember. So if we have three numbers like 1, 2, 3, 1, 2, 3. So middle number is 2, that is the average. 1, 2, 3, 4, 5. Middle number is 3. So that is the average. Now let us say you have 4 consecutive numbers. You would write these 4 numbers as x minus 1.5, x minus 0.5, x plus 0.5
x plus 1.5. Sum here is 4x. And once again, the average here is x. This is the average. Now similarly, let us say if you have to write down 3 consecutive even or odd numbers. Now these shall be written as x minus 2, x and x plus 2. इस तरह से रिप्रेजेंट करना है. Once again, average is going to be बीच वाला नंबर, मिडल वाला नंबर. So if you have 3 numbers like 2, 4, 6, 2, 4, 6, इनके बीच में क्या है? 4. So 4 will become the average. So 2 plus 4 plus 6 by 3, this is 12 by 3, so this is equal to 4. करने की जरूरत ही नहीं है. It is the mid value which is 4, which is the average. Now apart from that, एक और तरीका है इसका कि आप पहले और आखिरी नंबर को जोड़ दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें. So it will be 8 by 2, 4. तब भी 4 आएगा. वैसे बीच का नंबर होता है, याद रखें. So similarly, if you have, let us say 5 consecutive even or odd numbers, so that would be x minus 4, x minus 2, x plus 2, x plus 4. माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा. जब भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5x. ये कितना है? 3x. Once again, what will be the average? Average is always the middle number. So अगर मैं आपको 5 नंबर देता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, तो बीच की वैल्यू क्या है? 6, जो कि आपकी एवरेज होगी इन सभी नंबर्स की. So similarly, if you want to represent, let us say 4 consecutive even or odd numbers, तो 4 numbers को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो: x minus 3, x minus 1, x plus 1 and x plus 3. सम यहां पर 4x आ जाता है. दैट इज हाउ इट इज. एक बार फिर एवरेज जो है वो क्या होगा? बीच का नंबर होगा, दैट इज x. एक बात और, इफ यू हैव टू राइट डाउन अ 2-digit number, it is always expressed as 10x plus y. A 3-digit number will always be expressed as 100x plus 10y plus z. और अगर आपने इसका रिवर्स लिखना हो तो 10x plus y का रिवर्स क्या हो जाएगा? 10y plus x. 100x plus 10y plus z का रिवर्स क्या हो जाएगा? 100z plus 10y plus x. So ये बेसिक्स है, इसे याद रखिएगा. इसे यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन बिकॉज ये आपको कैसे भी मिलने वाला है. You will get this annotated PDF. So I hope this is clear to you. Let's have a look at some of the questions here. ये CSAT 2022 का क्वेश्चन है. The average weight of ABC is 40 kgs. पहले तो make sure that in mathematics you are dividing question into various parts and you will handle each part separately. Okay, so part by part approach रखिए. So the average weight of ABC is 40 kgs. पहले रुक जाइए, सिर्फ इसी को करते हैं. तो एवरेज क्या होती है इसमें? A प्लस बी प्लस सी, ये 3 क्वांटिटीज हैं ए बी सी, इन्हें ऐड किया और डिवाइड किया 3 से, क्योंकि ये 3 क्वांटिटीज हैं. ये आपको दे रखा है 40 kgs. करेक्ट? सो दिस इंप्लाइज A plus B plus C is nothing but it is equal to 120. ओके, आगे देखिए इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है.
BDE is 42 kgs. So it means BDE इनका एवरेज वेट, सो डिवाइड बाय 3 कीजिए, दिस इज इक्वल टू 48 kgs. So this implies that B plus D plus E, ये तीन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 से, कितना बन जाएगा 126. दो इक्वेशन तो मिल गई आपको, बट इन बोथ द इक्वेशंस B is common. So keep on reading further. Weight of F is equal to that of B. तो ये भी दे रखा है, F is equal to B. तो एक काम करो ना, B की जगह F को डाल दो, B की जगह F को डाल दो. So what you get here is F plus D plus E, which is equal to 126. Now what is the average weight of A, B, C, D, E, F? 6 के 6 लोगों का एवरेज चाहिए अपने को, है ना? तो क्या बन जाएगा? A plus B plus C plus D plus E plus F. 6 लोग हैं, सो डिवाइड बाय 6 करना होगा. अब इसमें ऑलरेडी हमें पता है A plus B plus C कितना है, दिस इज 120. D plus E plus F कितना है, ये भी हमने फाइंड आउट किया, 126. So this is to be divided by 6. So it is 246 which is divided by 6. 6 4s are 24, 6 1s are 6. तो यहां पर एवरेज वेट इन 6 के 6 लोगों का 41 आएगा. करेक्ट रहना, शाबाश. So is this clear? I hope this is clear to you. Okay. एक नजर मार लीजिए अच्छी तरह से, कोई डाउट है तो पूछिए. All right. चलिए, I want you people to solve this question. थोड़ा सा टाइम लीजिए, 1 मिनट का समय देता हूं. Try and solve this question. हाँ, पिछले आंसर का क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, करेक्ट आपने सही दिया. आगे बताइए, शाबाश. Come on, hurry up. Okay, good. Rana, well done. चले जी, देखिए. Approach the question. There are two classes A and B having 25 and 30 students respectively, bit by bit. So A, B, इसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं. In class A, the highest score is 21 and lowest score is 17. तो एक रेंज हो गई यहां पर, हम कह सकते हैं कि क्लास A में 17 to 21 ये है बच्चों का स्कोर, और B में हाईएस्ट इज 30, लोएस्ट इज 22. तो यहां रेंज हो गई 22 to 30 की. अब हो क्या रहा है,
कि 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। अच्छा, यही तो सारी दुविधा है। सो देर आर 4 स्टूडेंट्स हु आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। डू वी नो देयर स्कोर्स? हमें स्कोर्स पता है उनके, कितने नंबर आए? अपने को या पता भैया कितने नंबर आए? वी डोंट नो, है ना। तो एक चीज आपको यहां पर नोटिस करनी है, एंड दैट इज द हाईएस्ट स्कोर इन क्लास ए इज लेसर देन द लोएस्ट स्कोर इन क्लास बी। देख पा रहे हैं आप? हाईएस्ट स्कोर कितना आया ए में? 21। बी में लोएस्ट स्कोर कितना आया? 22। तो क्लास ए के बच्चे बी के कंपैरिजन में इतने नालायक हैं कि इनका हाईएस्ट स्कोर भी जो है वो क्लास बी के लोएस्ट से भी कम है ना। तो मान लीजिए दैट टॉपर्स ऑफ क्लास ए दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। मतलब कौन से स्कोर वाले हैं 4 लोग? 21, 21, 21, 21। या फिर लोएस्ट ले लीजिए 17, 17, 17, 17। तो भाई आप इन दोनों में से कोई भी शिफ्ट करें, क्लास बी के लोएस्ट स्कोर से तो लोएस्ट लेसर स्कोर वाले ही आ रहे हैं ना, कम स्कोर वाले आ रहे हैं ना। और अगर लीस्ट से भी कम स्कोर वाले आ रहे हैं तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज घट जाएगी। तो क्लास बी की एवरेज यहां पर डेफिनेटली घटेगी, है ना। सो द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्यों? बिकॉज फ्रॉम क्लास ए these 4 students who are being transferred, their score, whatever it is, even if it is highest score in class A, 21, 21, 21, 21, it is lesser than the least score of class B. So what will be their contribution? They will decrease the average. Okay? तो नेक्स्ट देखो, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। भाई अगर क्लास ए में से जो 4 लोग जा रहे हैं वो ये वाले हैं, सबसे कम स्कोर वाले, अगर सबसे कम स्कोर वाले चले गए तो ज्यादा स्कोर वाले बच गए, तो एवरेज जो क्लास ए की है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट डेफिनेटली कैसे होगी? फर्स्ट केस में जब क्लास ए में से 4 बच्चे बी में ट्रांसफर किए गए, हमने क्या किया? हाईएस्ट स्कोर वाले ट्रांसफर कर दिए। तो अगर हाईएस्ट स्कोर वाले क्लास ए में से निकल गए, ऑलराइट, तो क्लास ए की जो एवरेज है वो तो डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी, कि भाई ज्यादा स्कोर वाले तो चले गए जिनके पास ज्यादा नंबर थे, जो बचे हैं उनके पास तो कम है। करेक्ट? उस केस में क्लास ए में एवरेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डेफिनेटली इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये क्या? तो चॉइस ए इसका सही उत्तर बन जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला क्वेश्चन देखिए और कोशिश कीजिए, इस वाले क्वेश्चन में कोशिश कीजिए। करेक्ट चामराय? नहीं विनय, डी नहीं आएगा ना बेटा, अभी आपने देखा ना। ये 3p 4p जो है ये नंबर्स है, ये 3 इंटू पी नहीं है। 3p कोई नंबर है, 36 है या 38 है या 33 है या कोई ऐसा नंबर है ये। तो ये 4 नंबर्स दिए गए हैं आपको, 3p 4p pp और pp, 2 डिजिट नंबर्स हैं ये।
अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। चले जी शुरू करते हैं। तो ये 4 नंबर हैं, उनकी एडिशन है। तो यार तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एडिशन पे तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं चाहिए। सो यू हैव 4 नंबर्स 3p 4p pp pp। इन्हें ऐड कीजिए तो क्या आएगा? RQ2। अब ध्यान से देखो, ये देखो, भैया आप ऐसे ऐड करते हो ना, तो ये 4 डिजिट अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 4p आएगा कि नहीं आएगा? 4 into p। These are 4p's when you're adding them, and this is equal to a number which is ending in 2। देखो यहां पे 2 आ रहा है, तो ये 4 into p करेंगे, मतलब ये चारों p का जो सम है वो ऐसा नंबर आ रहा है जिसका यूनिट्स डिजिट 2 है, तभी तो आप ऊपर कैरी ओवर करोगे। तो भाई 4 का पहाड़ा तो सबको आता है, वी नो द टेबल ऑफ 4। ओके, तो क्या क्या हो सकता है भाई? 4 into 3 मिलेगा 12, ये आ गया ना 2, एंड 4 into 8 मिलेगा 32। तो ऐसे p की 2 वैल्यूज आ गई। अब 4 into p इज इक्वल टू एक नंबर जिसके एंड में 2 आ रहा है, तो p की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है? 4 का टेबल चलाइए, 4 3 12, 4 8 32, इसी में 2 आ रहा है लास्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p की 2 वैल्यूज हैं, क्या क्या है? p इज इक्वल टू 3 आ सकता है और p इज इक्वल टू 8 आ सकता है। करेक्ट है? तो करके देखो जरा, अगर मैं p इक्वल टू 3 डालता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 33 प्लस 43 प्लस 33 प्लस 33, ये कितना बन गया? 142, है ना? और अगर मैं 8 डालता हूं वैल्यू, तो 38 प्लस 48 प्लस 88 प्लस 88, ये कितना आ जाता है? 8 चौक 32 और 3 बचा तो 10 26 हो गया, 262 आ जाता। तो यहां पर सम आ रहा है 142, यहां पर सम आ रहा है 262। ठीक है ना? अरिथमेटिक मीन हम जानते हैं क्या होता है? एवरेज होता है। तो पॉसिबल सम्स कितने आए हमारे पास? 2 ही आए, सिर्फ 2 ही आए अपने पास में। करेक्ट? 142 और 262। तो भाई 142 प्लस 262, इनकी एवरेज लीजिए, इनकी एवरेज लेने को बोल रहा हूं। एवरेज ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स, 2 सम आए, ठीक है ना? तो इट विल बी व्हाट? 404 by 2, so it is going to be what? 202। करेक्ट है? क्लियर है? सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, मैंने आपको कहा ना कि आराम आराम से कीजिए, इसको बिट बाय बिट कीजिए। एडिशन प्रॉब्लम थी, और जो भी एडिशन है, 2 एडिशन आ रहे हैं, पी की वैल्यू लेनी है आपने, टेबल चेक कर, क्या चेक कर रहा है ये क्वेश्चन आप में? भैया ऐड करना है तो 2 वैल्यूज लेनी होंगी। क्यों 2 वैल्यूज लेनी होंगी? क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कैसे आएगा 2? इन चारों को ऐड करोगे, चारों पी को ऐड करोगे तो 2 आ रहा है ना, तो मतलब 4 into p कितना हुआ? एक नंबर जो कि 2 में एंड करेगा। तो p की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 3 आ सकती है और 8, 4 3 12, 4 8 32, दैट्स इट। सो you will substitute p is equal to 3, you will substitute p is equal to 8, so there are 2 possible sums, उन दोनों की एवरेज ले लीजिए। That's what he is asking you. चलो जी, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कितने होता है? 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम तो 5x ही होगा ना।
ऑलराइट, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू 100. तो x की वैल्यू निकल गई ना आपकी, ट्वेंटी. तो 20 तो 20 की वैल्यू हुई ना, ये तो x तो एवरेज है ना यहाँ पे. तो नंबर्स क्या क्या आ गए भाई, 19, 18, 21 और 22. इन सभी को ऐड करेंगे तो भाई 100 ही तो आएगा कि नहीं. 18 एंड 22 40, 19 और 21 40, 40 40 80, 80 और 20 100. करेक्ट. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई. द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100. तो कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है सर. प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम. अब 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैसे लिखते हैं सर आप, x माइनस 1, x और x प्लस 1, ये इनका प्रोडक्ट हो गया, इक्वल टू देयर सम. तीनों का सम कितना हो गया, 3x हो गया. x x काट दीजिए. तो आप जानते ही हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना. तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब x क्या है, प्लस माइनस 2. अच्छा, माइनस तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो प्लस चाहिए ना, नेचुरल नंबर बोल रहा है ना वो. तो x इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, 2 ले लेंगे. तो बिल्कुल सही है जी, x बीच का नंबर है. तो 3 नंबर क्या आ गए, 1 2 और 3. देखो ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 आ रहा है ना दोनों में. 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है, 6. 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 6. सो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम. अब एक्चुअली नेचुरल नंबर्स हटाऊं मैं, अगर इंटीजर्स ले लूं, है ना, तो उसमें आपकी 3 वैल्यूज आती हैं वैसे. अब नेचुरल नंबर्स बोल रहा है इसलिए मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ी, x इज इक्वल टू 2. वैसे 3 आते हैं, 1 2 एंड 3, ये तो नेचुरल नंबर्स हो गए. फिर -1 -2 -3, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए. और फिर -1 0 और 1, ये याद रखिए. देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6. दोनों केसेस में -1 इंटू -2 इंटू -3 इज इक्वल टू -1 -2 -3. तीनों केसेस, दोनों केसेस में -6 आएगा. और ये थर्ड वाला देखिए, -1 इंटू 0 इंटू 1, भाई 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 आने वाला. तो -1 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा, 0 आएगा. ऑलराइट, तो एनीहाउ ये दोनों ही करेक्ट है. यू शुड गेट चॉइस सी एज द आंसर. इज दिस क्लियर? हाँ जी, प्लीज रिस्पॉन्ड समवन. इज दिस क्लियर? ये समझ में आया कैसे आया? जल्दी बताइए. चलो, करण ने तो बता दिया यस सर. बेटा एक बात याद रखो, एवरेज इज सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. सो सम विल बी number of quantities into average. Okay, या number is equal to sum of quantities by average. यही 3 फॉर्म्स हो सकती है ना, इसी को घुमा फिरा के ऐसे लिख सकते हो, है ना. तो इसको भी याद रखो, sum is equal to nothing but number into average.
तो अब यहां पर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता, नंबर ऑफ बॉयज नहीं पता, एवरेज मार्क्स पता है इंग्लिश में, एवरेज मार्क्स इनके पता है हिंदी में, ओवरऑल भी पता है। लास्ट वाला निकालना है एक्स की वैल्यू, मतलब ओवरऑल एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी बाय बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, वी डोंट नो। लगा दो यार फिर। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी G and number of boys B B। तो भाई सम कितना आ जाएगा? सम क्या होता है? नंबर इनटू एवरेज। ये रहा नंबर, ये रही एवरेज, है ना। तो सम ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय गर्ल्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा? 9G। एंड सम ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज इन इंग्लिश क्या बन जाएगा? 8B। अब थ्रू आउट कोई भी क्वेश्चन एवरेज में आता है तो इस चीज का ध्यान रखें, एवरेज इज सम बाय नंबर। ओके, तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा? सम बाय नंबर, ये सम है, क्या बना? 9G प्लस 8B बाय नंबर, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितना होगा? G प्लस B। ये मिलाकर बन गया आपकी एवरेज, एवरेज 8.8। सो एवरेज इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इसको सॉल्व करो भाई, इसके आगे भी करना होगा इसको। तो क्या बन जाएगा? 9G प्लस 8B इज इक्वल टू 8.8G प्लस 8.8B। So it shall be 0.2G that is equal to 0.8B। तो 2 है 8 है, तो 4 हो गया। तो एक बात तो पक्की हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 times द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 times द नंबर ऑफ बॉयज। बस अब दूसरा वाला निकालते हैं, उसमें रिलेशन लगा देंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड और स्कोर्ड बाय गर्ल्स इन हिंदी, टोटल क्या होता है? सम क्या होता है? नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू एवरेज। एवरेज दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने अज्यूम करा था G है, तो ये आ गया 8G। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज इन हिंदी कितना हो जाएगा? 7B। तो इसका मतलब सम बाय नंबर, तो ये G है इक्वल टू 4B। ये G के स्थान में डाल दो भाई। That's all that we need to do। तो क्या बन जाता है? दिस इज इक्वल टू 8 इंटू G की वैल्यू क्या है? 4B, 4 टाइम्स बॉय। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स बॉयज प्लस 7 बॉयज बाय G की वैल्यू क्या है? 4 टाइम्स बॉयज प्लस बॉयज। दिस इज इक्वल टू X। तो क्या बन गया? 8 चौस 32, 32 और 7 39। सो 39 बॉयज बाय 5 बॉयज, बॉयज बॉयज कैंसल, 39 बाय 5, 5 7 जा 35, कितना बचा? 4 बचा, है ना। तो 5 8 जा 40। सो व्हाट यू गेट हियर इज अ 7.8। होप दिस इज क्लियर। एक नजर मारिए, ध्यान से देखिए, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी इक्वेशन बनानी थी। आपको यह समझना है कि सम इज नंबर इनटू एवरेज, एवरेज इज सम इनटू सम बाय नंबर। एवरेज दे रखी है ना, तो नंबर आपको पता नहीं, नंबर आपने अज्यूम कर लिया, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट दी सम हियर। सो होप दिस इज क्लियर। Just stick to the formula. In different ways the question would be asked. Very good, Deepak, your answer is correct.
शाबाश। चलो क्वेश्चन ट्राई करो, कमान कमान। अरे वाह, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन तो सबने आंसर किया कम से कम। एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। तो पता ही नहीं ना मुझे, तो मैं कुछ भी ले लूंगा यहां पर। बच्चे, टीचर प्लस 3 बच्चे, दिस डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट, 20 ईयर्स। तो इसका मतलब टीचर प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 इंटू 3, दैट इज 60। अब कह रहा है फॉर ऑल 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज। अच्छा, तो मान लेते हैं भी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये क्या बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए टी प्लस 3a इज इक्वल टू 60। And the difference between the age of the teacher and each student is 20 years. So T minus A is 20. Difference between teacher and age of a student. Okay, तो ये तो यार इक्वेशन बन गई। कहां प्रॉब्लम है? माइनस प्लस माइनस चेंज कीजिए। 4a इज इक्वल टू कितना है ये? 40 है क्या? यस, ए तो 10 आ रहा है। अच्छा अच्छा, मेरी गलती थी। ये 4 होगा तो ये 80 हो जाएगा, तो दिस शुड बी 80। ये 60 है, तो ए इज इक्वल टू 15 आना चाहिए। यस, तो
भाई अभी a इज इक्वल टू 15 निकला है तो कहीं भी डाल दो ना, इसमें डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? So t minus 15 is 20. So t is equal to 20 plus 15. That is equal to 35. I think most of you got this correct. Good enough. कहाँ करंट देख लिया मैंने? चले जी, look at this one. Why this is not being corrected? I don't know. Very good, Reena. शाबाश बेटा. All right, let's begin. Look at the question. A batsman scored 87 runs in his 17th innings, after which his average runs per innings has increased by 3 runs. ये 3 runs किस पे इंक्रीज हुए? 16 innings में जो भी इसकी बैटिंग एवरेज थी उसके ऊपर 3 runs इंक्रीज हुए ना, है ना? तो अब ये तो पता नहीं कि 16 innings में उसकी बैटिंग एवरेज कितनी थी, है ना? तो एवरेज runs scored per inning till 16th inning, है ना? Let it be X. Okay. तो एवरेज रन स्कोर्ड पर इनिंग आफ्टर 17th innings will become how much? भाई 3 इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज बाय 3 रन 17वीं इनिंग के बाद में. तो बस बेटा जी, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू हियर. यू नीड टू रिमेंबर कि एवरेज इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. बस इसी में करो. एवरेज आफ्टर 16 innings was X. इनिंग्स कितनी हुई?
16। तो सम कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, स्कोर इज व्हाट, सम इज व्हाट, एवरेज इनटू नंबर, 16x हो जाएगा। अरे देखो ना 16 16 कट रहा है, x इज इक्वल टू x फर्स्ट क्लास है। सो एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, सो सम इज व्हाट, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर, वही किया मैंने, ये नंबर है, ये एवरेज है। अच्छा, इसके बाद में एक इनिंग्स और हुई, और वो कौन सी इनिंग्स थी, 17th इनिंग्स थी। तो उसने कितना स्कोर मारा, उसने 87 रन्स बनाए, तो टोटल रन्स बढ़ गए। और उसके बाद में एवरेज को भी कुछ हुआ, क्या हुआ एवरेज, 3 पॉइंट्स या 3 रन्स बढ़ गई, बस आ गई इक्वेशन सामने, एक ही वेरिएबल है। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करें जी। दिस इज व्हाट 16 + 1 17, इसे इधर लेकर जाए तो 17 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 16x + 87। सो 17x + 51 is equal to 16x + 87. So x here is nothing but it is 87 - 51 and that is 36. ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है जी, x की वैल्यू है। अपने को क्या चाहिए, x + 3 चाहिए, ये तो 16 इनिंग्स के बाद है, और वो पूछ रहा है आफ्टर द 17th इनिंग्स एवरेज रन्स कितने हैं। तो x + 3 इज इक्वल टू 36 + 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा जे। तो चलो, आई थिंक मोस्ट सम ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट। इनफैक्ट कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहां पे, जैसे रहना है, विनय 3 ऐड करना भूल गया बेटा, अदिति आप भी 3 ऐड करना भूल गए, इसलिए तो 36 दे रखा है चॉइसेस में तुम्हें फंसाने के लिए, और तुम फंस गए। ये लो सीसैट 2020 का बहुत ही आसान प्रश्न, कम ऑन हरी अप, यू कैन डू दिस। वेरी गुड रहना, सही जवाब। कमान कमान हरी अप अदर्स, स्पीड बढ़ाइए, इतने समय में तो हिसाब किताब नहीं बनेगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th innings was 46.4। तो भाई टोटल स्कोर बताओ मुझे, टोटल स्कोर है ना आफ्टर 50th innings
कितना हो जाएगा 50 इंटू 46.4। 46.4 क्या है, ये तो एवरेज है ना, आपको पता है ना, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, मल्टीप्लाई करो ना इनको, तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। टोटल स्कोर क्या हुआ, सम हुआ, नंबर ऑफ इनिंग्स दे रखा है 50, एवरेज बता रखा है 46.4। ऑलराइट, सो टोटल स्कोर कितना आ जाएगा 2320। एंड टोटल स्कोर आफ्टर 60th innings, okay, एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाय 2.6। तो यहां पर एवरेज स्कोर कितना है 46.4 है ना, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 2.6। तो अब यहां क्या मिलना चाहिए मुझे 60 इंटू 49, ठीक है ना, 60 इंटू 50 कर लो 3000, 3000 में से 60 घटा देना, तो यू विल गेट 2940। ओके, सो टोटल स्कोर इन लास्ट 10 innings कितनी हो जाएगी 2940 माइनस 2320, 50 से 60, 10 इनिंग्स ही तो ही ना, 10 इनिंग्स ही तो ही, 50 से 60, ठीक है जी, तो ये हो गई 620। तो एवरेज स्कोर इन लास्ट 10 innings will be 620, that is total score divided by number of innings 10, so it should become a 62। होप दिस इज क्लियर। तो बस जी इसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड यू मस्ट रिमेंबर एवरेज इज सम बाय नंबर एंड सम इज एवरेज इनटू नंबर, है ना। इन्हीं के बेस पर, इसी को बेस बनाते हुए कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले एवरेज पे, अगर आपने देख लिया कि एवरेज पे क्वेश्चन है, सीधा उठा के ना रफ के अंदर ये फॉर्मूला लिख दो, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, फिर जो जो दिया हुआ है उसमें फिट करना शुरू करो, आंसर मिलेगा। तो बस इतना ही बेसिक है, इसको पकड़ के रखो, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला को। चलो एक छोटा सा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक आधी बार कभी इस पे क्वेश्चन आ गया हो तो आ गया हो रेशियो पे, लेकिन हाँ रेशियो का इस्तेमाल दूसरे टॉपिक्स में जरूर होता है, तो ये बड़ा बेसिक है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, इनका इस्तेमाल दूसरे टॉपिक्स में भी हो जाता है, दूसरे टॉपिक्स पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं। तो चलो जी, रेशियो होता क्या है आइए देखते हैं। आप देखते हैं ना ये A is to B, A सही B, दिस इज रेशियो। और अगर दो रेशियो को इक्वल कर दें, उनके बीच में इक्वल टू का मार्क लगा दो, तो वो प्रोपोर्शन हो गया, बात खत्म। ओके, so ratio between two or more than two values exhibits the number of times the first value is contained in the second value. So ratio A is to B, A is antecedent, B is consequent, छोड़ दो, ये क्या करोगे याद करके, बट ये जरूरी है याद रखना, when two ratios are equal to each other, then the two ratios are said to be in a proportion. If A is to B and C is to D are equal, then they are in a proportion. Okay, so इसको कैसे लिख सकते हो, और ये देखो A is to B equal C is to D को लिख सकते हो A by B equal to C by D। फिर ये रेनबो रूल भी आ गया ना, A into D is equal to B into C, सेम चीज है ना, ये देखो A into D is equal to B into C, मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बट ये याद रखना है ना, अगर कहीं दिया हुआ है 2:3 तो वो इक्वल है 2/3 के, अगर कहीं दिया हुआ है 2/3 तो वो इक्वल है 2:3 के, दोनों तरह से याद करो। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल। If rupees 600 is divided between A and B in the ratio 2:3, how much money in rupees does B get? B को कितना मिलेगा? चलो देखते हैं, ये
बेसिक पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ? चलो चलो शाबाश। ये देखो ना ऐसे आएगा, A:B, रेशियो दे रखा है 2:3, बट ये एक्चुअल मनी थोड़ा ना, एक्चुअल वैल्यू थोड़ा ना ए और बी की। ऐसा थोड़ा ना कि 600 रुपए में से ए को 2 रुपए मिले और बी को 3 रुपए मिले, बस। सो एक्चुअल वैल्यूज इनकी होती है 2x और 3x। x इनका HCF है, HCF याद है, बताया था HCF। ओके, तो टोटल कितना आ रहा है? 2x प्लस 3x 5x है। टोटल कितना है? 5x। दिया कितना है? ये 5x। टोटल पैसा 600, ठीक है ना? तो ये 5x से 600 कैसे आ जाएगा? 120 करोगे तो आएगा ना, 600/5 करके देख लो। तो मल्टीप्लायर यानी कि HCF मिल गया आपको 120, ठीक है ना? तो चाहिए किसका? B का चाहिए, तो 3 इंटू 120 कर लो भाई, 12 3 36, 360 आ गया। अब सेकेंड वाला तो और फास्ट कर सकते हो भाई, बहुत आसान है। देखते हैं कितनी फास्ट करके दिखाते हो। चलो चलो शाबाश। हाँ जी, A:B:C कितना है? 1:2:3। टोटल कितना हो गया? 6x। दोनों टोटल पैसा कितना है? 1200। कैसे आएगा? 200 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो 3 इंटू 200 600। दिस इज व्हाट सी विल गेट। अच्छा, एक और बात कर सकते हो ना यार, तुम्हें पता है 1 2 और 3 इसका टोटल कितना आ रहा है? 6। और ये C का कितना पार्ट है इसमें? 3 पार्ट है, तो 3 आउट ऑफ 6 कितना होता है? हाफ होता है। तो सीधा 1200 का हाफ लो ना यार, 600। दैट्स इट। सो काफी सिंपल क्वेश्चन हुए। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना पैटर्न देखते हैं, लेवल हल्का सा बढ़ाते हैं धीरे धीरे। देखिए, if the cost of 3 mangoes and 7 apples is equal to the cost of 5 mangoes and 4 apples, what will be the ratio between the costs of 1 mango 1 apple? चले कीजिए, चले शाबाश, फास्ट कीजिए। 45 सेकंड्स दे रहा हूं मैं आपको। चलो जी, फरीन का तो आंसर आ गया, बाकी का पता नहीं किसका आंसर था। कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज एंड 7 एप्पल्स, कितना आसान है यार। इट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स। खेल जाओ। हाँ, 3 5 कितना आया? 2 मैंगोज। 7 4 कितना आया? 3 एप्पल्स। अच्छा, रेशियो का ऑर्डर जरूर देखना, पहले मैंगो दिया है उसके बाद एप्पल दिया है, तो मैंगो इज टू एप्पल निकालना है, तो क्या आ जाना चाहिए? मैंगो बाय एप्पल आना चाहिए। तो ये क्या बन गया? 3/2। सो दिस इंप्लाइज मैंगो इज टू एप्पल इज इक्वल टू 3:2। ओके, ये दिया हुआ है जी डी में और आप लोग फंस गए ए में।
क्योंकि ऑर्डर सही नहीं रहा ना। हाँ, रैना का सही आ गया, करण का सही आ गया। समझ में आया? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज। ध्यान रहे इस चीज का कि ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंगो आएगा, उसके बाद एप्पल आएगा। तो मैंगो बाय एप्पल लीजिए, एप्पल बाय मैंगो नहीं। चले सर, जल्दी से ये कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। नो सौंदर्य, यस आदित्य। सौंदर्य, you need to look at the order, the sequence. It is not 2:3, it is 3:2. First mango, then apple. चले जी, let's have a look here. The ratio between the monthly incomes of A and B is 3:2. तो भैया इनकम अगर देखेंगे A B, सॉरी, तो इनकम में यहां पर रेशियो दे रखा है आपको 3:2 का। ये एक्चुअल वैल्यूज तो नहीं हो सकती। इट्स नॉट दैट A is earning 3 rupees and B is earning 2 rupees. It would be 3x and 2x. These are the original values. Ratio between their expenditures, so expenses, that is 5:3. 5:3. अब फिर ये ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है, these are called ratio points. So this time it should be 5y and 3y. अब ध्यान रखना, इसे x मत ले लेना। हाँ, x is the common multiplier for the first ratio. So here it should be y, you know, some other letter. अब सेविंग्स आपको पता ही है क्या होती है। सेविंग्स इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो क्या मिल गया, 3x माइनस 5y। दोनों की सेविंग्स जो है सेम है, ईच पर्सन सेव्स ₹1000। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 1000। अब या तो इक्वेशन से कर लो या रेशियो खेल लो। यहां पर 3x है 2x है, क्या बन गया x, 3x माइनस 2x। 5y माइनस 3y क्या बन गया 2y। तो जो x है वो y का डबल है। x क्या है, y का डबल है ना। तो ये यहां पर हमें अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो यार, क्या फर्क पड़ रहा। इससे एक और बात आती है ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मंथली इनकम ऑफ ए। मतलब वी बेसिकली नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3x।
तो इसीलिए यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x लीजिए, y इज इक्वल टू x/2, करेक्ट है ना? तो y को x/2 लीजिए यहां पर। तो आप देखिए किसी में भी डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, तो ये बन गया 2x माइनस 3x/2, ऐसे होना चाहिए क्योंकि y इज इक्वल टू x/2 ना। सो दिस इज इक्वल टू 1000। अब ये 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है ना यार। 2 में से 1.5 निकालोगे तो हाफ ही तो बचेगा, ठीक है? तो इसका मतलब x/2 इज इक्वल टू 1000, विच मीन्स x इज इक्वल टू 2000। कुछ नहीं करना है, ये x इज इक्वल टू 2000 जो है ये वैल्यू यहां पे डाल देनी है 3x में, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा जी? 3 इंटू 2000 विच इज इक्वल टू 6000। बड़ा गरीब आदमी है, 6000 रुपए कमा। ओके, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट। 3-4 लोगों ने तो मुझे दिया है ये आंसर, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। विनय का सही है, मयंक का सही है, सौंदर्या का सही है, लाखों जरा चेक करो भाई। करण का सही है, करण ने तो पलटी मारी है यहाँ पर बीच में, पहले आंसर ये दिया था फिर सी। कोई बात नहीं, इलेक्शन का सीजन है। रैना का सही है, चमराय का सही है, बाकी का नहीं आया यार आंसर। चलो भाई जल्दी करो, ये तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका तो आंसर मुझे सबसे चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन आते हैं भाई सीसैट में, दैट इज द होल पॉइंट। आराम से आते हैं, कोशिश तो कीजिए। चलो this should be quite simple. How much quantity of zinc should be mixed with 27 kg of copper so that the ratio between copper and zinc, किसके बीच में रेशियो लेना है? कॉपर एंड जिंक। तो पहले कॉपर फिर जिंक। तो याद है, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू राइट Cu एंड Zn केमिस्ट्री में, है ना? ये कितना है इसमें रेशियो? 9:4। कॉपर कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। अरे ठीक तो है, फिर क्या प्रॉब्लम है? 9 इंटू 3 27, तो 4 इंटू 3 12। बात खत्म हो गई, लीजिए। सच अ सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट? तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस दैट यू वुड गेट इन द एग्जाम। In what ratio should a milk vendor mix water in pure milk so that he makes a profit of 30%?
ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क। दूध वाला भैया आता है ना, कहता है भाई हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, जितने का खरीद रहे हैं उतने का बेच रहे हैं, कुछ कमा ही नहीं रहे हैं। तो उनको बोला करो फिर धंधा क्यों कर रहे हो, दूसरा कोई धंधा ढूंढ लो भाई, जब कमा ही नहीं रहे तो बस सिंपल सा हिसाब किताब है, यहाँ पर कुछ खास नहीं करना है। प्योर मिल्क तो 100% होता है ना, और वाटर कितना है, इन व्हाट रेशियो शुड अ मिल्क वेंडर मिक्स वाटर इन प्योर मिल्क, तो ये वाटर पहले लेना होगा, 30% आ गया। So the ratio in which water should be mixed with pure milk is 3:10। अरे जो प्रॉफिट चाहिए, अगर आप कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो जो प्रॉफिट चाहिए वो तो पानी को दूध के भाव पर बेचकर ही मिलेगा ना भाई। तो अगर 30% प्रॉफिट चाहिए तो 30% वाटर मिला दो, अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो 25% वाटर मिला दो, जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही परसेंट आप उसके अंदर वाटर मिला सकते हैं। दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस, लेकिन चक्कर यहां पर तुम खा गए, ठीक है ना। मिक्सचर का नहीं मांगा उसने ये पूछा है कि कितने रेशियो में वाटर को मिक्स करें। तो आप अगर 10:13 बोल रहे हैं तो मतलब 13 लीटर प्योर मिल्क के अंदर 10 लीटर वाटर मिक्स कर दें, ज्यादा नहीं हो जाएगा? मिल्क रहेगा कहां यार, कच्ची लस्सी बन जाएगी। ये लो, नंबर ऑफ सच पेयर्स, आराम से करोगे, सोचोगे तो मिल जाएगा। चलो शाबाश, कमान कमान, हरी अप। वेरी गुड अमित, शाबाश। नहीं रोशनी, देखो जरा ध्यान से। हाँ गुड, नहीं नहीं, हाँ सही है, लाखों का सही है, लाखों का सही है। करण नहीं, क्या कर रहे हो? इजी क्वेश्चन है, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? रेशियो ऑफ अ 2-digit नेचुरल नंबर टू अ नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। तो क्या आएगा? 2-digit नंबर क्या होता है? 10x प्लस वाई। रिवर्स कीजिए, क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। रेशियो कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं a बाई बी, ठीक है ना। ये रेशियो दे रखा है आपको 4/7, हो गया, ये मिल गया, बस इसे लगाइए, खत्म हो गई बात। सो व्हाट यू गेट हियर इज अ 70x प्लस 7y which is equal to 40y plus 4x। 70x 4x कितना हो गया? 66x।
7y 40y कितना हो गया 33y. So 2x is equal to y. 2x is equal to y. मतलब y जो है वो x के डबल है. खत्म, बस मिल गई वैल्यूज आपको. ये रहा x, ये रहा y. डालो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2. x2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है. आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू से कैसे हो जाएगा. बिल्कुल हो रहा है ना, देखो ना यहां पर देखो क्या आ रहा है 4:7 आ तो रहा है. नंबर्स देखिए ना क्या है ये 1 और 2 क्या है 12 और ये क्या है 21. रिवर्स करोगे तो 12:21 3 से डिवाइड करो 3 4 12 3 7 21 2 and 4 24 और 42 है ना. तो भाई 7 से कीजिए, नहीं 7 नहीं सॉरी 4:7 है ना. 6 से कीजिए 6 4 जा 24 6 7 जा 42. ये देखिए 3 and 6 is 36. उल्टा कीजिए 63. 9 से कीजिए 9 4 जा 36 9 7 जा 63. और यहां क्या नंबर आ रहा है 48 और ये क्या है उल्टा करो 84. हाँ 12 से करो डिवाइड, दोनों नंबर जा रहे हैं 12 से. 12 4 जा 48 12 7 जा 84. अभी मुझे ऐसे मालूम पड़ा 12 है. अरे यार 48 को 4 से डिवाइड करके देख लो ना यार, 12 ही तो आएगा. ठीक है ना. तो भाई 4 ही नंबर्स बन सकते हैं. अब x की वैल्यू 5 तो नहीं डाल सकता ना, 10 थोड़ा हो जाएगा भाई. ये तो डिजिट्स है, 10 तो 2 डिजिट नंबर है, 4 ही आएंगे ना. सो चॉइस बी शुड बी द करेक्ट आंसर. तो आई होप जी ये समझ में आया हो आपको. हाँ काफी लोगों का सही आया है यहाँ पर. वैसे रैना का सही है. करण यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ. लाखों का है. रोशनी नो. अमित का करेक्ट है. बाकी पता नहीं किस किस के कौन से आंसर्स है. तो चलिए, तो दिस इज हाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो. बस ये पता होना चाहिए कि a is to b is a by b, राइट. और अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन बोल रहा है तसल्ली से सोचोगे ना, तुम्हें पता है इसका आंसर क्या है. ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं. थोड़ा सा अप्लाई करो अपने आप को, है ना. सो डोंट परसीव that this is a difficult question. It is not. Keep on telling yourself that the questions are easy, they are simple, and then take on them. If at all initially you take the perception that the question is difficult, तो फिर तो गया ना यार. फिर तो you will consume more time in solving the question. स्पीड कम हो जाएगी ना, डर लगता रहेगा. चले जी. टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस. इस पे एक क्वेश्चन आ ही जाता है ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू गेट अ क्वेश्चन इन सीसैट. बस इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, those instructions you should be in a position to convert them into mathematical notations. तो अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए. इतना समझ में आना चाहिए आपको. तो मतलब मैं आपको बताता हूं कि मान लेते हैं कि एक मिस्टर एक्स है. उनकी वर्तमान आयु या लेट अस से हिज प्रेजेंट एज इज x years. ओके. सो आफ्टर 5 years, या फिर कह सकते हैं 5 years hence. 5 years hence का मतलब क्या होता है आफ्टर 5 years. और 5 years later, 5 years later का मतलब क्या होता है आफ्टर 5 years. उनकी एज क्या होगी? अगर प्रेजेंट एज x years है तो 5 साल के बाद में एज क्या होगी? एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, x + 5. बिल्कुल सही जवाब. और 5 साल पहले उनकी एज क्या थी? 5 years ago, 5 years before, ऐसे अगर लिखा हुआ हो तो 5 साल पहले उनकी एज थी x - 5 years. तो पहली बात तो ये समझ में आ गई. दूसरा, यू शुड नो हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस. सी हियर, 5 years ago एज ऑफ x was thrice the age of y. तो बात हो रही है x और y की 5 years ago. तो सबसे पहले क्या करो, x - 5
और y माइनस 5 ये लिख दो सबसे पहले, ठीक है ना। और क्या हुआ क्या था, 5 साल पहले जो भी x की एज थी उस वक्त के y की एज की थ्राइस थी, 3 गुना थी। बस ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है यार, बस सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5। और अगर लिखा हो आफ्टर 5 इयर्स, तो पहले तो आफ्टर 5 इयर्स x और y की एज x प्लस 5 और y प्लस 5 होगी। क्या हो जाएगा, एज ऑफ x विल बी ट्वाइस द एज ऑफ y। इक्वेशन बनानी आ गई तो क्वेश्चन बनाना आ गया, बस। So x plus 5 is equal to 2 times y plus 5। चलिए क्वेश्चन बनाइए, तब बात बनेगी, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना हमको। प्लीज कम ऑन, हरी अप, गॉट टू बी फास्ट इन दिस। इजी क्वेश्चंस है, अगर क्वेश्चन आता है तो पक्की बात पॉकेट में है ये 2.5 मार्क्स। अरे भाई ये तो हो जाना चाहिए था अब तक। ओके, 10 years ago एज ए की एज क्या होगी 10 साल पहले, ए माइनस 10 वॉज हाफ द एज ऑफ बीज एज, तो बी की एज क्या होगी बी माइनस 10, इसके हाफ थी, करेक्ट। तो यार इसका जो हिसाब किताब है कर दो इसका हिसाब, तो क्या बन गया ये 2a माइनस 20 इज इक्वल टू बी माइनस 10, है ना। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 10, ये आ गया। माइनस 20 इधर गया, प्लस 20 हो गया, 20 में से 10 गया, 10 रह गया, ठीक है। इधर से वो कह रहा है रेशियो बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस इज 3:4, मतलब a बाई बी इज इक्वल टू 3/4। तो इसमें से मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, a इज इक्वल टू 3/4 भी कर सकता हूं ना भाई। तो लाओ ना यार, इसकी वैल्यू इसमें डाल दो बी में। यार ये सांप अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ और तरीके से बताते हैं इसको ना, नीचे से लेकर आते हैं लोग ऐसे। चले जी, तो उल्टा यहां पर नहीं रहा, मैं तो गलत फिर गलत कर दिया। ए में डालनी है ना वैल्यू यार, यहां पे डलेगी वैल्यू। सो ये 2 टाइम्स ए की जगह क्या आ जाएगा 3/4 बी, है ना, माइनस बी इज इक्वल टू 10। ये 2 और 4 तो कट गया, 2 से जा रहा है,
अब फिर 3/2, 3/2 कितना होता है यार, पता तो है, 1.5 होता है ना, 1.5 है ना। तो 1.5 में से 1 निकालोगे तो 0.5 ही तो बचेगा, हाफ ही तो बचेगा। सो दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज b इज बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो भाई b की एज तो आ गई 20, है ना। अब a की एज क्या है, a की एज क्या आएगी, 3/4 टाइम्स b की एज 5, तो a की एज कितनी आ गई, 15। चाहिए क्या, सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। तो पहले तो प्रेजेंट देखो क्या है, 2, 20 प्लस 15 कितना है, 35, है ना। तो आफ्टर 10 ईयर्स ये दोनों ही 10-10 साल बड़े हो जाएंगे, तो 10 और 10 20 हो गया, दोनों की एज बड़ी ना यार, तो 55 आना चाहिए ना। हाँ सी, शाबाश। क्वेश्चन पूरा पढ़ो भी, तुम क्या कर रहे हो, सी क्यों नहीं लाए तुम, ए कैसे ले आए, ये क्यों नहीं पढ़ा तुमने आफ्टर 10 ईयर्स। आता हुआ क्वेश्चन फालतू में यार 2.5 नंबर चले गए, ऐसे कैसे होगा। हाँ करेक्ट मयंक, करेक्ट निधि, करेक्ट करण, नहीं चम रहा है, करेक्ट रहना। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो। हरी अप, हरी अप। चले जी, हो गया होगा ये भी। देखे ध्यान से, 8 ईयर्स बैक रोहन एज, रोहन की एज 8 साल पहले तो भाई R-8 थी, वॉज 4 टाइम्स, सो इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो इसका सन x मान लेते हैं, तो 8 साल पहले उसकी एज x-8 है। तो इसको पहले तो सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, R-8 इज इक्वल टू 4x माइनस 32, R-4x इज इक्वल टू -24, -32 प्लस 8। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन का इंतजाम करो। 8 ईयर्स हेंस, मतलब आफ्टर 8 ईयर्स, रोहन्स एज, तो R+8 will become twice the age of his son. So will become twice the age of his son. तो इसकी सन की एज 8 साल के बाद में x+8 होगी, तो रोहन की एज उसके दुगनी हो जाएगी 8 साल बाद। इसको रिजॉल्व करो, R+8 इज इक्वल टू 2x प्लस 16, तो R-2x इज इक्वल टू 8। तो एक काम कर रहा हूं, इसको इधर लेकर जा रहा हूं मैं, है ना, ताकि मेरे पास दो इक्वेशंस हो जाए। R-2x
इज इक्वल टू 8। साइंस बदलो, सिंबल्स बदलो, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 32, x इज इक्वल टू 16। चाहिए किसकी एज? रोहन की एज चाहिए, कर लो यार, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो x इज इक्वल टू 16 को मान लीजिए मैं इधर डाल देता हूं, ऑलराइट, देन व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हेयर? r माइनस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 8, तो r इज इक्वल टू 32 माइनस 8, दैट इज 24। ये क्या आ गया? ना 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 ना, मेरी गलती है, मेरी गलती है। 8 प्लस 32, सॉरी, 40 ईयर्स आ जाएगा। प्रेजेंट एज निकाल ली थी रोहन की। हाँ ये तो आ गया मेरे ख्याल से। मयंक का सही है, निधि चेक करो, करण का सही है। अच्छा मयंक ने भी पलटी मारी थी यहाँ पे, 2 का पहले डी दिया था फिर भी दे दिया। चलो चलो चलो, ये देखो जरा, जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस मिक्स विद मैथ्स। या करेक्ट चामरा, करेक्ट रहना पिछला क्वेश्चन। ये वाला करो जल्दी से, इसमें बहुत सारे झूठ छुपे हुए हैं इस क्वेश्चन में। कमान कमान, शाबाश, हरी अप। करेक्ट रहना, शाबाश। अब आप पोस्ट कर रहे हो आंसर और अपना नाम नहीं बता रहे हो, तो मैं कैसे कहूं फिर? सही है वैसे तो, नाम नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी। अरे भी ये तो जल्दी होना चाहिए। कैटरीना इज यंगर देन सलमान by the same number of years as the number of years that Katrina is elder than Vicky। तो भाई कहने का मतलब है जो सलमान और कैटरीना की उम्र के बीच अंतर है, ठीक उतना ही अंतर, उतने ही वर्षों का अंतर कैटरीना और विक्की के उम्र के बीच में है। सो सिंपल, सलमान माइनस कैटरीना shall be equal to Katrina minus Vicky. So 2 Katrina is equal to S plus V, सलमान प्लस विक्की। और वो कह रहा है इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ सलमान एंड विक्की इज 48। इतना आसान क्वेश्चन है। 2K इज इक्वल टू 48, सो K हेयर इक्वल्स टू 24। लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना सीसैट में, और हम ढूंढते रह जाते हैं। क्वेश्चन हम पूरे पढ़ते नहीं हैं, तो आंसर कैसे मिलेंगे हमको? इजी क्वेश्चंस कैसे मिल जाएंगे? चलिए जल्दी कीजिए।
तो जी बहुत बढ़िया, सही निकल रहा है आंसर। चलो शाबाश। देखे, सी ट्राई नॉट टू टेक मोर देन 1 to 1.5 minutes, है ना, बिकॉज एग्जाम में भी इतना ही टाइम मिलेगा। नाउ मोहन्स एज इज थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मान लेते हैं मोहन के 2 चिल्ड्रन जो हैं वो ए और बी हैं, तो प्रेजेंट एज के बारे में बात हो रही है, कुछ लिखा ही नहीं आफ्टर सो मेनी इयर्स या सो मेनी इयर्स बिफोर, कुछ भी नहीं लिखा। तो मोहन्स एज इज थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years, तो लीजिए m+5, his age will become twice the sum of the ages of his 2 children। तो ये हो गया a plus b। अब देखिए 2 चिल्ड्रन है उसके, a और b, a भी 5 साल बड़ा हुआ, b भी 5 साल बड़ा हुआ, तो इन दोनों की जो टोटल एज है वो 10 years बढ़ी ना, 5 साल a का बड़ा और 5 साल b का बड़ा, तो +10 हो गया। Now the only thing that we need to do is put this value here over। देखिए तो अब आ गया 3 times a plus b, यहां से लिया मैंने, +5 is equal to 2 times a plus b, खोल दें इसको, +20। So 3 times a plus b, 2 times a plus b, माइनस हो गया इसमें से, तो a plus b बराबर है 20 में से 5 गया 15, है ना। किसकी एज पूछ रहा है? मोहन की, ठीक है ना। तो ए प्लस बी को क्या करोगे, यहां पर इसको इधर डाल दो यार, यहां पर डाल दो इसको वैल्यू को। सो मोहन इज इक्वल टू 3 times कितना है, 15 है, 45 आ गया। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। करिए जी। चलिए जी शुरुआत करते हैं यहां पे। आफ्टर 10 years a is age, तो a plus 10 तो पहले करो भाई, will become twice of b's age, twice of b की एज 10 साल के बाद में कितनी होगी, b plus 10। ये कंसेप्ट बस समझ में आना चाहिए, ऑलराइट। लेकिन पूरा पढ़ो यार, ये क्या हो गया, कुछ और लिखा हुआ भी यहां पे, a's age will become twice of b's age 10 years ago। अच्छा तो भाई -10 आएगा, इस चीज का ख्याल रखना है। खोल दो भाई इसको, a plus 10 is equal to 2b minus 20, so a minus 2b is equal to -10, -10 नहीं -30, +10 इधर गया ना, -20 से मिला, -30 हो गया। If the present age of A is 9 years more than that of B, तो ये भी आ गया, लीजिए A minus B
is 9. Find out the present age of B. तो बस ये दो इक्वेशंस आ गई, बड़ी आसान आसान सी. लीजिए, सिंबल चेंज कीजिए. ए तो कट गया, माइनस टू बी प्लस बी, तो माइनस बी आ गया. ये कितना आ गया? -39. तो बी की एज आ गई है 39 ईयर्स. चलिए करेक्शन है यहाँ पे, कर देता हूं उसको मैं. लीजिए साहब, करो भाई. एक ही वेरिएबल है इसमें, एक ही वेरिएबल है, तो ये फास्ट हो जाना चाहिए. नहीं नहीं, करेक्ट कर दो यार उसको. 38 39 एक ही बात कर दो यहां पर. Just wait, sir. I am facing problem in permutation combination. Just wait till the time I take that question, that topic. No, don't worry. You will not have any problem. Line and position type of question. ये क्या होता है? Line and position क्या होती है? ये मुझे नहीं पता. I am not able to figure out what you are saying. If it is concerned with permutation combination only, line and position. What you're talking? Line and position should be ranking. No, I have already completed that. Are you talking about ranking? कर दिया था मैंने वो. Now that's quite simple one. After 15 years age of Raj, so R plus 15 will become 5 times his age 5 years ago. तो 5 times R minus 5. लीजिए जी, खोले इसको, बहुत आसान है. R plus 15 is equal to 5R minus 25 कर लें, तो 5R और R बन गया यहाँ पर 4R. ओके, नाउ 15 plus 25, तो ये बन गया 40. R की प्रेजेंट एज तो 10 है. क्वेश्चन है फाइंड आउट द एज ऑफ राज आफ्टर 5 years. So it shall be 10 plus 5, that is equal to 15 years. +10 को कैसे ऐड करेंगे भाई? LHS में ही तो ऐड कर रखा है +10, फिर राइट साइड में लेकर गए ना उसको हम.
मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन. It's a simple thing that we have done there. So anyhow, most of you got the correct answer here. Have a look at this question, please. All right, let's try this out. In 2002, acha, Meenu's age. So Meenu was 1/3 of the age of Meera. So that means Meera by 3. Whereas in 2010, लो जी 2010, पहले तो ये देखो 2010 मतलब कितने साल आगे आ गए आप? 8 years. Alright, you've gone ahead by 8 years. Meenu's age. So Meenu's age here will also increase by 8 years. Was half the age of Meera. So it is equal to Meera's age also increased by 8 years by 2. Okay, so what is Meenu's year of birth? Meenu का निकालना है ना, तो काम करो ना यार यहाँ पे. Here let us convert Meera into Meenu और substitute कर देंगे Meera की जगह. क्यों? Because ultimately we want Meenu's date of birth और year of birth, है ना? तो क्या करने वाला हूं मैं भाई, ये जो आपने लिया इसको इधर लगा दीजिए, मतलब बात खत्म हो गई और क्या चाहिए. Okay, so this shall be Meenu plus 8. यार 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 Meenu plus 16 is equal to, मीरा की जगह मैं 3 Meenu डाल रहा हूं, तो 3 Meenu plus 8 ऐसे हो गया. तो 3 Meenu minus 2 Meenu बन गई 1 Meenu, है ना, और 16 minus 8 बन गया 8, है ना. यहां पे देखो, so in 2002 she was 8 years old. तो 8 साल पहले पैदा हुई थी. So that is 1994. That should be the year of birth for Meenu. I hope this is clear. Correct है? ठीक है जी. हाँ करेक्ट, वेरी गुड, यू गॉट दिस. सभी का आ गया अभी, क्या बात है जी. तो चलिए लेट्स ब्रेक फॉर लंच.
We shall meet again at 2 o'clock, correct? And continue from there. So I have some more topics for you. I think 4 topics that we will be discussing in the 2-2. So let's talk about percentage. And if you remember, I had given you one table, and that was for fraction to percentage and percentage to fraction conversion, right? So I hope that you have gone through that table and most of the values you remember already. So let's get to the basics of percentage. Percent, per, cent, per means for each, हर एक के लिए, cent, century, 100. तो हर 100 के लिए for every 100, alright? That is what is the meaning of percent. Symbol आपको पता ही है ये यूज होता है. So just know this, that if at all you have a value x percent, it is nothing but x by 100. है ना? So if you have 20%, एक minute, it is 20 by 100. So it is equal to 0.2. Okay. If we have 35%, so it is 35 by 100. So the value is equal to 0.35. So this is very important. So even if you have 125%, that is 125 by 100. So the value is equal to 1.25. तो परसेंट हटाते हो तो डिवाइड बाय 100 करना है. This is the same thing written here. As you can see, 50% is 50 by 100, which is equal to half, quite clearly. Now let us see if you get a question like, if the length of a rectangle is increased by 33.33%, then by what percent should the width of the rectangle be decreased so that there is no change in the area of the rectangle? ये मैं आपको भी कराता हूँ. So first of all, let us have a look at this. When A is x% more or less than B. तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. If A is 25% more than B, then by what percent is B less than A? If A is 25% more than B, तो आपको लगेगा कि B should also be 25% less than A. That is incorrect. Okay. तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बताता हूं. Let B be equal to 100. है ना? Now A is 25% more than B. तो 25% कितना होता है 100 का? 25. तो A कितना हो गया? 125. 25% more than B. Then by what percent is B less than A? Difference क्या है दोनों में? What is the difference? 25 है भाई, याद रखना. Than के बाद में जो आ रहा है, whatever figure or quantity or number is coming after than, after the word than, this will come to the denominator. तो than के बाद में क्या आ रहा है? A आ रहा है. तो A डिनोमिनेटर में आएगा, है ना? मतलब डिफरेंस कितना है? 25. B is 25 points less than A, बट परसेंटेज में कितना होगा? 25 points less than A. तो than के बाद क्या आया? A आया. A कितना है? 125 into 100. So this you know is 5. In fact, this should be 1 and 1 by 5 into 100. So that is nothing but 20%. So very important. Thank you. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब आप ये याद रखें, इसको मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि A is 25% more than B. B is less than A. कितना हो जाएगा? ये 25% का मैंने जैसे उस दिन आपको टेबल दिया था. So you should know how to, convert 25%. It is nothing but 1 by 4. तो अगर किसी वैल्यू को कम करना है, लेस मांग रहा है,
तो आंसर भी लेस देन 25% ही आएगा, याद रखना। लेस मांग रहा है ना, तो आंसर हैज टू बी लेस देन 25%। ओके, तो अगर लेस करना है इसको, फ्रैक्शन को, तो क्या करोगे भाई? डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे, है ना? तो आप यहां पर न्यूमिनेटर को नीचे ले जाइए और डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, क्या आ गया? 1/5 विच इज 20%. So if A is 25% more than B, then B is 20% less than A. ये जोड़ा ही याद रखो यार, 25-20 का, 25-20 का, है ना? So similarly, if A is 33.33% more than B, then B is less than A by what percent? अभी 33.33% क्या होता है? 1/3. न्यूमिनेटर को नीचे जोड़ दो, क्या बन गया? 1/4. दैट इज इक्वल टू 25%. अगर A B से 33.33% बड़ा है, तो B A से 25% छोटा है या कम है। Alright. Now similarly A, if it is 50% more than B, है ना? तो B कितना छोटा होगा बताओ जरा फटाफट से। B is less than A by how much percent? 50% मतलब 1/2. नीचे प्लस करो न्यूमरेटर को, क्या बन गया? 1/3. दैट इज 33.33%. ओके, तो ये कुछ वैल्यूज है, अगर याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है. दैट इज समथिंग विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो यहां पर ना एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं हम, मैं आपको बताता हूं. तो अगर A इज ग्रेटर देन B, तो फिर B कितना A से लेस होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंट, है ना? तो ये जोड़े जो है ना, पेयर्स जो मैं दे रहा हूं, ये याद रख लो. अगर A B से 25% बड़ा है, तो B A से 20% छोटा है. अगर A B से 33.33% बड़ा है, तो B A से 25% छोटा है. अगर A B से 50% बड़ा है, तो B A से 33.33% छोटा है. ठीक है ना? यहां पर कुछ ऐसे भी तो देख रहे हो आप, ये 25 है, ये 33 यहां पर आ रहा है. सिर्फ इन वैल्यूज के लिए. तो ये तीन जोड़े याद रखो. ठीक है, तीन जोड़े याद रखो. 25-20, 33.33 एंड 25, करेक्ट, एंड देन 50 एंड 33.33. तो अगर क्वेश्चन दिया हो, मान लो कहीं पर दिया हो, इफ A is 20% less than B, then by what percent is B more than A? अब बेटा ध्यान से पढ़ो जरा. इस बार क्या चाहिए? इस बार चाहिए मोर. तो आंसर भी होगा मोर देन 20%. ठीक है, इससे बड़ा आएगा आंसर. और वो तो हमें पता ही है, जोड़ा किसके साथ बन रहा है? 25 के साथ में. ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक हियर. तो A 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5. अब क्या करना है? B की वैल्यू
जो है, जो भी बी का परसेंटेज आएगा दैट शुड बी मोर देन ए, एक्चुअली बड़ा ही होगा वो। तो अगर किसी फ्रैक्शन को बढ़ाना हो उसकी वैल्यू, तो डिनोमिनेटर कम कर दीजिए, डिनोमिनेटर कम कर दीजिए। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि अब डिनोमिनेटर माइनस कर दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 1/5 - 1 विच इज 1/4। वापस मिल गया 25%, मिला ना। तो इफ ए इज 20% लेस देन बी, then B is 25% more than A. If A is 25% more than B, then B is 20% less than A. ठीक है, तो ये चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखी जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट यू गाइज टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। कुछ चीजें और याद रखें इसमें कि भाई 125% जो होता है ना, वो होता है 100% प्लस 25%। 100% 1 होता है, 25% 1/4 होता है, करेक्ट। तो ये क्या बन गया 5/4। अब इसे कर कैसे सकते हैं, इसे ऐसे भी तो कर सकते हो। 125% में पहले देखो 25% क्या होता है, ये होता है क्या 4। 4 को 1/4, 4 को ऊपर ऐड कर दो, तो क्या बन गया ये 5/4। और कराता हूं, रुक जाओ, और कराता हूं, रुक जाओ। अगर मैं दे रहा हूं 133.33%, है ना, तो इसमें 1 छोड़ दो और 1 के बाद देखो क्या आ रहा है। तो ये 33.33% कितना होता है 1/3। अब ये 3 को ऊपर जोड़ दोगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा 4/3। दिस इज द वैल्यू फॉर 133.33%। अरे यार देखो ना, वेरी सिंपल। अगर मैं पूछूं 150%, तो 150% मतलब क्या, 50% को देखोगे ना। अरे यार 50% को देखोगे ना यार, करेक्ट। तो 50% क्या बन जाता है भाई, 50% जो है ये तो होता है 1/2। 2 को ऊपर ले जाओ भाई, तो 150% क्या बन जाता है 1 + 2 दैट इज 3/2। 3/2 होता है ना 150, 1.5। 1.5 ही तो है 150%, क्योंकि 150% क्या है 150/100, 1.5 ही तो होता है। क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखें तो बेहतर होगा। और मजेदार भी चीजें हैं भाई, जैसे कि आपको पता है कि 25% क्या होता है 1/4। ये इंटरचेंजेबल भी है अभी, ये लो, चाहो तो इंटरचेंज कर लो। सो दिस इंप्लाइज 4% क्या हुआ 1/25। ऐसे है मैथ्स तो। देखो 20% क्या होता है 1/5, चाहो तो इंटरचेंज कर दो। ओके, so this implies 5% is what? It is equal to 1/20. फॉन्ट ही चेंज करता हूं मैं इसका, रुको कलर चेंज करूं, कंफ्यूजन करेगा आगे नीचे भी यही कलर है ना। अच्छा खासा ये कलर यूज कर रहा था मैं। 5% is equal to 1/20। अब सही है। ओके, now this is something which is important actually। अच्छा ये निकाला ही नहीं मैंने, ये अभी निकाल देता हूं मैं। ये है तो एक बार ये भी याद रखें कि इफ A is 25% more than B, then A is 1.25 times B, and if A is 25% less than B, then A is 0.75 times
बी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूं, ए इज इक्वल टू 1 प्लस मोर परसेंट 1 माइनस लेस परसेंट इंटू बी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फैक्ट नोट ही कर लीजिएगा अभी। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। कर लिया नोट? जल्दी बताओ यार। चले जी, ये इससे तो बेहतर टेबल मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी। I've given you the टेबल। अब यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। अब देखिए कितना सिंपल हो जाएगा और कितने फास्ट होगा। If the length of a rectangle is increased by 33.33%, है ना, मतलब कि वो 33.33% बढ़ गई, then by what percent should the width of the rectangle be decreased so that there is no change in the area of the rectangle? अगर एरिया समान रखना है, अगर एक फिगर आपने 33.33 बढ़ा दी है यहां पर लेंथ, तो ब्रेथ कितनी घटाएंगे ताकि एरिया जो है वो सेम रहे। एरिया जो है वो सेम रहे। तो 33.33% का जोड़ा किसके साथ बनता है भाई? 25 के साथ, याद है? सो इफ A is 33.33% more than B, then B is 25% less than A. लीजिए, जल्दी बताइए। अब तो ये जल्दी हो जाना चाहिए आंसर। अब तो कुछ करना ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें अब। करेक्ट फरीन। करेक्ट जूही, करेक्ट संजना। भाई सीधी सी बात है, अगर पेट्रोल के प्राइसेस 25% बढ़ा देंगे, हाँ, एंड you want to keep the total expenditure on petrol the same, तो कंजम्पशन तो घटानी पड़ेगी ना। कितनी घटेगी? 20%। क्यों? 25-20 की आ रही है भाई, 25% मोर, तो that means 20% लेस। 25-20 की आ रही। करेक्ट सुंदरिया, करेक्ट वंशिका। चलो, तो तुम चैंपियंस बन गए अब तो। लुक हियर, अब एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला, बहुत बार यूज में आएगा, और अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं सीसैट का, वेयर दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड, व्हिच आई एम अबाउट टू गिव यू। इफ अ वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय x% एंड देन इज इंक्रीज्ड बाय y%, दो बार इंक्रीज हुआ है, overall increase in the value will be x plus y plus xy by 100. बोलो 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 बोलो, x plus y plus xy by 100, x plus y plus xy by 100, x plus y plus xy by 100. अब देखो, अगर इंक्रीज है तो पॉजिटिव
डिक्रीज है तो नेगेटिव कर देना भाई, करेक्ट, इसके हिसाब से लगा लो। ठीक ठीक, क्वेश्चन देखो फिर मालूम पड़ेगा कैसे करना है। चलो शाबाश। अब इस पे आधारित क्वेश्चन आया है सी साइड में, मैं दिखाऊंगा आपको। करेक्ट जी, वेरी करेक्ट। तो अपने पास फॉर्मूला है ना, x प्लस वाई बाय 100, ये है ना फॉर्मूला। तो शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ सम गुड्स बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 25%। तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बाय 100, ये 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, टोटल बन गया जी 50%। So hope this is correct. ये लो, चलो जी चलो, स्पीड बढ़ाओ अब तो, अब स्पीड बढ़ाओ। करेक्ट, करेक्ट तेजमाला, करेक्ट करण, करेक्ट रहना, जूही, फरीन, करण, रोशनी 7 क्या है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। राधु का भी करेक्ट है, सौंदर्या का करेक्ट है। चलो चलो चलो, तो शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुड्स बाय 20%, देन डिक्रीजेस द वैल्यू बाय 10%। तो अपने पास है x प्लस वाई बाय 100, इंक्रीज कितना है 20, डिक्रीज कितना है 10। अब 10 यहां पर नेगेटिव है तो ये फिर नेगेटिव ही आएगा ना, 20 इंटू 10 बाय 100, 0 तो कट गया, तो 20 माइनस 10, 10 माइनस 2, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी 8%।
अब ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हेंस पक्की बात यहां पर क्या आएगा, इंक्रीज। नेगेटिव वैल्यू है तो डिक्रीज आता। ठीक है जी, गुड इनफ। चलो चलो शाबाश, कोशिश करो। अब ये देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा देखा गया है, और सबसे इजी है वो। आइए देखते हैं कैसे करना है। टू पास एन एग्जामिनेशन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स आर रिक्वायर्ड। तो जी पास परसेंटेज कितनी है, 33% है। अच्छा 33% को 1/3 करने की गलती मत करना, वो 33.33 होता है, इसलिए गड़बड़ हो रही है ना। नाउ शाहरुख स्कोर 220 मार्क्स बट फेल्ड द एग्जाम बाय 11 मार्क्स। तो पासिंग मार्क क्या है, शाहरुख के कितने नंबर आए हैं, 220 है, और वो 11 नंबर से फेल हो गया। What does that mean? If he would have scored 11 more marks, then he would have passed. That means the passing marks are 220 plus 11. That is 231. तो भैया 33% of the total marks is equal to 231. Passing marks, passing percentage, है ना। तो 100% of the total marks will be how much? More than 231 or less than 231? More, no? तो मुंह से जो आवाज निकले मोर, तो मोर बाय लेस करो LHS पे। तो 100/33 इंटू 231। ये 7 से डायरेक्ट जाता है यार, ये 700 आंसर आ जाएगा आपका, परफेक्ट। किसी ने आंसर किया भी है, अरे वाह, इतने सारे लोगों ने कर दिया इतनी देर में, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, करेक्ट। जूही, चामरॉय, राधु, मयंक गड़बड़ कर गया है ना, 1/3 ले लिया मयंक ने, है ना। सलिल करेक्ट है, अमित करेक्ट है, यस करेक्ट अमित, संजना, श्रेया, सौंदर्या, रैना, तेजमाला। ये किसका 5C 690 बता नहीं रहा है यार, कोई अपना नाम नहीं लिख रहा, गलत है ना। फरीन करेक्ट है, निधि करेक्ट, लाखों करेक्ट। अरे शाबाश, लो जी कर लो फिर ये वाला क्वेश्चन। शाहरुख को अकेला क्या करेगा भाई, सलमान भी तो है ना, देखो। ये फिर देखो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर्स का।
चलो जी देखते हैं इसको भी। In an examination, Salman scored 23% of the total marks but failed by 36 marks. तो let total marks be equal to x, है ना? तो अब देखा जाए तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे भाई? सलमान के अनुसार सलमान हैज स्कोर्ड हाउ मच? 23% ऑफ एक्स और फेल हो गया 36 मार्क्स से, मतलब उसको 36 मार्क्स और मिल जाए ना, 36 मार्क्स और स्कोर कर लेता तो पास हो जाता। अब उसी एग्जाम में जो विक्की भैया हैं उन्होंने 35% मार्क्स लिए, ऑलराइट। सो मार्क्स स्कोर्ड बाय विक्की इज 35% ऑफ टोटल मार्क्स एंड ही पास्ड बाय 48 मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स से उसके 48 मार्क्स ज्यादा आए हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब इसके मार्क्स में से अगर मैं 48 मार्क्स निकाल दूं तो क्या होगा? तब पासिंग मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना? बन गई जी इक्वेशन। 35% माइनस 23% इज 12% ऑफ एक्स। इसका कलर चेंज करते हैं यार को। सो 35% एक्स माइनस 23% एक्स क्या बन गया? 12% एक्स, करेक्ट। ये उधर चला गया, वो इधर आ गया, तो 36 प्लस 48 कितना हो गया? 84। तो अगर 12% जो है वो टोटल मार्क्स का 12% अगर 84 है तो भाई 100% कितना होगा? 84 से तो ज्यादा ही होगा ना, तो भाई ज्यादा बटा कम इंटू 84। ये देखो ना, ये तो वैल्यू यहां पर कैंसिल भी हो रही है। 12 7 जा 84, फिर आ गया ना 700 दोबारा घूम फिर के। सच इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन सीसैट में इजी आते हैं भाई, डराने के लिए थोड़ा घुमा फिरा देते हैं और कुछ भी नहीं करते। करेक्ट करेक्ट, यू पीपल गॉट दिस करेक्ट, शाबाश। अरे भैया देखो तो सही, 5 सेकंड में आंसर चाहिए, 5 सेकंड में, 5-10 सेकंड में, चलो 5-10 सेकंड में आंसर चाहिए, जल्दी। आंसर नहीं पहुंचे अभी तक, जल्दी करो। चलो मैं ही कर देता हूं फिर। इंक्रीज कितना है? 25%। रिडक्शन कितनी है? 20%। जोड़ा याद है? आखिर 0। अच्छा, अगर नहीं अभी भी समझ में आ रहा कि ये जोड़ा कैसे काम कर रहा है, तो एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ आर्टिकल ले लेते हैं 100, ठीक है। तो पहले तो 20% घटाना है इसमें, तो 100 का 20% 20 होता है, 80 आ गया। अब इस पे 25% बढ़ाना है, मतलब 1/4। 80 का 1/4 कितना होता है? 20। तो वही 20 रुपीज आपने यहां पे बढ़ा दिए, वापस आ गया ना 100 रुपए पे। मतलब यहां से यहां तक चेंज कितना हुआ? 0% चेंज है भाई। गॉट दिस? परफेक्ट। ये देखो आया था ना एक इसमें 2021 में। अब 2022 में द पर्सन हु मेड सीसैट पेपर, ही डिडंट नो मच। I mean, as far as, I mean, obviously, due respect to him, very intelligent guy, but he just modified this question a bit. That's what I want to say. ये देखो 2022 में क्या आ गया, कौन सी तोप चल गई बताओ?
बस हो गया। तो फर्स्ट इंक्रीज है 25%, उसके बाद में डिक्रीज है 20%, तो ये तो पहले आ गया 0%, है ना। अगेन इंक्रीज बाय 10%, वही तो 10% इंक्रीज है तो 10% ही तो आएगा। ये क्वेश्चन आया है, देखो सीसैट का क्वेश्चन है। पिछला 2021 का था, ये 2022 का। ओके। अच्छा एक और बात बताऊं, यहां पे ना यू कुड हैव यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, वो भी यूज करके देख लो, ठीक है ना। पहले रिडक्शन है 20 की एंड देन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25, सो -20 इंटू 25, फिर वही बात है ना, 25 जा और ये 5 जा, करेक्ट। तो -20 प्लस 25 इज 5, -5 आ गया ना 0। तो ऐसे करो या चाहे वैसे करो, दोनों ही तरीकों से आंसर वही आएगा। अच्छा देखो यार, मैं यहां पर मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं थोड़ी, है ना। तुम घबरा रहे हो क्योंकि बड़ा स्ट्रेट लिखा हुआ है। When 70% of a number x stop, the problem is that you go on reading the statement without working on the statement. कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? पहले इतना करो, 70% ऑफ नंबर कैसे लिखते हैं? 0.7x लिखते हैं जी, है ना। आगे क्या बोल रहा है? इज एडेड टू, तो प्लस अनदर नंबर y ऐड कर दो, द सम बिकम्स मतलब इक्वल टू 165% of the value of y. So this is equal to 1.65 times y. बन गया, कहां प्रॉब्लम है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये y उधर लेकर गए आप, तो 0.7x इज इक्वल टू 0.65y। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाई x बाय वाई इज इक्वल टू 0.65 बाय 0.7। 0.7 को 0.70 भी तो लिख सकते हो भाई, कहां प्रॉब्लम है लाइफ में? उसमें एक रिलेशन तो ये मिल गया। अब आगे चलते हैं। When 60% of the number x, that is nothing but 0.6x, is added to another number z, then the sum becomes 165% of the value of z, 1.65 z. So 0.6x is equal to z, उधर लेकर जाओ 0.65 z, तो यहां पर मैं कह सकता हूं x by z is equal to 0.65 by 0.60। और तीनों की वैल्यूज डाल दें जरा यहां पर, x, y और z, यही वैल्यू चल रहा था, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है? दोनों में देखो ना x क्या है, 0.65, दोनों में ही कॉमन है 0.65, और उस हिसाब से y क्या बन रहा है 0.70, और z क्या बन रहा है 0.60। सो क्लियरली z here is less than x which is less than y। एक बार चॉइसेस तो देख लो, z is less than x less than y, कुछ भी नहीं करना था इसमें, बताओ आप देखो तो सही, कुछ भी नहीं करना था। लेकिन थोड़ा थोड़ा पार्ट पकड़कर यू स्टार्ट कन्वर्टिंग इन इनटू मैथमेटिकल नोटेशन ना, उस पे पेन चल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद कुछ होगा, ऐसे थोड़ा ना होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में पहले इंफॉर्मेशन यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर, देन अगेन यू विल गो बैक टू द क्वेश्चन एंड रीड इट, देन रीड इट, पढ़ते जाओ, टाइम वेस्ट। ये लो, okay, now here let me just interrupt here because I would like to solve it along with you। तो यहां पे
कहा जा रहा है टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट। तो जो फाइंड करना होता है वो एक्स होता है। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स in the voters list be equal to x। ठीक है ना, तो यहां पर वो कह रहा है, अब वापस जाओ, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। ठीक है ना, तो कितनों ने कास्ट किया, वोट्स casted is 0.8x। देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, तो सबको जो वोट पड़े वो काउंट हुए। देयर वाज नो नोटा, नन ऑफ द अबव ओपिनियन। तो इसलिए जिसने वोट डाला उनको एक्स और वाई में से एक को वोट डालना ही पड़ा, किसी ने ये नहीं कहा कि नन ऑफ द टू। ना एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट्स कास्ट। अब एक काम करते हैं, ये 0.8x है ना यार, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है ना, दीज आर द वोट्स कास्ट। अब x गॉट 56% ऑफ दिस, है ना, तो अगर ये 100 है ना, तो भाई x, मिस्टर x को कितने मिले, 56%। तो फिर मिस्टर y को कितने मिलेंगे। अरे यार मैंने यार ये यूज कर लिया, एक काम करो ना, इसको हटा देता, क्योंकि ये डबल डबल हो गया। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट वी कर देते हैं, है ना। सो वोट्स कास्ट इज 0.8v, है ना, और कास्ट है तो इसको हम सी कर देते हैं, वोट्स कास्ट सी कास्ट। चलो, तो अगर x को 56% मिले तो y को बचे हुए 44% मिले होंगे ऑफ वोट्स कास्ट, ऑफ वोट्स कास्ट। ठीक है ना, एंड x वन बाय 1440 वोट्स, तो 1440 वोट से जो जीता है। तो पहले तो यहां पर ये डिफरेंस देखो कितना है, परसेंटेज में कितना उसने जीता है भाई, 12% ऑफ वोट्स कास्ट, 56% माइनस 44%, है ना। तो इनके वोट्स में डिफरेंस जो है परसेंटेज के माध्यम से कितना हुआ, 12%। और ये एक्चुअली में दिया कितना गया है वोट्स के माध्यम से, 1440। सो 12% ऑफ वोट्स कास्ट मस्ट बी इक्वल टू 1440। तो भाई 100% ऑफ वोट्स कास्ट विल बी हाउ मच, 100/12। देखो तुम्हारी मदद कर रहा है वो, कितना इजी उसने नंबर्स दिए, 12 और 144। ठीक है ना, काटो यार इसको, तो कितना आ गया, 12,000। होल्ड ऑन, 12,000 दिख रहा है, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। तो ये 12,000 है क्या, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। इतने वोट्स डाले गए, इतने वोट्स पड़े, है ना, और हैं कितने ये 0.8 टाइम्स हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट। तो चाहिए क्या आपने को, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट। सो वी इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट, दैट विल बिकम इक्वल टू 12,000 by 0.8। काम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, इसको 8 करते हैं और इसका 0 बढ़ाते हैं, है ना। तो 8, इसको काटो जरा, 8 1 जा 8, 40 बचा 15। तो ये है जी स्टोरी। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट है 15,000, 15,000, आउट ऑफ विच ओनली 80% वोटेड, सो 12,000 वोटेड। उन 12,000 में से 56% x को मिला और 44% ऑब्वियसली y को मिलेगा, एंड x वन बाय 1440 वोट्स। ओके, तो ये है पूरी स्टोरी इसकी।
तो CSAT 2022 का सवाल है भाई, परसेंटेज पे इफ एट ऑल यू गेट अ क्वेश्चन, नेवर लीव इट, नेवर एवर लीव इट। ये देखो CSAT 2021 का क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो यार तो पता होना चाहिए। 3/4 हो गया 75%, ये तो ग्रेटर देन 100% होगा। न्यूमिनेटर here is greater than the denominator, so it is greater than 100%, है ना। 2/3 66.66% होता है। 4/7 मैंने आपको सिखाया था कि you have to double the numerator, it becomes 8, तो 7 into 8 कितना हो गया 56, डबल 1.12, तो करेक्ट आ जाएगा 57.12%। दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। बस हो गया। ऑलराइट, सो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं आता है, तब यू विल बी इन सूप while solving such questions. You will obviously take more time अगर solve हो भी गया तो। Okay, so let me just take up another topic, which is a follow-on for percentage, and that is profit and loss. एक ही बार एक क्वेश्चन आया, but then so be it. We don't know how many questions may appear from how many topics, how many so ever topics. So a quick recap, you people must be, knowing from your early classes what is selling price, what is cost price, what is profit, what is loss, all these things you know, correct? So selling price is the price at which an item is sold, and cost price is the price at which an item is bought, okay? And profit is when selling price is more than cost price. अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी 120 की बेच दी तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए पे 20 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 20/100, 20%। If the selling price is less than cost price, then in that case you will make loss. 100 रुपए की चीज खरीदी 80 रुपए में बेच दी, मतलब 20 रुपए का लॉस किया। कितने पे? 100 रुपए पे, 20% का लॉस। ओके, तो यहां पर मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड, चलो मैं वो आगे बताता हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले ये देख लो तुम। तो कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, सेलिंग प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, प्रॉफिट इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, प्रॉफिट इज मेड, एसपी माइनस सीपी, एंड इफ एसपी इज लेस देन सीपी देन लॉस इज मेड, राइट? सीपी माइनस एसपी। अब चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट परसेंट इज द प्रॉफिट मेड ऑन ₹100, it is always calculated on CP. Loss percent is made on 100, it is always calculated on CP. So profit or loss percent is equal to actual profit or loss by actual CP into 100. That's it. मार्क्ड प्राइस, कोई आइटम खरीदने के लिए जाते हो तो हमेशा उस पर लिखा होता है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। तो उसे मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, एमपी, मार्क्ड प्राइस, जो मार्क किया हुआ है उस पे, है ना, वो वाला मार्क्ड प्राइस। इट इज अ मैक्सिमम प्राइस जनरली प्रिंटेड ऑन द कवर ऑफ एन आर्टिकल एट विच एन आर्टिकल कैन बी सोल्ड, राइट? तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अभी इससे ज्यादा पैसे आपके देने बनते नहीं है, नेगोशिएबल होता है ये, ठीक है ना। ये किसी भी आर्टिकल के कवर पे लिखा होता है, आप जानते ही हैं। डिस्काउंट मांगते ही हम जिंदगी में, हमेशा इसी पे तो जी रहे हैं। सो व्हेनेवर यू गो टू बाय एन आर्टिकल, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर डिस्काउंट, इट इज योर राइट ऑल्सो, है ना। इन जागो ग्राहक जागो कैंपेन, this has been highlighted as well. So discount is the amount that is reduced by the seller while selling the article, and discount person is always calculated on the marked price. Marked price पे होता है हमेशा डिस्काउंट।
ठीक है, ओके। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट्स। सक्सेसिव, एक के बाद एक, लगातार, है ना, वन आफ्टर द अदर। So on the marked price of an article, if first R1% discount is offered, then after deducting the discount on the remaining money, another R2% discount is offered and so on, then R1% and R2% are called successive discounts, एक के बाद एक दिए जाने वाले discounts। अब देखो यहां पर मैं बताता हूं, मान लीजिए कि हम एक शर्ट खरीदने के लिए गए, तो एक दुकान पे लिखा हुआ था कि भाई 60% प्लस 40% ऑफ। ठीक है जी, तो 60% प्लस 40% तो 100% हो गया। 100% ऑफ मतलब फ्री का माल। फ्री मिलता है या कुछ दुनिया में? नहीं ना। तो बस यही तो सीखना है लाइफ के अंदर तुमने, फ्री कुछ नहीं मिलता भाई। तो मान लेते हैं दैट मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1000 रुपीज। ये है फर्स्ट डिस्काउंट और ये है सेकेंड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट्स एक के बाद एक लगेंगे, ऐसे नहीं होगा कि इकट्ठे 100% लगा दोगे तुम। ओके, सो फर्स्ट डिस्काउंट 1 इज अप्लाइड, दैट इज 60%। कितना होता है 60%? 600 होता है जी, है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 400। अब इस 400 पे second discount will be applied. So this 40% is not on 1000 rupees, it is on 400 rupees. कितना होता है? 4 4 जा 16, so minus 160. ये क्या है? 240. So what is this? This is the selling price of the article. 1000 रुपए की शर्ट हम 240 रुपए में खरीद कर लेकर आए। तो देखा जाए तो यहां पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट or a single discount equal to successive discounts of 60% plus 40%। ऑलराइट, कितना होएगा? सक्सेसिव डिस्काउंट है 60% और 40% का, लेकिन एक ही डिस्काउंट अगर उसने देना होता तो आपको कितना देता भाई? यार देखो ना, 1000 रुपए की आइटम हमें 240 रुपए में मिली है, इसका मतलब कितना लेस हुआ है? 760 रुपीज कम हुआ है ना। 760 रुपए कम हुआ कितने पे? कितने पे? 1000 पे। एक एक जीरो दोनों का काट दो तो 76 और 100। तो एक डिस्काउंट जो हमें यहां पर अगर वो 76% का दे देता, तो वो इतना ही होता, 60% प्लस 40%। ठीक है जी। अब 60% प्लस 40% बड़ा लगता है, कई लोगों को लगता है 100%, इसलिए वो शॉप में घुस जाते हैं। ये बड़ा डिस्काउंट है यार, नंबर भी बड़े बड़े हैं, है ना। लेकिन हाँ डिस्काउंट मिलता है, लेकिन यार डिस्काउंट की चीजें ऐसी होती है, मतलब या तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर प्राइस बढ़ा के टैग लगा देते हैं, फिर उतना ही घटा के जितने में वो पहले था उतने में बेच देते हैं। यार नुकसान कोई क्यों करेगा, अपनी जेब से कोई कुछ नहीं देता। ठीक है ना। एंड क्वालिटी ऑलवेज कम्स एट अ कॉस्ट, प्लीज नो दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और फॉर्मूला है जी, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, A इज इक्वल टू 1 प्लस मोर परसेंट या 1 माइनस लेस परसेंट टाइम्स B, यही था ना। तो इसी तर्ज पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर 1 माइनस लॉस परसेंट टाइम्स CP। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
This means that selling price actually is nothing but it is marked price into 1 minus discount percent. देखो ना यार, डिस्काउंट परसेंट कितना है? 76%, है ना? तो 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 1 तो 100% होता ना, या तो 1 को 100% लिख दो, या 1 को 1 रहने दो और 76% को 0.76 कर दो, है ना? तो 1 माइनस 0.76 कितना हो गया? 0.24. 0.24 मल्टीप्लाइड विद मार्क्ड प्राइस 1000 is 240. That is your selling price. Okay, and this is also equal to, as you see, this one, ये वाला, and that is 1 plus profit percent or minus loss percent times CP. So this is also giving you a relationship. This is also giving you a relationship between marked price and cost price. Marked price and cost price. ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रख लिया, इसे लिख लीजिए कि जो भी 3 चीजें यहां पर मैंने लिखी हैं, प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज नोट दीज डाउन, प्लीज नोट दीज डाउन, अभी के अभी। नोट डाउन कर लिया तो सिग्नल दो भाई। डन, डनाडन डन। ऑलराइट, आई बिलीव यू मस्ट हैव नोटेड डाउन, है ना? अब ये तो मैंने बता ही दिया आपको, दिस इज अ फॉर्मूला। तो इसके लिए फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है ना वो लिखी हुई है। देखो, प्रॉफिट अगर 20% है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 1.2 टाइम्स सीपी। 1.2 क्या होता है भाई? 20% क्या होता है? 1/5। तो 120% कितना होगा? 6/5। बस ये वैल्यूज लिखिए, ठीक है ना? प्रॉफिट इज 20%, देन सेलिंग प्राइस इज 1.25 टाइम्स सीपी। अब 1.25 में मैंने आपको क्या कहा था, क्या देखना है? 1 पॉइंट के बाद में देखना है ना? 25% क्या होता है? 1/4। तो 125% क्या होगा? 5/4। 4 को ऊपर जोड़ दो, ठीक है ना? ऐसे ही 1.33 4/3 होगा, 1.4 7/5 होगा। अगर लॉस होता है तो लॉस इज 20%, 1 माइनस 0.2 0.8 80% 4/5। तो लॉस इज 25%, 1 माइनस 0.25 0.75 75% 3/4। 33.33% तो 0.67 बचेगा, 0.66 है ना? 66.67% 2/3। 40% लॉस है तो 60% बचेगा, है ना? दैट इज गोइंग टू बी 3/5, है ना? चलो भाई, तो ये यही वैल्यूज मैंने लिखी है मल्टीप्लायर्स के साथ में। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस टेबल, सेम थिंग। 25 1.25 सो 5/4, है ना? 20% सो 1.2 टाइम्स सो 6/5 एंड सो ऑन। इसे याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ देखने में कभी कभी देख लोगे तो कुछ परसेंटेज वैल्यूज और फ्रैक्शन कन्वर्जन जो है उनकी वो याद हो जाएंगी, तो वहां पर इजी रहेगा, थोड़ा समय बचेगा। ये जरा जल्दी से करना है, अभी बेसिक क्वेश्चंस है। इफ एन आइटम इज बॉट एट ₹1000, बॉट खरीदा है तो सीपी आ गया ये 1000। सोल्ड एट ₹1300 तो ये एसपी आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या आएगा? बच्चा सवाल है ये, स्टार्टिंग के लिए दे रहा हूं मैं, है ना? तो प्रॉफिट इज व्हाट? एसपी माइनस सीपी 1300
माइनस 1000, दैट इज 300। परसेंट में चाहिए उसको, तो प्रॉफिट परसेंट इज एक्चुअल प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है ना। तो ये गया यहां से, ये यहां से गया, 30% हो गया जी। तो बहुत आसान है। आइटम इज बॉट एट 500, तो सीपी दिया हुआ 500, सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ 20%, सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब ये पता ही है आपको कि यहां पर हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट क्यों लिखूं, प्रॉफिट परसेंट है जब यहां पे, तो इंटू सीपी, है ना। तो इट इज 1 प्लस 0.2 टाइम्स 500, 1.2 इंटू 500, 12 पंजे 60, तो सेलिंग प्राइस हैज टू बी 600। मुंह जबानी हो जाते हैं, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट ठीक है, मेरा फर्ज है, मुझे लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज आप तो यू कैन डू इट ओरली ऑल्सो। तो इफ एन आइटम इज सोल्ड एट रुपीज 1200, सेलिंग प्राइस क्या है, 1200 है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300, तो प्रॉफिट कितना है 300 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्रॉफिट 900। फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है एक्चुअल 300, कितने पे 900 सीपी पे, कितना परसेंट हो जाएगा 1/3, कितना होता है, इट इज 33.33%। इफ एन आइटम इज सोल्ड एट रुपीज 600, तो सेलिंग प्राइस क्या है 600 है, प्रॉफिट परसेंट क्या है 20% है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। अब लो भाई, फॉर्मूला तो तुम्हारे पास ही है, SP इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी, यही होगा ना, ठीक। निकालना क्या है, सीपी निकालना, तो सीपी इज इक्वल टू, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमको 600 बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज 20%, तो 1.2 आ गया, 12 पंजे 60, यार वही क्वेश्चन घुमा दिया, सिंपल है। चलो कुछ और देखते हैं पॉइंट्स जरा जो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़िए आंसर बताइए, इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। चलो जी शाबाश, बताओ। ऑल राइट, अब यहां पे सबने बड़ी गड़बड़ की है और मुझे बता भी नहीं रहा कि कौन कौन है। नहीं फरीन, नहीं मासूम, नहीं करण, नहीं चामरॉय,
यस वंशिका, यस संजना, यस सलल, नहीं अमित। अरे यार तुम लोगों ने बेसिक गलती कर दी। अ मैन सेल्स 2 books at ₹100 each. आपने अज्यूम किया दैट ही इज बाइंग 2 books at 100 each. अगर दो किताबें 100 रुपए में खरीद रहा है, एक किताब 100 में खरीदी, दूसरी भी 100 में खरीदी, एक पे 10% प्रॉफिट, एक पे 10% नुकसान, तो 100 रुपए पे 10 रुपए आया, 10 रुपए गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, खरीदी, कॉस्ट प्राइस। बट एक किताब 100 रुपए में बेची और दूसरी भी 100 रुपए में बेची, सो ही इज सेलिंग दीज। ओके, तो अब इसका बड़ा शॉर्ट चीज है, याद रखिए। इफ एट ऑल यहां पर देखिए, मैं आपको बताता हूं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 articles इज द सेम and the profit earned on selling one article is X% and loss made on selling the second article is X%. एक पे X% प्रॉफिट हुआ है, एक पे X% लॉस हुआ है जी, सेम XX, सेम फिगर्स वाला, देन इन सच अ केस ऑलवेज लॉस इज मेड। याद रखना, ये बात याद रख लो, ऑलवेज लॉस ही होगा, है ना। और वो लॉस कितना होगा जी? x² / 100%। तो इस क्वेश्चन में क्या है? 10% लॉस और यहां पर 10% प्रॉफिट। 10 फिगर सेम है प्रॉफिट और लॉस की, है ना, फिगर सेम है ना। तो इट वुड बी 10² / 100, 100/100, 1% लॉस। अगर एक पे 25% प्रॉफिट होता और एक पे 25% लॉस होता, तब हमें क्या मिलता? 25² / 100, मतलब 625/100। इसका मतलब 6.25% का लॉस होगा, लॉस ही होगा हमेशा, याद रख लेना। ठीक है जी। अच्छा, इसको चाहो तो उससे भी कर सकते हो, देखो x + y + xy/100 से भी कर दो, कोई बात नहीं। देखो 10 यहां पर 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस है, -10 × 10/100, वही तो बात हुई। 10 - 10 गया, ये माइनस है ना, गोज बाय 1, -1% आता रहा, माइनस का मतलब लॉस हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये पॉइंट तो याद रखना हमेशा की लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा? x² / 100 होगा जी। चलो, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 20%, 25%। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, किताबें देंगी फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं है। 100 रुपए पे करो ना यार, ठीक है ना। पहला डिस्काउंट कितना है? 20%, मतलब 20 रुपए घटाओ, कितना आ गया? 80 रुपए, है ना। दूसरा कितना है? 25%, 25% कितना होता है फिर? 20 रुपए, तो कितना हो गया? -20, कितना हुआ? 60। तो इसका मतलब यहां पर कितना आएगा? 100 में से 60 गया, 40% आपको यहां पर डिस्काउंट मिलेगा। लेट मी जस्ट मेक करेक्शंस है। हाँ, क्या हुआ? चॉइस डी कहां गई इसकी? उड़ गई? चलो कोई बात नहीं, नहीं लगा लो। इतना शोर क्यों मचा रहा है ये?
हो, ये क्या हो गया अब? गई कहां वो? कहां की थी डाउनलोड? डाउनलोड्स में एकदम ऊपर वाला ही है। हाँ ये है ना। खतरनाक हो गया तो बहुत। ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, -20 -25 प्लस 20 इंटू 25 बाय 100। वो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये 5 है, तो -45 प्लस 5 कितना हो गया? -40%। माइनस का मतलब डिस्काउंट है। ठीक है जी, ये आ गया आंसर आपका। सीसैट 2021 का क्वेश्चन है, एक्चुअली इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो ये एक्चुअली बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and special pencils of the same quality from the same store. Jay bought 3 pens and 5 pencils, and Vijay bought 2 pens and 7 pencils. अब ये लिखा हुआ है इसमें that they have spent an equal amount of money. दोनों ने इक्वल पैसे खर्च किए, तो ये देखो मैंने इक्वल कर दिया इसको, ठीक है ना। Which of the following is correct? Now let us find out. 3 pen minus 2 pen, pen, है ना। 7 minus 5, 2. Price of 1 pen is double or twice the price of a pencil. ये दिया हुआ है, price of a pen is 2 times the price of a pencil. तो ढूंढने पड़ते हैं भाई, आसान सवाल मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2021 का ही है, 2 साल पहले का ही पेपर है, ठीक है ना। ये वाला सॉल्व करो चलो, सीसैट 2020 का क्वेश्चन है। चलो यही क्वेश्चन एक बार बस पूछा गया, वो जय विजय वाला क्वेश्चन जो है वो तो तुम समझ लो कि रेशियो का क्वेश्चन है या जनरल क्वेश्चन है। वो तो ये बताओ, दो बात बने।
अच्छा, सभी का दिया गया, ऐसे कैसे हो सकता है यार? कोई नहीं फंसा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना? हाँ, तो मासूम का गलत हो गया, एक तो मिला, बाकी सबके करेक्ट है। अरे वाह भी वाह, वेरी गुड है ये तो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक इंसान का गलत होगा, बहुतों के होने चाहिए थे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि यूजुअली ऐसी गलती कर ही देते हैं। अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 लाख, तो क्या है ये? दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%. हाउ मच ही स्पेंड टू बाय, बाय मतलब कॉस्ट प्राइस, ये निकालना है। तो बस जी बस, ये फॉर्मूला लगाइए, स्पेलिंग सॉरी एसपी इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस परसेंट इंटू सीपी। तो सीपी यहां पे क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस दिया हुआ ना आपको, कितना है? 3 लाख बाय 1 माइनस लॉस परसेंट, लॉस परसेंट तो 1 माइनस 0.2, 0.8 करो, इसको हटा के एक जीरो बढ़ा दो यहां पे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 10। तो भाई यहां पे कर लो, 8 3 जा 24, 60 है, 8 7 जा 56, 40 है, 5 आ गया, लीजिए। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसमें यूजुअली अभी जैसे मासूम से भी हो गया कि 3 लाख का 20% ले लिया आपने। 3 लाख का कैसे ले सकते हो बेटा? वो तो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का लेते हैं ना। लॉस या प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होता है ना, सेलिंग प्राइस पे तो नहीं होता। गॉट इट? चलो, गुड इनफ। तो बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता चल गए। नाउ आई वुड लाइक टू टेक अप सिंपल इंटरेस्ट एंड maybe for the first time I think there was a question which was asked on compound interest in 2023. So as I have told you, you cannot afford to leave out any topic. Any kind of a question can be asked on any topic. Any number of questions can be asked on any topic. All right. So give equal weightage to all the topics. ठीक है जी? सिंपल इंटरेस्ट तो सबको पता ही है यार, PTR by 100 या PRT by 100, जो मर्जी बोलो, है ना? और अमाउंट यू नो इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, खत्म, बस इतना ही है। इट्स डैम सिंपल। बस घुमा दो इसको जितना घुमाना है आपने, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रिंसिपल इज द सम ऑफ मनी विच इज बोरोड बाय अ पर्सन और टेकन ऑन लोन एंड इज इन्वेस्टेड इन बैंक। टाइम पीरियड T is the duration for which a particular sum of money is given on loan. और R जो होता है वो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंट रेट विच इज चार्ज एज इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट होता क्या है? When a person takes a loan or borrows money from another person or a financial institution like bank, he has to pay them an extra amount, all right, on the loan amount. Now this extra money paid is called interest on the principal sum. भाई यही तो बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट होता है, नहीं तो वो तुमको लोन क्यों देंगे? किसी से तुम लोन मांगने जाओगे तो पूछेगा भाई साहब आपको तो लोन मिल गया, आपका काम हो जाएगा, है ना, मेरा क्या इंटरेस्ट, मुझे क्या मिला, है ना? सो दैट इज एग्जैक्टली वेयर यू विल पे हिम सम एक्स्ट्रा अमाउंट और एक्स्ट्रा मनी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, है ना? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट कितना इंटरेस्टिंग है। ओके चलो भाई, जरा समझो सिंपल इंटरेस्ट को, विच इज चार्ज्ड ओनली ऑन द प्रिंसिपल सम फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। SI, simple interest charged on principal sum for a given number of years, will always be the same each year. It will be same, equal. समझे आप? और ये है SI, PTR by 100. That is how it is. Simple interest is PTR by 100, हमें पता ही है, और अमाउंट भी जानते ही हो, इट इज अ सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी आ गया।
चलो बताओ जल्दी। जल्दी बताइए चलिए। भाई ₹1000 क्या है? प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। 5 इयर्स है तो ये टाइम है, बस कह रहा है हाउ मच इंटरेस्ट। अब एक बात याद रखना, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट विच इज पेड इज द सेम ईच ईयर, है ना, इक्वल ईच ईयर। तो एनी हाउ यहां पर सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा, PTR बाय 100, बेसिक याद रखिए, 1000 इंटू 10 इंटू 5 बाय 100 हटाइए, है ना, कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। वही घुमा रहा हूं मैं। इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टी जो है वो मालूम करना है। ₹1000 P at 10% annual rate of simple interest be given as loan so that 1500, ये तो अमाउंट है, is obtained at the end of the period. So amount is what? Principal plus simple interest. So simple interest क्या हुआ? Amount minus principal, that is 1500 minus 1000. So it is equal to 500. तो अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाय 100, ये कितना है, 500 है, प्रिंसिपल 1000 है, टाइम पीरियड आपने निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे ही रखा है, हटाइए इसको, है ना, ये भी गया और ये यहां से गया, तो टाइम बच गया यहां पर 5 इयर्स। अब ये देखिए जरा, इस तरह के क्वेश्चंस बड़े एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, दे तो नहीं रखा, सर्टेन सम ऑफ मनी बोला, बताया नहीं कितना है, सो टेक इट एज P, it becomes 4 times itself, that is 4P in 20 years, time दे रखा, at simple interest find out the annual rate of interest। निकालना क्या है, निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जी, बस 2 ही फॉर्मूले हैं, चिंता नहीं करना है उसमें। तो अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या बन गया, 4 टाइम्स, तो ये बना 4P इज इक्वल टू P प्लस, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3P तो होगा, 4P इज इक्वल टू P प्लस वाट, P प्लस 3P। तो बस जी फॉर्मूला लगाइए, मौज बनाइए, देयर वी गो। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 3P, इट इज इक्वल टू P इंटू टाइम दे रखा है 20 ईयर्स, R बाय 100, डोंट वरी, P एंड P विल डेफिनेटली गेट कैंसल्ड, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो R इज 3 इंटू 5, दैट इज 15%। ये देखो, जादू देखा तुमने, आंसर आ गया, आया ना, ओके। कोशिश कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए।
The annual rate of simple interest on 5,000 rupees for the first 2 years is 5%, next 3 years is 6%, next 4 years is 8%. तो ये तो 3 सिंपल इंटरेस्ट बन गए, है ना. PTR by 100 में प्रिंसिपल इज द सेम 5,000, है ना. PTR by 100 प्रिंसिपल सेम है, डिवाइड बाय 100 सेम है. तो यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट टोटल आएगा दैट इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल बाय 100 into R1 T1 plus R2 T2 plus R3 T3. कॉमन ही तो लिया मैंने, 3 सिंपल इंटरेस्ट बन रहे हैं ना क्योंकि. ओके, सो टोटल इंटरेस्ट वी नीड टू फाइंड आउट. आओ जी निकालते हैं. 5,000 by 100 तो 2 into 5 है प्लस 3 into 6 है प्लस 4 into 8 है. हो गया. तो ये है 10 plus 18 plus 12, नहीं 32, 50 60 हो गया ना ये. 50 into 60 3,000 मिल गया अभी. That's how it goes. चलो एक बार कोशिश करो इसको. जस्ट ट्राई योरसेल्फ. भाई अब तक तो हो जाना चाहिए था ये. देखो भैया, एक पर्सन ने 7,000 रुपीज इन्वेस्ट किए. ही इन्वेस्टेड अ पार्ट ऑफ इट एट 6% पर एनम. तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है मान लीजिए, एंड द रिमेनिंग मनी एट 4%. तो ये 4% है. ऑलराइट. If he receives rupees 1,600 as a total simple interest after 5 years, how much money did he invest at 6% per annum? ये फाइंड आउट करना ना. तो भाई प्रिंसिपल यहां पर P हो गया, तो यहां पर कितना हो गया? ऑब्वियसली 7,000 माइनस P. ये फाइंड आउट करना P. ओके यार, ये तो बड़ा सिंपल है. आप इसको थोड़ा ज्यादा ही लंबा बना दिया. देखें जरा. तो जो सिंपल इंटरेस्ट आपको टोटल चाहिए
दैट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड एट 6% प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड एट 4%. यही हुआ ना भाई? दिस इज व्हाट इट विल बी. इट्स ऑलरेडी गिवन टू यू हियर. He receives rupees 1600 as the total simple interest, है ना? तो ये कितना होगा? 1600. तो 6% पे कितना मिला होगा उसको? PTR by 100, P तो P है, इंटू टाइम 5 इंटू R by 100 प्लस, अब यहां पर प्रिंसिपल क्या है? 7000 माइनस P इंटू 5 years इंटू 4 बाय 100. यही तो होगा. तो थोड़ी सी कटिंग कर दो, इसके अंदर 5 कॉमन है ना, थोड़ी सी कटिंग कर दो. तो ये कितना हो गया? 20. इसे 3 ले लो, इसे 10 ले लो, ये भी 20. अब ध्यान से देखो, इसको 2 ले रहा हूं, इसको 10 ले रहा हूं. अब वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप द डिनोमिनेटर सेम. एलसीएम ले लिया ना यार, फालतू में उसको 1/5 करिए, फिर दोबारा एलसीएम लोगे, 2 बार करोगे, क्या फायदा? ओके, सो ये यहां पर क्या आ गया? 3p प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करो, 14,000 माइनस 2p बाय 10, ये इधर चला जाएगा. तो ये बन गया जी 16,000. 3p माइनस p, p होता है 14,000, इधर आ गया, is equal to P and P is equal to 2000. तो भी 2000 रुपए लगाए थे उसने 6% पे और बाकी 5,000 4%. बहुत कम है. बैंक भी इतने दे रहा है आजकल वैसे तो. चलो जी, बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, अब पता क्या होता है इसमें ना, डिफरेंस क्या है एक बार देखिए जरा. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए, जैसे मैं यहां सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूं, यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा हूं. ओके, तो दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल मैं ले रहा हूं 1000 रुपीज. ठीक है, तो बैंक में दिया मैंने, एक बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया, एक पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया. ओके, सो लेट अस सी. रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन रख रहा हूं दोनों के लिए 10%, दोनों में ही 10%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. अब हाउ मच विल आई गेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर? भाई यहां पे 10% मतलब 100 रुपए, यहां पे भी 10% मतलब 100 रुपए. तो यहां कितना अमाउंट बन जाएगा मेरा? 1100. और यहां कितना बन जाएगा? 1100. तो एक बात याद रखना कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल. ओके, ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट गिव इट टू यू. At the end of the first year, the simple interest and compound interest obtained on a sum P at R% is always equal at the end of the first year. At the end of the first year, simple interest और compound interest जो भी होता है, same principle पे obviously and same rate of interest पे, it will always be equal. तो फर्स्ट ईयर में तो कोई डिफरेंस दिखा ही नहीं. अब बात करूं मैं सेकेंड ईयर की. अब ये आपको याद रखना है जी, बहुत जरूरी है ये याद रखना, that rate of interest here is 10%, but simple interest will be same every year. हर साल 100 रुपए लगेंगे यहां पर. तो यहां पर फिर आ गया 100 रुपए. अमाउंट कितना मिला? 1200. बट यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में
इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड। ओके, तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, है ना। तो यहां पर बेसिकली 100 रुपीज तो होना ही था, 10% ऑन 1000। अब इसका भी 10% और जोड़ लीजिए, जो कि कितना हो गया 10 रुपीज। 100 का 10%, इंटरेस्ट है 100, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, 100 रुपीज पे 10%, 10 रुपीज। तो यहां पर 110 रुपए जुड़ेगा जी। यहां पर मिलेगा आपको 1210 रुपए, मिल गया 10 रुपए एक्स्ट्रा। ओके, तो थर्ड ईयर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। बताइए थर्ड ईयर में क्या हो रहा है भाई। यहां पर तो 100 रुपए ही मिलने वाला है। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट obtained, the amount obtained is 1300, amount obtained is 1300, 1000 रुपए का बन गया 1300 रुपए। और यहां कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या करना है, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या करना है भाई। सीधी बात आप ये समझें कि पिछले साल का जो अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसी का 10% लो, 121, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा 1331, 31 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 11 का क्यूब भी है, तो 11 क्यूब भी है, सही है ना। ठीक है जी, दैट्स हाउ इट गोस, क्वाइट सिंपल। तो यहां पर आपको 31 रुपए ज्यादा मिल गए, मौज हो गई यहां पे, है ना। तो दैट इज हाउ इट इज, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज मोर। ओके, और कहते हैं कि इट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग which has made many millionaires, billionaires and so on. तो इसमें प्रिंसिपल तो वही P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है। ओके, टाइम T ईयर से, कंपाउंड इंटरेस्ट CI है। इस बार A अमाउंट जो है वो बस ऐसे लिखा जाता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू T, और CI इज नथिंग बट एज यू कैन सी हियर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट है, पता ही है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सीधी बात। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी। हेलो, अरे ये तो कर ही लिया ना हमने, 1210 आएगा, है ना। तो मेरे को इसका बताओ ना, प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, ओके, टाइम पीरियड इज 2 years, है ना। व्हाट विल बी द अमाउंट, कितना पैसा मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा पैसा। रुको 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 रुको, रुक जाओ, गलती कर रहे हो। अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100, बता रहा हूं क्या गलती कर रहे हो तुम, पक्का कर रहे हो गलती, आई एम श्योर, है ना। दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 रेज टू 2। अब तुम ये 8 और 100 को काट रहे हो, 4 2 8 और नीचे 25, मत करो, है ना। ऐसे लिखो इसको, 1000 इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100। अब 108 का स्क्वायर निकालना तो आता होगा ना, कि नहीं आता है। लो मैं सिखा रहा हूं, 100 से ऊपर नंबर अगर है आसपास में, 100 से ऊपर नंबर है आसपास में, तो देखो इसका 100 से कितना डिफरेंस है, 8 का है, तो ये वापस जोड़ दो 116 और स्क्वायर ले लो 64। 108 माइनस 100, 8, वापस जोड़ दो 108 में, कितना हो गया 116, आगे इसी 8 का स्क्वायर 64। चलो एक और ट्रायल लेते हैं, 107 का स्क्वायर बताओ, 107 प्लस 7 114, आगे 7 का स्क्वायर 49। 106 का बताओ, 106 प्लस 6 112, आगे 6 का स्क्वायर 36। 109 का बताओ, 109 प्लस 9 118, आगे 9 का स्क्वायर 81, हो गया। तो इसलिए ये वाला मेथड ज्यादा आसान होता है, इन्हें हटाइए,
So this is 11664 by 10. So it should be 1166.4. This should be the amount. ठीक है, खैर जी, यहां बताओ। अरे वही हो गया, ये वही हो गया 116। लो जी, ये भी मैंने करा दी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करो उसको। On a sum of money in 2 years at a particular rate of annual simple interest, 800 is earned as a total interest. Total interest मिला है 800 रुपया 2 साल में, है ना? ये लो जी, ये है 800। अरे यार, कलर चेंज करते हैं यार, ऐसे नहीं चलेगा। 800 मिला है 2 साल में, तो मतलब हर साल कितना मिलेगा? बराबर बराबर ही तो मिलता है, 400 400। एंड फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल at the end of the first year, तो ये भी 400 आ गया। So if for the same money in 2 years at the same rate of interest, the total compound interest earned is 820. टोटल कितना मिला? 820। पहले साल में तो 400 मिला, तो दूसरे में कितना मिला? 420। मतलब कितना? 20 रुपए ज्यादा। ये 20 रुपए ज्यादा क्या है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, 400 रुपए पे इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा ना। So 20 rupees on 400, इसकी जरूरत तो है नहीं। 5% shall be the rate of interest. That is how it goes. Alright? तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी आप टेबल बना के कीजिए, ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाता है कंपैरिजन देना ना। रफ में कर लो, कोई इशू नहीं है, whichever way you are comfortable. Simple interest, compound interest, first year, second year, total. On a sum of money, पता नहीं कितना है, at 10% annual rate of interest. आहा, rate of interest तो इस बार दे रखा है जी 10%. Alright, 2 years ले लिया हमने। सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इज 4000। बहुत अच्छी बात है। अगर ये 4000 है तो इट मींस ईच ईयर द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड और अर्नड इज 2000 रुपीज। एंड इन द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी इक्वल। ओके, एंड वी वांट टू नो हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 10%। तो ये ईच ईयर 2000 तो होगा ही होगा, है ना, प्लस इसका 10%, that is 200. So in the second year compound interest will be 2200. So how much will be the total compound interest obtained? 4200. Hope this is clear. लीजिए सर, if the rate of interest is compounded half yearly, अभी तक पता क्या था? Rate of interest was always compounded annually. साल में एक बार लग रहा था, साल के एंड में, है ना। अब पता क्या हो रहा है? हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब साल में 2 बार, हर 6 मंथ्स के बाद। तो हाफ ईयरली अगर लगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे आधारित 2023 में क्वेश्चन आया है बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो अगर हाफ ईयरली लगता है तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो, R/2, और टाइम पीरियड को डबल कर दो।
ठीक है। और अगर क्वार्टरली लगता है, मतलब हर 3 महीने लगेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 कर दो और टाइम पीरियड को 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि 4 बार लगेगा। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। एक क्वेश्चन देखिए जरा, ऑन ₹10,000, हाँ ये तो आ गया प्रिंसिपल एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आ गया। कंपाउंडेड, कंपाउंडेड कैसे बताओ ना, तो या हाफ ईयरली, करेक्ट। ये लो, हाउ मच अमाउंट इन रुपीज विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते है ना। So amount this time is going to be principal into 1 plus r by 2 by 100 raised to 2t। ये कितना हो गया, 10,000 है ना। 1 plus 12 by 2 है 6 by 100 raised to, एक ही साल है ना, तो 2 into 1, 2 बार ही तो लगेगा 6 एक्सपेंस पे। अब फिर से कह रहा हूं, इसको कम मत करना, तुम्हें सिखा दिया ना ये तो। सो दिस इज गोइंग टू बी 10,000 into 106 by 100 into 106 by 100, सही है ना। ये देखिए, ये 2 जीरो यहां कटे, 2 जीरो यहां कट गए, तो 106 का स्क्वायर कितना होता है, 106 जमा 6 112, आगे 6 का स्क्वायर 36, 11,236 रुपए मिलेंगे, 11,236 रुपए। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, हाँ, और वो है ये कि प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम पीरियड है 1 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज एनुअल, हाफ ईयरली नहीं है, एनुअल है। कितना पैसा मिलेगा बताओ सर, कितना पैसा मिलेगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r by 100, इसमें तो r by 2 नहीं होगा ना, एनुअल है ना, रेज टू टी। सो दिस इज 10,000 into 1 plus 12 by 100 raised to 1. So this is 10,000 into 112 by 100, बस यही जाएगा, तो क्या मिलेगा 11,200। यहां कितना मिल रहा है 11,236, ये ज्यादा मिल रहा है ना, 36 रुपीज ज्यादा मिल रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहां भी 36 रुपीज चाहिए, हाँ यहां पर भी 36 रुपीज चाहिए, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से बढ़ाना पड़ेगा ना, और आगे करना पड़ेगा ना। तो वहां 12% है, लेकिन वो 2 बार लग रहा है ना, 6% करके। यहां पर जो 12% है एक ही बार लग रहा है, इसलिए मुझे अमाउंट कम मिल रहा है। तो 2 बार लगने से अमाउंट ज्यादा मिलेगा, है ना। तो ये 36 रुपए कम है, मुझे ये 36 रुपए चाहिए, तो क्या करूं, यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 12%, टू ऑब्टेन अमाउंट एज 11,236 ना, बड़ा चाहिए ना मुझे ऐसे। तो इसका मतलब अगर दोनों के अमाउंट्स इक्वल हैं, यहां भी 11,236 मिल रहा है, यहां पर भी 11,236 मिल रहा है ना। यहां पर क्या है ये हाफ ईयरली है ना, और ये क्या है एनुअल है। क्या है ये है हाफ ईयरली, और ये क्या है एनुअल है, ईयरली। तो ये है अमाउंट 11,236,
अगर मुझे 11,236 ही चाहिए तो इसका मतलब पक्की बात जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअल का वो हाफ ईयरली से ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा होगा तभी तो होगा। ये बात तो समझ में आ गई ना कि ज्यादा होगा तभी तो मिलेगा। 11,236 बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, ज्यादा पैसा चाहिए तो। बस जी यही बात जो है पूछी गई थी सीसैट 2023 में। अब जरा ध्यान से पढ़ो। अ प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest। तो हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R% है। If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually, है ना, with S% annual rate of interest, then which one of the following is correct? अच्छा याद है ना कि ये हाफ ईयरली जो है इसमें मुझे 11,236 मिले थे 12% पे। अगर ईयरली लेता तो 11,200 मिलता मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे, है ना। और अगर ईयरली लूं 11,236 चाहिए हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो 12% से ज्यादा होगा ना। देखो ना, यहां पर भी अमाउंट 11,236, यहां पर भी 11,236, ये भी क्यू, ये भी क्यू, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई कि ये जो आर है दिस हैज टू बी लेस देन एस, क्योंकि यहां पर जो एनुअल है वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बढ़ाना पड़ेगा अगर सेम अमाउंट चाहिए तो। ठीक है, तो बस ये प्रिंसिपल था, एक छोटा सा एक कंसेप्ट था जिस पर कि सीसैट में क्वेश्चन पूछ लिया गया। बस लिखने का तरीका और प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जी जो थोड़ी सी ना डरावनी और भयानक होती है। बस आपको पेशेंस रखकर उसको देखना है ना। एंड यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, दैट्स हाउ इट इज। तो ये थे जी वो क्वेश्चन हमारे भी, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट भी हुआ है .4 सो आज एवरेज किया है हमने और रेशियो, एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, विद अनदर टॉपिक दैट इज टाइम एंड वर्क। Okay, so what you got to understand here is, let us say there are two persons A and B, and A can complete a work in X days and B can complete the same work in Y days. Then together they will complete the work in XY by X plus Y days. So it is XY by X plus Y days. तो मान लेते हैं कि A एक काम को 15 दिन में करता है और B उसी काम को 20 दिन में करता है। तो इन दैट केस अगर दोनों के दोनों इकट्ठे काम कर रहे हो साथ मिलके तो इट विल बिकम 15 into 20 by 15 plus 20. तो दिस इज 15 into 20 by 35. 5 3 जा 7 जा, तो कह सकते हैं 600 by 7, 7 8 जा 56, 8 4 by 7 डेज में ए और बी दोनों मिला के काम करेंगे, खत्म। तो ये जनरल फॉर्मूला है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनी टू पर्सन्स व्हेन दे आर वर्किंग। नाउ also you got to understand that 1 day work of A is A1 which is 1 by X। तो अगर A यहां पर एक काम को 15 दिनों में कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हुआ उसका? 1 by 15, है ना। 10 दिन का काम कितना हुआ? 10 by 15। ठीक इसी तरह से B अगर कोई काम 20 दिनों में कर रहा है तो उसके एक दिन का काम कितना हुआ? 1 by 20। 10 दिनों का काम कितना हुआ?
10/20 यानी कि हाफ, और B0 का काम कितना हुआ 20/20 विच इज 1। पूरा वर्क हो गया ना B0 में। So similarly, 1 day work of B is 1/y, and together 1 day work कितना होगा 1/x plus 1/y, करेक्ट। अब यहीं पर देखो, इसको अगर आप रिजॉल्व करते हो तो क्या आता है x plus y by xy। Now what is this? This is 1 day work, ऑलराइट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस, है ना, दैट इज xy by x plus y days, इतने दिन लगेंगे। ध्यान से देखिए रेसिप्रोकल क्यों लेते हैं। अगर ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा इसका रेसिप्रोकल 1/15। अगर बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ 1/20। अब इसका उल्टा देखो, अगर कोई और व्यक्ति देता हूं मैं आपको सी, उसका एक दिन का काम 1/25 है, तो सी इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करता है reciprocal of this, that means C completes the work in 25 days. So this is what you have to understand. चले जी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। If A alone and B alone can complete a work in 10 days and 15 days respectively, then together they will complete the same work in how many days? अब दो तरीके हैं, एक तो आप जानते ही हैं xy by x plus y, तो 10 into 15 by 10 plus 15, इसको ऐसे ही रखिए, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई मत कीजिए, ओके। सो 5 2s are, and this is 5 5s are, again this is 5 3s are, so this is 6 days। जो सेकेंड मेथड है विच इज इंपॉर्टेंट वन इज what you got to adopt, and that is called LCM method। अब ध्यान से देखिए ये मेथड क्या है। A completes a work in 10 days and B completes the same work in 15 days। तो 10 और 15 का LCM निकाल लीजिए, कितना आएगा 15 2s are 30, ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है कि 10 into 3 is 30 and 15 into 2 is 30, ऑलराइट। सो ये मान के चलो कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और टोटल उनको काम कितना करना है 30 यूनिट्स। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 2 यूनिट काम करेगा, सो टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क डन इन 1 डे विल बी 5। तो इस 30 को डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दीजिए, सो यू गेट 6 डेज। दोबारा देखिए 10 into 3 is 30, 15 into 2 is 30, पहले एलसीएम निकाला, फिर आपने देखा मल्टीप्लायर्स क्या है, into 3 into 2, इसे प्लस कर दीजिए, बस सीधी सी बात है। और ये जो टोटल आपने एलसीएम निकाला है जस्ट डिवाइडेड बाय 5, you will get the total number of days in which A and B together can complete the work. Now this is important. Now look at this question please and try and solve this. Come on, hurry up. Solve कीजिए इसको। Come on, hurry up. I am waiting for your answers.
वेरी गुड करण, वेरी गुड सौंदर्य। अदर्स प्लीज हरी अप। अरे वाह, आ गए सबके आंसर्स। फरीन, महक, विनय, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। अब देखिए, ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द मेथड, द फॉर्मूला, एंड दैट इज एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, है ना। तो यहां वैल्यूज डालिए, 16 इंटू 24 बाई 16 प्लस 24। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई मत करना, इसे ऐसे ही पड़े रहने दीजिए ताकि यू कैन डू द कैंसलेशन ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। कितना आएगा? 8 2 जा 8 5 जा, so it is 48 by 5, 5 9 जा 45, 3 बचा, तो 5 6 जा 30, so 9.6 days। आपका आंसर आ गया चॉइस ए। और इसे एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे जी, बताइए। See, A can complete a work in 16 days, B can complete the same work in 24 days। एलसीएम निकालिए, बड़ा नंबर 24 है, इसका टेबल चलाइए, 24 2 जा 48, 16 से भाग होता है 48, आ गया। तो 16 into 3 is 48 and 24 into 2 is 48. So that means A does 3 units of work in a day and B does 2 units of work in a day, and together they have to complete 48 units of work. So 3 plus 2 कितना बन गया? 5। ये देखिए 48 डिवाइडेड बाय 5, सेम फिगर हमें यहां पर मिल जाती है। ओके, इस मेथड को प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि आगे 3 लोग भी हो सकते हैं, है ना, उसमें ये फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए, कम ऑन, हरी अप, ट्राई कीजिए, चलिए। वेरी गुड, सो आई थिंक यू गॉट दिस। अब यहां पर एक छोटा सा चेंज दे रहा हूं मैं, A and B working together can complete a work in 12 days. So what is given to you? इस बार A और B मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है।
और ए और बी में से एक की वर्किंग एफिशिएंसी दे रखी है, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, और बी अलोन की वर्किंग एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप चाहे तो पिछला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, लेकिन उसमें छोटा सा चेंज कर दें, एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई कर दें, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये दो फिगर्स में से जो ग्रेटर है उसे एक्स मान लें। तो अब क्या बन गया जी, 20 इंटू 12 बाय 20 माइनस 12। ओके, सो ये बन गया 20 इंटू 12 बाय 8। तो ये आया जी 4 3 जा 4 2 जा, और ये 10, कितना आ गया, 30 डेज आ गया। चॉइस डी आपका आंसर बन जाता है। और अब हम इसे करेंगे एलसीएम मेथड से। तो आप जानते हैं दैट ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, out of which A can complete the same work in 20 days. तो 12 और 20 इसका आप एलसीएम निकालिए, तो साफ साफ मालूम पड़ रहा है 60 होगा। ट्वेल्व 5 जा 60, 23 जा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए और बी दोनों का वर्किंग कैपेसिटी दिया हुआ है टुगेदर साथ में, और ए का अकेले का दे रखा है। अगर मैं ए एंड बी में से ए हटा दूं तो मेरे पास बी तो बचेगा। कहने का अर्थ यह है ए और बी दोनों मिलाकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, उसमें ए अकेला 3 यूनिट काम करता है, तो बी अकेला कितना काम करेगा एक दिन में, 5 माइनस 3 यानी 2। 60 को 2 से डिवाइड करें, डायरेक्टली आपको 30 मिलता है। क्लियर है? सो दिस मेथड शुड बी प्रेफर्ड ओवर द प्रीवियस वन। नाउ लुक एट दिस। अब ये भी कर सकते हो, जल्दी कीजिए। कमान इंप्रूव योर स्पीड। वेरी गुड, शाबाश करण, अदर्स शाबाश, हरी अप। अब देखिए भाई, फॉर्मूला तो मैंने आपको दे ही रखा है, एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई, है ना। तो मतलब 30 इंटू 18 बाय 30 माइनस 18। वैसे तो ये मन में कर लिया करो, लिखने की क्या जरूरत है। 30 इंटू 18 बाय 12। अब 6 से जाता है, 6 2 जा 6 3 जा, करेक्ट है। 2 से ये 30 भी जाता है, तो बचता क्या है, 15 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 45 डेज। तो ये तो हो गया फॉर्मूले से, लेकिन एलसीएम मेथड आना चाहिए, क्योंकि आगे एलसीएम मेथड का ही इस्तेमाल करना है आपने। लीजिए जी, तो एलसीएम मेथड में हमें ये पता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। तो 18 और 30 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 90 आएगा। तो ये हो गया 18 इंटू 5, ये हो गया 30 इंटू 3। अब फिर वही बात है, ए हटा दो, क्या बचेगा, बी बचेगा। तो अगर
ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं, जिसमें से ए अकेला 3 यूनिट काम करता है, तो बी कितना करेगा एक दिन में? 5 - 3 यानी कि 2। तो 90 को 2 से डिवाइड कीजिए, सीधा 45 आ गया जी। दैट्स इट। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए 3 लोग अगर हैं तो क्या करेंगे? नाउ दिस इज हाउ वी शैल अप्रोच दिस। अब इसके लिए भी फॉर्मूला तो दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा और इसमें एक्यूरेसी भी मारी जा सकती है। तो अगर 3 लोग हो तो एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। लेकिन ये छोड़ दो भाई, मैं भी इसका इस्तेमाल नहीं करता। सीधी बात, ए अलोन 10, बी अलोन 15, सी अलोन 20। इसका एलसीएम निकालिए, 60 आएगा। टेन इंटू 6, 15 इंटू 4, 20 इंटू 3। तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी 4 यूनिट और सी 3 यूनिट काम करता है। तो टोटल एक दिन में तीनों मिलाकर कितना काम करेंगे? 6 + 4 + 3, 13 यूनिट्स। सो इट शुड बी 60/13, 13 4 जा 52, 8/13। ये हमारा आंसर आना चाहिए। चॉइस डी। करण का आंसर तो आया है, बाकी को पता नहीं है। चले ट्राई कीजिए, कैसे करेंगे आप? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, एक बार मैं आपको बता देता हूं, आगे आप सॉल्व करना खुद ही। इसमें एक ना लाइन बना लो ऐसे, दिस इज वेयर द वर्क विल स्टार्ट एंड दिस इज वेयर द वर्क विल एंड। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, देखिए, ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज। तो ये आपको ए की वर्किंग एफिशिएंसी तो दे दी, ए इज इक्वल टू 15 days. He started working and after 5 days he left. तो लो जी, कहीं पर भी ऐसे एक मार्क लगाओ। ये है 5 डे का पीरियड। किसने काम किया यहां पर? ए ने काम किया, करेक्ट? तो व्हाट हैपेंड? आफ्टर 5 days ए लेफ्ट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय बी इन 20 days। तो ये ऊपर तो दिन आ जाएंगे। 20 days किसने काम किया? बी ने काम किया। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट? तो मतलब बी की वर्किंग एफिशिएंसी निकालनी है। ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, यहां से जो ऊपर लिखा है वो न्यूमरेटर में आएगा, नंबर ऑफ डेज, और नीचे जिस बंदे ने काम किया उसका नाम आएगा। मतलब 5/A प्लस यहां पर 20 दिन किसने काम किया है? बी ने काम किया है, और दोनों ने मिलाकर एक काम पूरा किया है। बस इतना आसान है। 5/A प्लस 20/B ओवर। ओके, अब इसमें से ए की तो वर्किंग एफिशिएंसी आपको दे रखी है, सो दिस शैल बिकम 5/15 प्लस 20/B विच इज इक्वल टू 1। 5/15 तो होता है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, 1/3, ठीक है ना? इस तरफ चला जाएगा
So 20 by B is equal to 1 minus 1 by 3, which is equal to 2 by 3. आइए देखिए, ये 2 और 20 कट गया 10 से, ये 10 मिला 3 से, तो इसका मतलब B alone will take 30 days to complete this work. Entire project, B alone. क्या बात है, वेरी गुड. करण, ज्योति, महक, फरीन, निकिता, पल्लवी, विनय, सबके आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. तो यहाँ पे समझ में आया तुमको, ये लाइन बनाने से ना थोड़ा काम आसान हो जाता है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और काम फास्ट भी हो जाता है और क्लैरिटी भी आती है. चलो इसी तरह से कोशिश करो ये वाला करने की, ट्राई करो. कम ऑन हरी आप, जल्दी कीजिए, शाबाश, स्पीड बढ़ाइए. चलिए देखते हैं यहां पर क्या करना है. अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय P in 20 days and the same software can be developed by Q in 25 days. अब Q worked alone for 10 days. चलो भाई लाइन बनाते हैं यहां पर. ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो ये लगा लेते हैं जी 10 दिन है. किसने काम किया? क्यू ने काम किया है ना. देन स्टॉप्ड वर्किंग, तो ये हटा दो भाई, क्यू को हटा दो यहां से. क्यू हट गया. नाउ इन हाउ मेनी मोर डेज विल P कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर. तो अब यहां पर P काम कर रहा है कितने दिन पता नहीं, यही तो निकालना है. तो X मान लो यार, क्या प्रॉब्लम है. मैथ्स में जो नहीं पता है या जो निकालना है वही तो X है. क्या बन गया ये 10 बाई Q प्लस X बाई P, दोनों ने मिलकर एक काम पूरा किया. अब Q और P दोनों के वर्किंग एफिशिएंसी आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा X. तो ये हो गया 10 बाय Q कितना है 25 प्लस X बाय P कितना है 20. दिस इज इक्वल टू 1. इसे काटिए जरा, 5 2 जा और 5 जा. तो X बाय 20 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 5, जो कि बनता है 3 बाई 5. अब ये 5 और 20 यहां पर काट सकते हैं, 4 हो गया, 4 उधर 3 से मिलेगा, तो कितने दिन हो गए 12 दिन हो गए. तो P ने अकेले 12 दिन काम किया. आई होप दिस इज क्लियर यार. अरे आंसर तो आ गए सबके, वेरी गुड है, क्या बात है. मयंक, विनय, पल्लवी, रोहित, निकिता, महक, सौंदर्या, करण, कशिफ, ज्योति, सबके आंसर्स करेक्ट हैं. शाबाश, सभी के आंसर्स करेक्ट है. क्या बात है भाई, सभी चैंपियंस हैं. वेरी नाइस.
हाँ, अब देखो ना, यहां पर याद रखेंगे, एक वो बूढ़े अंकल है जिनका ऐड आता है मसालों का, क्या नाम होता है उसका, बताओ? MDH, MDH होता है ना, बस वो ये लिखना है जी, MDH/W. So basically this is M1D1H1/W1 which is equal to M2D2H2/W2. अब जो जो वो बोल रहा है बस उसकी वैल्यूज डालते रहिए. 12 men, 12 आ गया, कैन कंप्लीट अ वर्क, एक वर्क है भाई, इन 10 days, लीजिए डेज आ गए, वर्किंग 6 hours पर डे, इंटू 6 आ गया, देन इन हाउ मेनी डेज, अच्छा डी निकालना है यहां पर, कैन 10 men, यहां 10 आ गया, कंप्लीट डबल द वर्क, लो जी डबल हो गया ये, वर्किंग 8 hours पर डे, इंटू 8 कर दो, खत्म. एक वेरिएबल है आपके पास में, बस कटम कटाई कीजिए, जो भी काटना है यहां पर कैंसलेशन कीजिए. देखिए 10 कट गया, ये किससे गया 4, और ये 4 तिया 12, 3 है और 6 है, तो D इज इक्वल टू 3 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 18 days. चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया होगा सबको? तो ये फॉर्मूला यूज करें जब भी मैन डेज और आवर्स दिए गए हों. CSAT 2020, X can complete 20% of work in 8 days. बहुत आसान है यार. X के लिए देखिए क्या इंफॉर्मेशन है, 20% वर्क करता है 8 दिनों में, तो 100% कितने दिनों में करेगा बताइए भाई? 20 इंटू 500 होता है, तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40. X अकेला इस काम को 40 दिनों में कर सकता है. चलो Y का भी हिसाब कर दो. Another person Y can complete 25% of the same work in 6 days. तो भाई अगर 25% काम 6 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा? ये देखिए क्या है, इंटू 4 है, 25 चौके 100, इसको भी इंटू 4 कर दीजिए. अब आपके पास में X और Y की इंडिविजुअल वर्किंग कैपेसिटीज आ गई. So X can complete a work in 40 days and Y can complete the same work in 24 days. If they work together, in how many days? 40% of the work will be completed. अरे पहले निकाल तो रहे. If they work together, तो दोनों मिलकर 100% काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आइए देखें. अब उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, XY by X plus Y, 40 गुना में 24, राइट, बटा में 40 जमा 24, सो 40 इंटू 24 बाय 64. कटिंग करो यार. 8 5 जा, 8 8 जा, 8 3 जा, कितना आया 15 दिन. चाहते हैं तो एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे. कैसे? X मिल गया 40 दिन, Y मिल गया 24 दिन, बड़ा नंबर 40 है ना, तो एलसीएम निकालना आसान है. 40 का टेबल चलाइए, और क्योंकि 40 में 0 है तो एलसीएम में भी 0 आएगा. तो 41 जा 40, 24 से भाग नहीं होता. 42 जा 80, 24 से भाग नहीं होता. 43 जा 120, हाँ जी 24 से भाग होता है. लीजिए 43 जा 24 5 जा, ठीक है, तो 5 प्लस 3 ये बन गया कितना 8. तो 120 को
8 से भाग करेंगे तो भी 15 आता है। ये आंसर नहीं है, ऑब्वियसली चॉइसेस में भी नहीं दे रखा है। चाहिए कितना? 40%। तो बड़ा सिंपल है जी, अगर 100% वर्क कंप्लीट हो रहा है 15 दिनों में, तो 40% वर्क जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 40/100 इंटू 15, बस यही है। 22 जा 25 जा 5 3 जा, ये रहा 2, ये रहा 3, तो 2 इंटू 3 कुल मिलाकर आ जाएगा 6 days। हाँ वेरी गुड। अरे तो बहुत सारे लोगों का आ गया है। तो वैसे करण, महक, कश्यप, श्रेया, सबका सही है। तो कुछ नहीं है इसमें, करना वही था जो हमने किया था बेसिक, बस थोड़ा सा झोल डाल दिया उसने परसेंटेज का, और कुछ भी नहीं किया, कुछ खास नहीं है इसमें। लीजिए सीसा 2021 का क्वेश्चन कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। वेरी गुड। अरे यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फरीन आपने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। थोड़ा सा देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, ये देखो जरा, देखो बेटा। A man completes 7/8 of a job in 21 days. So सीधी बात, 7/8 21 दिन में पूरी करता है, तो पूरी की पूरी जॉब जो है कितने दिनों में करेगा भाई? 1/7/8 इंटू 21, ये 8 ऊपर गया, 8/7 इंटू 21, 3 से गया, तो जी पूरी की पूरी जॉब कंप्लीट करने में उसको 24 दिन लगने हैं। मतलब अभी 3 दिन बाकी हैं। बात तो 21वें दिन की हो रही है, 3 दिन बाकी है भैया अभी, है ना?
हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम क्या होता है भाई? क्वांटिटी है, क्या प्रॉब्लम है? इजी वर्ड है. क्वांटिटी ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 50%. तो भाई अगर पूरा काम 24 दिन में होता है, 100% वर्क 24 दिनों में होता है, तो 50% वर्क कितने दिनों में होगा? आधे दिनों में होगा ना यार, सीधी बात है ना. 12. तो भाई 12 यहां पर लग गए, 3 दिन और चाहिए उसको, तो 15 दिन तो लगेंगे ना उसको. अभी 15 डेज तो कैसे भी करके चाहिए यार, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं. बिने का भी आया अभी डी. एक बहुत ही आसान प्रश्न सीसैट 2022 का, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, जरा कीजिए फटाफट से. लो जी, आपने यहां पर अलग अलग टाइप्स तो मुझे दे दी, लेकिन आई थिंक करेक्ट कृष्णा, सही एक्सप्लेनेशन सही है. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. इनफैक्ट कुछ करना ही नहीं था यहां पर. सिंपल बात है, अगर 24 मेन और 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 30 days, then 12 men and 24 women will complete the same work in how many days? क्या पता भाई? हाँ, so we have two variables, so we require two equations to solve them. दो वेरिएबल तो दो इक्वेशंस, सीधी बात. चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट है. नहीं नहीं पल्लवी, मयंक, आप लोगों ने गलती कर दी. आपको इसमें कोई रेशियो नहीं दे रखा ना भाई. यू डोंट नो, देयर इज एब्सोल्युटली नो आइडिया हेयर कि 24 मेन एंड 12 वुमेन है तो कौन ज्यादा काम करता है ना. ये भी तो हो सकता है कि मेन जो है वो ज्यादा काम करते हैं. एफिशिएंसी किसी की भी नहीं पता है ना. एंड रेशियो भी नहीं दे रखा कि हु वर्क्स मोर और हु वर्क्स लेस. नथिंग इज गिवन, so definitely you can't do anything. So that is time and work for you. These are the basics, and we have also discussed some questions from the previous year question papers. What I want you to do is keep on practicing different varieties. और varieties भी मिलेंगी आपको, है ना. बस बेसिक का इस्तेमाल करते रहे और आंसर निकालते रहे. इसी का एक एक्सटेंशन है, मैं आपको दे रहा हूं, and that is pipes and cisterns. और उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लें आप, टाइम एंड वर्क में जो आया था इस साल 2023 में. Now let me do this for you.
It says A, B, and C working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days. ठीक है, इसमें एक छोटी सी करेक्शन मुझे करना दो. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone on Wednesday. ठीक है ना? And so on. तो consider the following statements. तो अभी रुक जाओ. Work will be finished on Thursday, work will be finished in 10 days. तो अभी देखते हैं यहां पर क्या करना है. पहले तो ये देखो करना क्या है यहां पर. तो जो हमें समझ में आया भाई वो ये आया है that they have started working on Monday, Tuesday, Wednesday, फिर Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and so on. ऐसे चलता रहेगा. ठीक है ना? सो थोड़ा सा और टाइट करूं, यहां से थोड़ा सा टाइट करता हूं. सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. अभी तक जो समझ में आया वो ये है कि मंडे को ए काम करता है, ट्यूसडे को बी और वेडनेसडे को सी एंड सो ऑन. इसके बाद फिर दोबारा यही होने लग जाता है. तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए और बी, ऐसे ही कुछ है ना? अब देखो भाई, अगर ए बी सी इकट्ठे काम करते होते एक दिन में, है ना, तो कितना टाइम लगता बताओ? ए एक काम को 8 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 16 दिनों में कर रहा है और सी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है. सही है ना? तो टुगेदर एलसीएम निकालो. तो साथ में अगर ये करते तो कितने दिन लगते हैं? तो भाई 16-12 का एलसीएम ले लो आप, 48 आ गया. 48. 8 6 are 48, 16 3 are 48, 12 4 are 48, है ना? तो 6 plus 3 plus 4 is equal to 13. तो मतलब कितना टाइम लगता है इनको? 48/13 डेज लगते हैं. अभी इसको कम मत करो, जरूरत नहीं. तो भाई इसी से बताओ मुझे कि एबीसी का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन में कितना काम करेंगे? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? एक दिन में कितना काम करते हैं? 13/48. अगर ये साथ में काम करते होते तो, अगर ये साथ में काम करते तो एक दिन में 13/48 होता. मतलब ए, बी और सी इन तीनों की कार्य क्षमता को मैं जोड़ दूं, इफ आई टेक द सम ऑफ वर्क एफिशिएंसीज ऑफ ए, बी एंड सी टुगेदर, देन इन वन डे दे विल कंप्लीट 13/48 ऑफ द वर्क. अब ये एक दिन का काम जो है इनका ए, बी, सी का, ये 3 दिनों में स्प्लिट हो गया, 3 दिनों में बांट दिया गया, है ना? तो एक्चुअली देखा जाए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को कितना काम खत्म होगा? 13/48 ही तो होगा, है ना भाई? एबीसी अगर साथ में काम करते हैं तो वो साथ में मिलकर 13/48 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर सकते हैं. अब चाहे वो एक दिन में हो, चाहे अलग अलग काम करें, तो 3 दिन में हो, काम तो उतना ही होगा, 13/48. इसका मतलब यहां पर भी अनदर 13/48 काम हुआ. मतलब कितना हो गया? 26/48. कम मत करना इसको, कटिंग मत करना. यहां पर भी देखा जाए तो और एक 13/48 का काम हुआ, तो कितना हो गया? 39/48. देखिए मैं वैसे इंडिकेट कर देता हूं, प्लस 13/48 इतना आ गया, प्लस 13/48 इतना आ गया. अब अगर मैं प्लस 13/48 करूंगा
तो न्यूमिनेटर विल बिकम ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, इट विल बिकम 39 प्लस 13 52, ज्यादा हो जाएगा ना यार वो तो 1 से 52 बाय 48। तो इसे थोड़ा रिड्यूस करते हैं, 39 बाय 48, इतना काम हो गया, मतलब कितना हो गया 13, 3 से करो ना, है ना, और ये कितना है 16, सो इतना कंप्लीटेड ऑन ट्यूसडे। अब देखिए जरा रिमेनिंग वर्क कितना है। भाई एक काम होता है पूरा, उसमें से 13/16 काम तो हो चुका है, बचा कितना है 3/16। तो ट्यूसडे को काम खत्म होने के बाद में 13/16 काम हो गया, बचा कितना 3/16। अब वेंसडे को कौन काम करने वाला है, ए काम करेगा। तो वेंसडे को 3/16 जो काम बचा है, इसमें से ए का जो काम है एक दिन का वो तो हटा दूं, ए भी तो काम खत्म कर रहा है। तो 1/8 को यार चलो हम एलसीएम लेने के लिए 2/16 कर लेते हैं, 2/16 में तो 1/8 होता है ना। 2 स्टेप में लिखता हूं इसको ताकि तुम्हें बेहतर समझ में आए। तो ये हो गया 1/16, ये अब क्या है, ये काम बचा हुआ है, ठीक है, एट द एंड ऑफ वेंसडे, करेक्ट। अब ये जो 1/16 काम बचा हुआ है ये कौन करेगा, यहां पे बचा हुआ है, कौन करेगा, ये बी करेगा। और बी की वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, 16 दिन में काम खत्म करता है, मतलब एक दिन में बी कितना काम करेगा 1/16, ठीक है। तो थर्सडे को क्या कहानी हुई भाई, ये 1/16 जो रिमेनिंग था इसे किसने किया, बी ने किया, जिसकी वर्किंग कैपेसिटी भी 1/16 है। तो अब कितना काम बचा, रिमेनिंग कितना बचा 0। कब, थर्सडे को। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सच है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, सही बात है। आगे कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। अच्छा 10 डेज है क्या ये, आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 11 है भाई, ये तो 11 दिन है, तो ये तो गलत बोल गया, 10 नहीं है 11 दिन है। तो सिर्फ ए सही है, चॉइस ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसमें, एक ही चेंज था कि ए बी सी के एक दिन के काम को 3 दिन में बांट दिया गया, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, बस इतना ही था, ठीक है। तो ऐसे 3 सेट्स आप कर सकते थे। चले जी, इसका एक्सटेंशन लेता हूं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, जिसमें एक छोटी सी वेरिएशन है टाइम एंड वर्क से, ओके। ये है लेट अस से पाइप या वॉल्व या टैप ए, ये है पाइप या वॉल्व या टैप बी। तो ये कहलाएंगे जी इनलेट टैप्स या वॉल्व्स या पाइप्स। मतलब इनलेट का मतलब क्या हुआ, ये पानी भर रहे हैं, ये टैंक है इसमें पानी भर रहे हैं, और ये एक वॉल्व है सी, ये क्या है, ये आउटलेट वॉल्व है या टैप है या पाइप है
या ड्रेनेज बोल सकते हैं इसको, ये एक तरह की लीकेज भी कही जा सकती है। इन तरह की टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग होगा। इसका काम क्या है? इसका काम है इस टैंक को खाली करना, एम्प्टी करना। इसमें से पानी बाहर फेंक रहा है ना। तो देखा जाए तो वॉल सी ए और बी की तुलना में नेगेटिव कार्य कर रहा है। ए और बी क्या कार्य कर रहे हैं? टैंक भरने का काम कर रहे हैं। सी क्या काम कर रहा है? टैंक खाली करने का काम कर रहा है। यार उल्टा कर रहा है ना, ठीक है। तो बस ये याद रखें कि सी जो है इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क, और जबकि ये क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क यहां पर क्या है? ऑफ फिलिंग द टैंक विद वाटर। नेगेटिव वर्क यहां पर क्या है? ऑफ एम्प्टीइंग द टैंक। और here we can say that it drains out the water completely। तो बस सिर्फ ये डिफरेंस है, याद रखिएगा टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स में, कि जो ड्रेनेज वाल्व है, आउटलेट वाल्व है या टैप है, वो नेगेटिव काम करेगा। बस उसके आगे आप माइनस का साइन लगा दीजिए और कोई चेंज नहीं। ये देखो, टू वॉल्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक ऑफ वाटर इन 10 and 20 minutes। लीजिए, तो ए 10 minutes, बी 20 minutes। Tank full with water can get emptied in 40 minutes by another wall C। कितना? 40 मिनट्स में ये एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी हो जाता है मतलब यहां नेगेटिव काम हो रहा है जी। तो भाई एलसीएम ले लो, 40 आएगा, टेन इंटू 4, 20 इंटू 2, 40 इंटू 1। कौन सा 1? भाई ये नेगेटिव है, याद रखें, ठीक। अब कह रहा है इफ ऑल द 3 walls आर ओपन्ड एट द सेम टाइम देन इन हाउ मेनी minutes will the empty tank get filled completely with tank। तो भाई ये 4 और 2, इतना यूनिट पानी जो है वो भरा जा रहा है टैंक में, और ये 1 यूनिट पानी बाहर निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली केवल 5 यूनिट पानी ही भरा जा रहा है, जबकि भरना कितना है? 40 यूनिट। तो 40 बटा में 5, 8 मिनट का समय लगना चाहिए जी। क्लियर है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बस ये आउटलेट वॉल जो है ना, इसका ख्याल रखो, कुछ नहीं करना, सब प्रोसेस सेम थी, सिर्फ एक चेंज हुआ कि आउटलेट वॉल जो है ना, इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, बात खत्म, और कोई चेंज नहीं है। देखिए चले, ये वाला कीजिए।
ओके गुड, सही है बिल्कुल, शाबाश। लो जी, ए बी सी डी कर देता हूं, चलो, वो जो आउटलेट वॉल्व है ना उसको। ABC can fill an empty tank with water in 10, 20 and 30 minutes. Outlet tab D मान रहा हूं इसको, can empty a tank full of water in 15 minutes, तो ये नेगेटिव है, बस ये याद रखना। That's it. LCM लेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टेन इंटू 6, 20 इंटू 3, 30 इंटू 2, 15 इंटू 4, ये लेकिन माइनस है ना। तो ऑल द टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, सबको इकट्ठे खोल दो। तो भाई 6, 3 और 2 इतना यूनिट पानी तो भर रहा है एबीसी से, लेकिन 4 यूनिट घट रहा है। तो 6 and 3, 9 and 2, 11 minus 4 is 7. So 60 divided by 7, 7 8s are 56. 8 4 by 7. Choice B should be the correct answer. Shabash. I have not understood question in time and work where you write alphabet down and later you write upon. ये anyhow, if you can click a photo and if you can also tell me your name, I would explain that again, please. Please hurry up. Which particular question you want me to explain? Just take a photo of that. Click a picture and post it here. Please post your name also, please, so that I can address you. ऐसा कर दिया करो सीधा. Whatever you have not understood, whenever, just click a picture of that, all right, and then post it in the group. And please do mention your name so that I can address you. And you should specify from here, I have not understood. ऐसा बोल के चलो. चलो एक और ट्राई कर लेते हैं. कोशिश तो करो, चलो शाबाश. You have to try. अरे why are you noting down the questions? अल्फाबेट तो मैंने यार लेटेस्ट तो लिखे हुए हैं हर जगह पे. एनीहाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन. एक बार ये क्वेश्चन कर लेता हूं मिसबा, उसके बाद मैं दोबारा कराऊंगा. चले जी. The 3/5 part of a water tank is filled with water. So when 38 liters of water is taken out of this tank, then the tank is only 1/8 full. So find out the total capacity of the water tank. So capacity को मान लो V. V से वॉल्यूम हो जाता है. अरे छोड़ो ना यार, C मान लो, क्या फर्क पड़ता है. C for capacity.
Okay, so 3/5 is full, so 3/5 of the capacity of the water tank is full. अब इसमें से अगर आप 38 लीटर्स ऑफ वाटर लेकर जाते हो, है ना, तो ये टैंक सिर्फ कितना फुल होगा, 1/8, सो C/8 खत्म बस। अभी कितना फुल है, 3/5 है, 38 लीटर्स वाटर निकाल लेते हो तो कितना रह जाएगा, C/8, तो निकाल लो C। सो इट शैल बी 3/5C माइनस C/8, दैट इज इक्वल टू 38। एलसीएम ले लीजिए, तो 24 में से 5 गया 19C/40 इज इक्वल टू 38। अरे भाई ये तो बड़े आराम से 2 से जाता है, तो C here is 2 into 40, that is nothing but 80 liters. Hope this is clear. तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मिसबा, देखिए मिसबा लिखा हुआ है ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज। अब यहां पर मैंने एक लाइन बना दी है भाई, ये स्टार्ट है या एंड है, तो ए ने 5 दिन काम किया, तो यहां पर आप क्या लें, आप यहां पर नंबर ऑफ डेज लें, ठीक है, और यहां पर आप किसका नाम लें, मैन का नाम लें, खत्म बस। तो 5 दिन किसने काम किया, ए ने काम किया, ठीक है, उसके बाद में 20 दिन किसने काम किया, बी ने काम किया, बस खत्म, ओवर। सो 5 days वर्क ऑफ ए प्लस 20 days वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 1 वर्क। इतना ही किया बस, सिर्फ 5 दिन का काम ए का, और उसके बाद ए चला गया, उसके बाद 20 दिन का काम बी का, काम पूरा हो गया। तो 5 दिन का काम ए का प्लस 20 दिन का काम बी का इज इक्वल टू 1। अब ए की वर्किंग एफिशिएंसी तो दे रखी है ना यार 15 दिन, तो बस ए की जगह आप 15 डाल दीजिए, तो 5/15 1/3 बन गया, प्लस 20/b इज इक्वल टू 1 वर्क, ठीक है ना। तो 20/b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3, ठीक है। तो 20/b इज इक्वल टू 2/3, ये कट गए यहां पर, तो b हियर इज इक्वल टू 10 into 3, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, 30 आ गया। इतना ही था, कुछ था भी नहीं इसमें। अच्छी तरह देख लो एक बार, दूसरा देखो, P और Q एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं 20 और 25 दिन में, लेकिन हुआ क्या, शुरुआत में Q ने काम किया 10 दिन, तो ये क्या है, डेज यहां लिखिए और आदमी का नाम यहां लिखिए। तो पहले 10 दिन किसने काम किया, लिखा हुआ है ना, Q वर्कड अलोन फॉर 10 days ऑन द सॉफ्टवेयर, तो कितने दिन, 10 दिन किसने काम किया, Q ने काम किया। उसके बाद में रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया है, P ने, कितने दिनों में पता नहीं, यही पता लगाना है, तो X दिनों में किसने काम किया, P ने, बस खत्म, ऊपर दिन नीचे आदमी का नाम। तो 10 दिन का काम Q का प्लस X दिन का काम P का बराबर है 100% वर्क, 100% 1 होता है। अब Q यहां पर दे ही रखा है 25 और P यहां पर दे रखा है, तो उनकी जगह डाल दीजिए वैल्यूज, यहां पर Q की जगह आ जाएगा 25, यहां पर P की जगह आ जाएगा 20, बस बात बन गई। तो 10/25 2/5 हो गया, प्लस x/20 मिलाकर 1 बन गया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, 2/5 इधर ले गया, 1 माइनस 2/5 3/5 होता है, तो x/20 इज इक्वल टू 3/5 4, ये 4 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 into 3, 12 आ गया। समझ में आया मिस बा, ऊपर दिनों का दिन लिख दीजिए, ठीक है ना, बाकी नीचे जो है आप वो लिख दीजिए, आदमी का नाम लिख दीजिए, बहुत सिंपल है।
10 दिन काम किया क्यू ने, x दिन काम किया p ने। क्यू की वर्किंग एफिशिएंसी डाल दीजिए, p की डाल दीजिए, और इसको ऐसे ही लिखा है मैंने 10 बाई क्यू x बाई p। इतना आसान, ठीक है ना, बहुत आसान बना दिया इसको। होप दिस इज क्लियर नाउ। बिस्बा, ये क्या है? y 5 by a plus 20 by b and in next p is upper the fraction। अपर द फ्रैक्शन क्या होता है यार? कुछ नहीं करना है यार, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां पर नंबर ऑफ डेज, जितने दिन ए ने काम किया और यहां पर ए का नाम लिख दिया, जितने दिन बी ने काम किया और यहां पर बी का नाम लिख दिया। ऊपर दिन आएंगे, नीचे आदमी आएगा, बात खत्म। यहां पर भी मैंने ये किया है, ऊपर दिन है, नीचे आदमी है, ऊपर दिन है, नीचे आदमी है, और ऐसे ही लिखा है 10 बाई क्यू एक्स बाई पी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही उतारा है मैंने, इसलिए तो आसान हुआ है। चलिए, होप यू आर क्लियर। एनी अदर डाउट टाइम एंड वर्क और पाइप्स में? जल्दी बताइए। ओके, मिसबा का आ गया। ओके सर, तो वही एक और बढ़िया सा टॉपिक आपके नाम हाजिर है हुजूर, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आपको पता ही है टाइम एंड डिस्टेंस क्या रहेगा इसमें, हिसाब किताब तीन चीजें हैं भाई, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। तो एक बार देख लेते हैं। भाई मान लेते हैं कि आपने एक दूरी कोई भी तय करनी होगी, कितनी भी, लेकिन आप उसमें कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं, मतलब स्पीड आपकी चेंज नहीं हो रही। मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, इसी यूनिफॉर्म स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो। तो भाई डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा बताइए? भाई मोर द डिस्टेंस, मोर विल बी टाइम टेकन, लेस द डिस्टेंस, लेस विल बी द टाइम टेकन। तो डिस्टेंस और टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अब मान लीजिए अगर मैं डिस्टेंस कांस्टेंट ले लेता हूं, मतलब आपने मान लीजिए सिटी ए से सिटी बी 100 किलोमीटर ही ड्राइव करना है, फिक्स है, तब स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? भाई सीधी बात, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही कम समय लगेगा। मोर द स्पीड लेस विल बी द टाइम टेकन, लेस द स्पीड मोर विल बी द टाइम टेकन। तो यहां पर स्पीड और टाइम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल कर आ रहे हैं, उल्टे, विपरीत, ऑपोजिट, है ना। और मान लीजिए टाइम कांस्टेंट है, आपने अपने पापा से गाड़ी ली, उन्होंने कहा बेटा 1 ही घंटे के लिए ड्राइव करना है और वापस आ जाना 1 घंटे के अंदर अंदर। तो आपके पास टाइम कांस्टेंट है, 1 घंटे का टाइम है ड्राइव करने के लिए मिला है, आप कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, है ना। और इनफैक्ट कांस्टेंट स्पीड पे नहीं, कांस्टेंट टाइम के लिए लेकर गए हो, एक फिक्स टाइम के लिए। तो स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा? मोर द स्पीड, मोर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, लेस द स्पीड, लेस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहां पर आप पाते हो कि स्पीड और डिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस जी, इसी से हमको फॉर्मूला मिला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको एक्सचेंज कर दोगे तो बनेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इसी पे आधारित ये पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न, अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन टाइम, इन हाउ मच टाइम, इन व्हाट टाइम। बस जरूरी नहीं है, दे मे आस्क यू स्पीड, दे मे आस्क यू डिस्टेंस ऑल्सो, है ना। तो भाई यहां पर इंपॉर्टेंट है स्पीड की यूनिट्स कौन कौन सी है। दो यूनिट्स है, किलोमीटर पर आवर और दूसरी मीटर्स पर सेकेंड। तो इससे कन्वर्जन है, याद रख लीजिएगा। और वो कुछ इस प्रकार है, मैं बता देता हूं आपको। 1 किलोमीटर बाय 1 घंटा 1000 मीटर्स, ठीक है। और आवर कितना होता है 3600 सेकेंड्स। 0 कट गया, ये कितना हुआ 5/18 मीटर्स पर सेकेंड, हुआ कि नहीं। तो भाई अगर किलोमीटर पर आवर से आपने कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकेंड में, तो 5/18 मीटर्स पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इट गिव्स यू मीटर्स पर सेकेंड, और मीटर्स पर सेकेंड इंटू इसका उल्टा कर देना 18/5 इट गिव्स यू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये फिगर याद रखना 5/18। यहां भी देखो ना 18 किलोमीटर पर आवर है, इंटू 5/18 करोगे 18 कट जाएगा ना, 5 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ यू शुड रिमेंबर द टेबल ऑफ 18। आई टोल्ड यू टू मेमोराइज टेबल्स अप टू 20। तो सीधी बात है भाई, 18 2 जा 36, तो 5 2 जा 10 मीटर्स पर सेकेंड। 18 3 जा 54, तो 5 3 जा 15 मीटर्स पर सेकेंड। 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर्स पर सेकेंड। 18 5 जा 90, तो 5 5 जा 25 मीटर्स पर सेकेंड। 18 6 जा 108, तो 5 6 जा 30 मीटर्स पर सेकेंड। भाई जितना याद करके जाओगे वहां पर उतना कम काम करना पड़ेगा, कम समय लगेगा, समय बचेगा, अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, करेक्ट। तो याद रखें इसमें से जितना याद रख सकते हैं। चले जी बताइए, इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा हूं आपसे। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। विद अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कवर 180 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, 180/72, ठीक है ना। आंसर सारे के सारे आवर्स में दे रखे हैं, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो बहुत आसान है वैसे देखा जाए। 72 2 जा 144, 72 का हाफ 36, 144 प्लस 36, ठीक है। ऐसे चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कटिंग करनी है तो कटिंग करो भैया, ये लो करते बैठो इसको, है ना। 18 10 जा 18 4 जा, और जाएगा 5 2 5/2, कितना आ गया 2.5 आवर्स। तो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। ये देखिए, आइए ये करते हैं साथ में। लीजिए वो ये लाइन बनाइए, आपका काम आसान करती है ये लाइन। अ पर्सन कंप्लीटेड 80 किलोमीटर ऑफ जर्नी। ये पूरी जर्नी कितने किलोमीटर की है, 80 किलोमीटर की है, इन 7 आवर्स। टाइम कितना लगा 7 आवर्स लगे जी, 7 घंटे। ही कवर्ड पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑन फुट एट 8 किलोमीटर पर आवर। पता नहीं कितना, लेकिन इतना मान लेता हूं दिस इज ऑन फुट। स्पीड कितनी है, स्पीड ऑन फुट 8 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग पार्ट ऑन बाइसिकल एट 16 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज ऑन बाइसिकल, स्पीड ऑन बाइसिकल इज 16 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट के दुगने।
हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर ऑन फुट? तो फाइंड आउट क्या करना है? फुट पे। तो जो फाइंड आउट करना है उसे एक्स मानिए जी। तो ये x किलोमीटर फुट पे गया है। बाइसिकल पे कितना गया भाई? 80 टोटल डिस्टेंस है जिसमें से ये x है। तो बाइसिकल पे बचा हुआ डिस्टेंस उसने कवर किया। तो निकालना तो डिस्टेंस है, x की वैल्यू निकालनी। लेकिन आप देखा तो करो कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। टोटल टाइम दिया हुआ है ना, तो बस उसी का इस्तेमाल कीजिए आप। भाई टोटल टाइम क्या है? इट इज टाइम टेकन टू ट्रैवल सम डिस्टेंस ऑन फुट प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन बाइसिकल। यही है ना? यही तो है। तो देखिए तो सही, दिया हुआ है ये। टोटल टाइम 7 आवर्स है। टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो फुट पे डिस्टेंस कितना कवर किया है भाई? एक्स किया है। स्पीड कितनी है? 8 है। बाइसिकल में डिस्टेंस कितना कवर किया है? 80 माइनस एक्स कवर किया है। स्पीड कितनी है? 16 है। ठीक, तो लीजिए 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 80 माइनस एक्स बाय 16। एलसीएम ले लिया मैंने। तो 7 इंटू 16 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। कितना हो गया? x आगे आ गया 80। ठीक है, तो ये कितना होगा? 112 इज इक्वल टू एक्स प्लस 80। x इज इक्वल टू 112 माइनस 80, इट इज इक्वल टू 32 किलोमीटर्स। तो यहां पर उसने 32 किलोमीटर्स किया है और यहां पर जो बचा हुआ डिस्टेंस है 48, वो कवर किया है ऑन बाइसिकल। चाहिए अपने को 48 नहीं, याद रखना 32 ऑन फुट वाला। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए कहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया। थोड़ा स्टडी कीजिए इस क्वेश्चन को। कम ऑन, हरी अप। क्लियर है भाई? इंडिकेशन दीजिए। क्लियर है? गिव मी एन इंडिकेशन प्लीज। अगला क्वेश्चन देखिए।
इन हाउ मच टाइम, लीजिए टाइम निकालना है, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। विल अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है, क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इलेक्ट्रिक पोल जो है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोल है कोई, और इसको किसी गाड़ी ने क्रॉस करना है, अगर मान लीजिए गाड़ी है, तो इट विल हैव टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ। व्हाई? बिकॉज द लेंथ और विड्थ ऑफ द पोल इज मिनिस्क्यूल और नेग्लिजिबल। तो भाई ये 200 मीटर जो है उसको पूरा पार करना होगा अपनी लेंथ को, तभी ऐसा कहा जाएगा कि इस गाड़ी ने अपने आप को पूरा क्रॉस किया। अब ये पोल जो है ये क्या है? ये है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ, मतलब इसकी लेंथ काउंट नहीं होती। तो यहां पर जैसे पोल आया है ना, वैसे ही कोई और एनिमल हो सकता था, काऊ, डॉग, कैट, कुछ भी हो सकता था, ह्यूमन भी हो सकता था, ठीक है ना, एक खड़ी हुई बाइक हो सकती थी, ऐसे कुछ भी ऐसी चीज जिसकी लेंथ जो है वो काउंट नहीं होगी। ट्री हो सकता था, है ना, टेम्पल हो सकता था मान लो, तो ये सब काउंट नहीं हो रहे इनके। तो इसमें गाड़ी को पूरी अपनी कंप्लीट लेंथ क्रॉस करनी होगी। तो हेंस टाइम हेयर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ गया 200 मीटर्स, बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 72, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, तो इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड, करेक्ट। 18 4 जा राइट। अब देखो मीटर मीटर कैंसिल हुआ, आंसर किस में आएगा, सेकेंड्स में आएगा। ओके, सो दिस इज 200 by 4 5s are 20, so your answer here has to be 10 seconds. All right, this is what we need to learn. So I hope this is clear. अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ या विड्थ मिनिस्क्यूल या नेग्लिजिबल है, तो बेटा याद रखें कि द ट्रेन which has a considerable length 200 meters दी हुई है, it will have to cross its own length. Okay. अच्छा, यहां पर एक काम करता हूं, मैं तुमको ये देता हूं कि टाइम हेयर इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना, बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना, LT बाय S भी बोल सकता हूं, स्पीड तो सिर्फ ट्रेन की दी हुई है। अब ये देखो, this is quite simple. I'll do it along with you. In how much time will a 200 meter long train traveling at 54 kilometer per hour cross a 100 meter long platform? है ना, तो कोई प्लेटफॉर्म दिया हुआ है मान लो, ओके, और इसकी जो तुम्हें लेंथ दे रखी है प्लेटफॉर्म की, ये 100 मीटर दे रखी है मान लीजिए, और यहां से कोई मान लेते हैं कि ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन जो है ये आपको दे रखी है कितनी 200 मीटर लॉन्ग। तो ट्रेन को पहले ये प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा क्रॉस करना होगा, और उसके बाद में जब ट्रेन का आखिरी डब्बा भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगा, तब हम मानेंगे कि ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई, ठीक है ना। तो ये रहा आखिरी डब्बा मान लीजिए, है ना, ये भी अगर क्रॉस हो जाता है मान लो, तब हम कह सकते हैं कि भाई ट्रेन जो है वो यहां पर पूरी की पूरी क्रॉस हो गई, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे कहूं यहां पर मान लो
अब मैं यहां पर यह कह सकता हूं भाई कि टाइम टेकन इज नथिंग बट इट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस आएगा ना, प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, राइट, बाय द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब तो दोनों की लेंथ क्रॉस होगी ना, तो कितना लग गया भाई, 200 मीटर ये है, 100 मीटर ये है, स्पीड दे रखी है 54, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इंटू 5/18 कीजिए, 18 तिया 54, करेक्ट। तो ये बन गया 300 बटा में 15, ये निकल कर आया जी 20 सेकेंड। बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब ये क्या बना देखिए जरा, प्लेटफॉर्म है ना, सो हेयर a train crosses a stationary object of considerable, मतलब उसकी लेंथ है considerable length, then time is equal to length of the train plus length of the object by speed of the train। अब ये ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है भाई, अभी बताया, प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई टनल हो सकती है, कोई ब्रिज हो सकता है ना, ये हो सकता है कि आपको कोई पॉइंट दे दिए गए ए से लेकर बी तक, है ना, ऐसा कोई भी एक लंबा सा डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो हियर। अब बात करता हूं दो ट्रेन्स की, दोनों ट्रेन्स चल रही हैं, ठीक है ना, तो दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कैसे हो सकता है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हो ऑपोजिट डायरेक्शन से, है ना, हो सकता है कि एक ट्रेन स्लो है वो चल रही है और दूसरी ट्रेन फास्ट है उसका पीछा कर रही है ना। तो इफ टू ट्रेन्स और व्हीकल्स ए एंड बी हुज लेंथ्स आर L1 and L2 respectively and their speeds are x and y kilometer per hour respectively, all right, and the two trains are traveling towards each other, देखो ये ट्रेन A है, ये ट्रेन B है, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ LB है, LA और LB समझ लो, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड होती है इफ टू बॉडीज आर मूविंग, ऑलराइट, सो रिलेटिव स्पीड विल बी द स्पीड्स ऑफ दीस टू बॉडीज इन रिलेशन विद ईच अदर, रिलेटिव स्पीड, करेक्ट। तो ऐसे में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड्स का सम एडिशन x प्लस वाई, और टाइम कितना बच जाएगा भाई, दोनों की लेंथ L1 प्लस L2, ये डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, बाय x प्लस वाई, ये स्पीड है। और अगर मान लेते हैं कि ट्रेन B इज बीइंग चेस्ड बाय ट्रेन A, मतलब ट्रेन B ऐसे आगे जा रही है और ट्रेन A जो है इसका पीछा कर रही है x किलोमीटर पर आवर पे, है ना, ये y किलोमीटर पर आवर है, इसकी लेंथ LA, इसकी लेंथ मान लो LB, जो भी है, तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा ना क्रॉस करने में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना, ठीक है, तो इट वुड बी द डिफरेंस ऑफ द टू, x माइनस वाई, ओके। और टाइम क्या बन जाएगा, टाइम बनेगा L1 प्लस L2 जो दोनों का लेंथ है, डिवाइडेड बाय स्पीड, रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो बस इतना ही करना है याद आपको कि अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड्स को ऐड कर दो,
अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे, धीमी गति वाली ट्रेन को तेज गति वाली ट्रेन अगर परस्यू कर रही है और इफ इट ऑल इट इज ट्राइंग टू ओवरटेक, देन वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड्स, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो देखो देखो और सॉल्व करो इसको जल्दी से। जल्दी कीजिए। ओके, गुड इनफ। चलिए, काफी लोगों के आंसर्स आए हैं यहां पे, देखते हैं। लेंथ दे रखी है 225 250, स्पीड भी दे रखी है, बोथ आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाउ मच टाइम? तो टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड, करेक्ट। तो यहां पर टाइम क्या होगा भाई? दोनों के दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ्स है उन्हें जोड़ लीजिए। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 54 और 36 इंटू, अरे यार, 5/18। सो दिस शैल बी 475, है ना? ये कितना निकल कर आता है? 90। 18 5 जा 90, 5 इंटू 5 25, 25 1 जा 25, 47 में से 25 गया 22, 225, 25 9 जा 225, 19 सेकेंड आना चाहिए भी। आ रहा है, काफी लोगों का आ रहा है, मैंने अभी चेक किया था। तो इसी तरह से फटाफट से ये भी कैलकुलेट करके बता दो मुझे। चलो शाबाश, वेरी वेरी फास्ट। यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, जरा कैलकुलेशंस भी फास्ट कीजिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में। अरे भाई, सब कुछ सेम है, 225 और 250, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या? बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो डिफरेंस लेंगे। 54 माइनस 36 तो 18 ही होता है, 18 18 कट गया, तो दिस इज 475/5, 5 9 जा 45, 25 बचा, 95 सेकेंड्स आना चाहिए। Now, please understand, this is an important point, and that is
Average speed is given by the formula 2xy by x plus y. एवरेज स्पीड दो संख्याओं या दो नंबर्स का एवरेज नहीं होती. एवरेज स्पीड इज नॉट एवरेज ऑफ टू नंबर्स. एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2xy by x plus y. लो देखो ये क्वेश्चन देखो. Come on. A bus travels at 60 kilometers per hour. So 2 into 60 comes back same route at 40. So 2xy by x plus y. This will be the average speed for the entire journey. भाई न्यूमरेटर को डिस्टर्ब मत किया करो, फालतू में टाइम वेस्ट है. 100 देखो ना, अपने आप कटेगा वो. ठीक है ना. तो 6 तो नहीं 12, 12 चौक 48. इट विल बी 48 किलोमीटर पर आवर. तो कृपया 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 बाई 250 ये करने की गलती मत कीजिएगा. ऑलराइट, सो इट हैज टू बी 48 किलोमीटर पर आवर. आई होप यू एग्री. तो चलो ये वाला करके बता दो मुझे जल्दी. 8th वाला बताओ. 2xy बाई x प्लस y. दिस इज द फॉर्मूला. सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है यार, क्या करना है. फॉर्मूले में वैल्यूज ही तो डालनी है. अब उसमें भी देर लगाओगे तो कैसे चलेगा. करेक्ट लाखो. हाँ ये हुई ना बात. करना ही क्या था यहां पे. 2 इंटू 100 इंटू 50 बाय डायरेक्ट ऐड कर दूं यार 150 है ना. क्या बार बार 100 प्लस 50 और ये सब चीजें लिखूंगा मैं. तो ये 5 दिया 15. सो इट इज 200 बाई 3 विच इज 66.66 किलोमीटर पर आवर. चॉइस ए आंसर आ गया. सभी का आ गया ना ये तो. हाँ करण का आया है, महक का आया है, फरीन का है, मयंक का है. बाकी का नहीं आया अभी. चले सी एक सेकेंड. ये क्वेश्चन जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, this question is actually not time and distance, but this is more of a unitary method based question. रेसिस का क्वेश्चन है और रेसिस के जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर आई वुड से यही है. यूनिटरी मेथड का हिसाब किताब है यहां पर, वो कुछ भी खास नहीं है. चलो भाई, ये हमें तो ये लाइन बनानी बड़ी पसंद है. हम तो बनाएंगे जी. एक रेस है, यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर एंड हो जाती है. सो XYZ आर 3 कंटेस्टेंट्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर्स. तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है. ये पूरा डिस्टेंस है 1000 मीटर्स. 1 किलोमीटर समझ लो. Assume that all run with different uniform speeds. X gives Y a start of 40 meters and X gives Z a start of 64 meters. ये start का क्या मतलब है यार. start off. हाँ start off. इसका मतलब है X Y को अपने से 40 मीटर आगे खड़ा होने दे रहा है. X Y को कह रहा है कि भाई तू 40 मीटर आगे भी खड़ा हो जा, और ऑलरेडी तेरे को एक लीड मिल रही है 40 मीटर की. ठीक है ना. तू तब भी भागेगा ना, तब भी मुझे हरा नहीं सकता. हम सेम टाइम पर पहुंचेंगे. इसका मतलब है सेम टाइम पर पहुंचेंगे, सेम टाइम पर पहुंचेंगे. ठीक है. अब ऐसे ही X Z को भी बोलता है कि भाई तू मुझसे 64 मीटर आगे खड़ा हो जा, 64 मीटर्स. देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू बीट मी.
we two will reach the finishing line at the same time. ऑलराइट, सो स्टार्ट देने का मतलब ये है कि अगर एक्स वाई जेड, सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर एक्स वाई जेड सेम टाइम पर रेस स्टार्ट करते तो एक्स जीत जाता। एक्स जीतता, एक्स जैसे ही क्रॉस करता फिनिशिंग लाइन, then y will be 40 meters behind the finishing line and z will be 64 meters behind the finishing line. That means x would have defeated y by 40 meters and x would have defeated z by 24 meters. तो इसीलिए वो उनको कहता है कि भाई तेरे को मैंने 40 मीटर से मैं हरा देता हूं, तो एक काम कर कि तू मुझसे 40 मीटर आगे खड़ा हो जा और z तू मुझसे 64 किलोमीटर आगे खड़ा हो जा, तो हम सेम टाइम पर तीनों के तीनों फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेंगे। तो देखो जी क्या हिसाब बन रहा है यहां पर, ये रहा x, ये y को कह रहा है कि भाई आप मुझसे जरा 40 मीटर आगे खड़े हो जाइए। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 40 meters and x is telling z also to stand in front of him by how many? $64 meters, करेक्ट। अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताइए y और z के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है? y x से 40 मीटर आगे है और z x से 64 मीटर्स आगे है, तो y और z के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस कितना हुआ भाई? 64 माइनस 40 यानी कि 24 हुआ कि नहीं हुआ? 24 हुआ ना, करेक्ट। अब यही भाई मुझे एक और बात बता दें कि भाई y यहां पर कितना रन कर रहा है? x तो 1000 मीटर भाग रहा है, y कितना भाग रहा है? 40 मीटर कम, मतलब कितना भाग रहा है? 960 मीटर भाग रहा है। सो y इज रनिंग ओनली 960 meters and z is running how much? Obviously lesser than 24 meters, lesser than 960 meters, है ना? तो when y runs a race of 960 meters, then in that case the distance between z and y is 24 meters. मतलब y gives z a start of 24 meters. ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं when y runs, y gives a start of मतलब distance, y gives a start of 24 meters. जब y यहां पर 960 meters भाग रहा है तब z उससे 24 meters आगे खड़ा है और let us say y gives z a start of 24 meters. If y and z were to compete in 1000 meters race, then how many meters start will y give to z? तो अगर ये 960 की जगह 1000 मीटर भागते हैं तो y z को अपने से कितने आगे खड़ा होने देता? y would give a start of how many meters to z? तो बस सीधी बात है, कर दीजिए, यूनिटरी मेथड लगेगा। 1000 by 960 into 24, 4 जा, राइट? तो ये यहां पर क्या आ गया? 40, जीरो तो कट कीजिए, ये बन गया जी 25 मीटर्स। देखिए ध्यान से,
ये क्लियर है? ये क्लियर है? जब y 960 मीटर भागता है तो z उससे 24 मीटर आगे होता है। जब y 960 मीटर की जगह 1000 मीटर भागता है तो z उससे 25 मीटर ज्यादा आगे खड़ा होता है। बस। So I hope this is clear. Boats and streams. So basically you have to learn few things here, and that is if at all let us say that this is some kind of a river or some kind of a stream, there is a boat in this, and obviously you know that water flows from obviously top to bottom. So if at all the boat is traveling along with the flow of water, then it is traveling downstream. इसे अब हम डी से दर्शाएंगे। And if at all the boat is traveling against the flow of the stream, है ना, लहरों क्या कहते हैं वो धारा के विरुद्ध, तो then it is called upstream. This we shall denote as U. So let X be the speed of boat in still water, and Y is speed of the stream, जितनी गति से धारा बह रही है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो आपको अगर कोई स्टिल वाटर है, कैसा लेक है या पॉन्ड है ना, तो उसमें अगर कोई नाव खड़ी है तो इसकी जो स्पीड होगी, मान लीजिए आदमी है इसमें, है ना, वो कितनी होगी? x होगी। ओके, देन प्लीज नो दिस वेरी इंपॉर्टेंटली, दैट डी डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है, भाई बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इट विल बी सम ऑफ द टू स्ट्रीम्स, टू स्पीड्स। अपस्ट्रीम है तो बोट ऊपर की तरफ जा रही है और धारा या स्ट्रीम नीचे की तरफ बह रही है, ऑपोजिट डायरेक्शंस हो गई, तो अपस्ट्रीम स्पीड विल बी x माइनस वाई। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर दोनों को जोड़ दूं तो d प्लस यू इज इक्वल टू 2x, जिसमें से आता है x इज इक्वल टू d प्लस यू बाई 2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर इसे यहां पर मैं अंतर ले लूं तो d माइनस यू इज इक्वल टू 2y, जिसका मतलब y इज इक्वल टू d माइनस यू बाई 2। d माइनस यू हो जाएगा, x x कट जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है यहां पर। ठीक है ना। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, आपके सामने है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y। इफ बोट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, then it is called downstream. So दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। और अगर बोट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है, उसे अपस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। बस इसी पे सब कुछ आधारित है। और अगर कोई बोट d किलोमीटर पर आवर, d क्या है? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर आपको पता हो, एंड ट्रेवल्स एट u किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट दैट स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम स्पीड आपको पता हो, तो आप x और y दोनों निकाल सकते हैं। x क्या होता है? d प्लस यू बाई 2, और y क्या होता है? d माइनस यू बाई 2। तो अपनी कॉपी में 4 चीजें नोट कर लीजिए। ये देखिए, x इज इक्वल टू, एक मिनट, पहले तो ये d और y आप नोट कीजिए। d इज x प्लस वाई,
u is x minus y, x is d plus u by 2, y is d minus u by 2। बस जी बस, ये चार चीजें अभी नोट कीजिए, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन। And please indicate if at all you have noted down. Done. All right, great. चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर, just try and solve this question. चलो ये तो आ जाना चाहिए था अब तक तो, गुड है, तो आंसर भी आ गया। अ बोट कवर्ड 75 किलोमीटर अगेंस्ट अ स्ट्रीम, तो यू आएगा अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स, तो यू कितना हो गया? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम भाई, तो यू स्पीड है ना, टाइम कितना लग रहा है? 3, तो ये हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और डी क्या है? अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है 60 किलोमीटर बाय 1.5 आवर्स, तो 15 चौके 60, तो 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एक्स क्या होता है? डी प्लस यू बाय 2, करेक्ट। तो 40 प्लस 25 by 2, that is 65 by 2, so it shall be 32.5 kilometer
पर आवर। देयर यू गो, चॉइस ए। चलो अब एक और ट्राई करो, ये ट्राई करो। ट्राई करो चलो। गुड वंशिका, देखते हैं लेकिन आपका सही है या गलत है, ध्यान से। अ मैन ट्रेवल्स बाय अबाउट 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टुक 6 आवर्स ईच टाइम। तो यू कितना आ जाएगा? 36 बाय 6 किलोमीटर पर आवर। डी कितना आ जाएगा? 48 बाय 6, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है, कितनी होती है? डी माइनस यू बाई 2। 8 माइनस 6 बाई 2, 2 बाई 2 होता है बेटा 1 किलोमीटर पर आवर। गलती से मिस्टेक हो गया। फरीन करण इनका सही है। लो अगला क्वेश्चन लो, ट्राई करो इसको, ट्राई करो। सर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या है ये? 6 identical cards are placed on a table, each card has a number 1 marked। अच्छा, देखो इसको घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, ये तो बहुत आसान है। देखिए ध्यान से देखिए, मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, है ना? तो ये कह रहा है टाइम जो लगा डाउनस्ट्रीम जाने में, है ना, वो हाफ है टाइम जो लगा अपस्ट्रीम जाने में। मतलब सीधी बात है कि टाइम डाउनस्ट्रीम जो है उसका डबल है टाइम अपस्ट्रीम। ये 2 इधर ले गया यार मैं। अब डिस्टेंस तो सेम ही है, सो इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। सो 2 इंटू डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होगी यहां पे? डाउनस्ट्रीम। यहां पे
डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड। डिस्टेंस सेम है यार, काट दो। सो इट इज 2 बाय डाउनस्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई, ये 1 बाय एक्स माइनस वाई है। तो x प्लस वाई बराबर है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2y के, 2x x बैलेंस हो गया, x आया, ठीक है, माइनस 2y इधर गया 3y। तो भाई स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बाय स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3/1, दैट इज इक्वल टू 3:1। अब इसमें मत फंस जाना 1:3, क्योंकि वो स्पीड ऑफ द बोट पहले बोल रहा है, बोट की स्पीड तो यार करंट से ज्यादा होगी ना, तो 3:1 आएगा, ध्यान देना। अच्छा, अभी किसी ने क्वेश्चन पोस्ट किया है एंड द पर्सन इज सेइंग, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। उससे पहले बंदे ने बोला कि भाई 6 कार्ड्स हैं, उन सब पे एक साइड पे 1111 लिखा हुआ है और उसके दूसरे साइड पे 2222 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक बारी में हम 4 कार्ड पलट सकते हैं, है ना। तो कितने मिनिमम टर्न्स चाहिए हमको ताकि यहां पर हमको 222222 दिखे। तो भाई पहले में तो आप 4 कार्ड ही टर्न कर सकते हो, तो 4 करो। दूसरे में आप 3 कार्ड्स टर्न कर दो, ये तो ऐसे ही है, ये सॉरी 3 ये 2 वाले और 1 ये, तो ये क्या आ गया 1 1 1 2 1, ठीक है ना। कौन कौन से किए थे आपने टर्न, यहां पर देखो ना, 1 2 3 और 4, तो ये 2 2 2 का 1 1 आ जाएगा और 1 का 2 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। तो मिल गया ना यार आपको, अब 4 1 मिल गए ना, क्या प्रॉब्लम है, इन चारों को करो, हो गया काम। 2 2 2 2 2, 4 1 ही तो चाहिए थे ताकि इनको पलट सको, तो 3 टाइम्स आएगा, 3 आएगा आंसर उसका, ठीक है। चलो जी, सो लेट अस स्टार्ट विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। मेनी पीपल आर फेयरफुल ऑफ दिस, और सबसे इजी टॉपिक जो है मैथ्स में वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो पहले तो ये समझे कि व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन इज सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, मतलब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, है ना। एंड कॉम्बिनेशन इज जस्ट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर मैं परम्यूटेशन तो आपको बाद में कराऊंगा, पहले तो ये बता दूं, हाँ ठीक है, परम्यूटेशन को एनपीआर बोलते हैं, इसका हम यूज नहीं करने वाले, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसका भरपूर यूज होगा एनसीआर कॉम्बिनेशन के लिए, दैट इज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये n क्या है, ये r क्या है, ये फैक्टोरियल क्या है, मैं ये भी बताता हूं। n इज टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, r इज नंबर ऑफ थिंग्स यू वांट टू सेलेक्ट, जो तुम्हें चाहिए। n आपके पास टोटल चीजें हैं और उनमें से आपको कितनी चीजें चाहिए, वो r चाहिए। तो मैं एक बात बताता हूं कि भाई ऑल ओवर इंडिया आपने कोई टेस्ट मैच होने वाला हमारा वेस्ट इंडीज के साथ में, मान लो क्रिकेट टीम में, तो ऑल ओवर इंडिया आपने 16 प्लेयर चुने, तो उन 16 प्लेयर को तो आप किसी भी ऑर्डर में चुन सकते हो ना, 16 क्रिकेटर्स को, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो सेलेक्टिंग 16 प्लेयर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री इज कॉम्बिनेशन, ओके। बट फॉर्मिंग लेटर, और ये भी ले लो, 16 में से 11 की टीम चुनना, अब जो 16 प्लेयर जाते हैं खेलने के लिए उसमें से फाइनल 11 चुनना जो टेस्ट मैच खेलेंगे, ये कॉम्बिनेशन है। किसी भी ऑर्डर में पिक कर लोगे कि हाँ भाई रोहित शर्मा कप्तान है तो वो तो आएगा ही आएगा, बुमराह हमारा मेन बॉलर है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और विराट कोहली तो रहना ही है, तो 3 तो ये पक्के हो गए, बाकी चुनो, ऐसे कर करके किसी भी ऑर्डर में चुन सकते हो, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर में चुनना इस कॉम्बिनेशन। अब ये फाइनल 11 तो बन गई जो खेलने वाली है, अब ये फाइनल 11 का बैटिंग ऑर्डर भी तो बनेगा ना, कि पहले 2 कौन जाएंगे, उसके बाद 1 डाउन कौन जाएगा,
फिर सेकेंड डाउन कौन जाएगा, फिर थर्ड डाउन कौन जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास में आ जाता है परमुटेशन। जो प्लेइंग 11 है उसका बैटिंग ऑर्डर, देखो बैटिंग ऑर्डर में ऑर्डर शब्द आ गया ना, है ना। तो ये ऑर्डर में अगर हम सीक्वेंस बनाए किसी ऑर्डर में, है ना, अरेंजमेंट बनाए किसी सीक्वेंस में, अगर अरेंजमेंट बनाया जाए तो वो परमुटेशन कहलाता है। सिर्फ सिलेक्शन हो, एन चीजें पड़ी हैं उसमें से आर चुन ली, तो वो एनसीआर है, कॉम्बिनेशन है। बस ये डिफरेंस होता है सीक्वेंस का। तो फैक्टोरियल क्या होता है, मैं बताता हूं तुमको। पहले तो परमुटेशन सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशंस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच सीक्वेंसेस, नॉट इंपॉर्टेंट। ये है जी फैक्टोरियल। तो इसमें अगर मैं आपको देता हूं एन फैक्टोरियल, सॉरी, एन फैक्टोरियल इज एन। अब एन को अपने पीछे के नंबर से गुना करते चले जाओ जब तक 1 तक नहीं पहुंचते। तो एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, चलता जाओ, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये है फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, करेक्ट। तो अगर मैं कहूं कि भाई 7 फैक्टोरियल क्या होगा, तो मतलब 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, जब तक मैं 1 तक नहीं पहुंच जाता तब तक 7 से पीछे में जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये देख लो आप, और ये जान लो कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों 1 होते हैं। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों ही 1 होते हैं, उनकी वैल्यू। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होगा, 2 गुना में 1। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 हो गया। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल तो हुआ, तो 4 इंटू 6 24। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये सारा 4 फैक्टोरियल है बेटा। 4 फैक्टोरियल क्या लिख रहा था, 24, 24 इंटू 5 हो गया भाई 120। तो ऐसे 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, अब यहां पर मैं कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं कॉम्बिनेशन का पहले, उसके बाद परमुटेशन उठाएंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में 5 बच्चे हैं यहां पे, है ना, एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये यहां पर लेट अस से किसी डिबेट कंपटीशन में अपने स्कूल में ये 5 जो है ये विनर्स हैं। अब इनमें से कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है, कोई फोर्थ है, कोई फिफ्थ है, इस तरह से है। लेकिन अब क्या है कि इंटर स्कूल कंपटीशन है, मतलब स्कूल्स के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना जैसे, तो उसमें इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए हमने फाइनली ये 5 बच्चे अपने स्कूल से सिलेक्ट किए। अब हमें पता नहीं है कि वहां पर कितने बच्चे भेजने हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन में हमारे स्कूल को कितने बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तक ये नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो मान लेता हूं कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई एक ही बच्चा भेजना है आपने, एक से ज्यादा बच्चा नहीं भेज सकते, एक बच्चा भेजना है आपने डिबेट कंपटीशन के लिए। तो अब मेरे पास तो यहां पर 5 बच्चे हैं, इनमें से एक को भेजना है ना। तो मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं, इन 5 में से एक को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास हैं 5C1 तरीके। कितने, 5C1, 5 में से एक चुनना है, खत्म बात, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका, सीधी बात। वैसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, 5C1 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, ये 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, कोई फायदा नहीं है। तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, कैंसिल करो, कितना आ गया 5। अरे छोड़ो ना यार, कॉमन सेंस लगाओ ना, 5 बच्चे हैं, है ना, उसमें से एक बच्चा चुनना है, कितने तरीके होंगे, 5 तरीके ही तो होंगे कि भाई या तो तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, करेक्ट, 5 ही तो तरीके होंगे।
तो ये 5C1 जो है ये 5 होगा, और इसका मतलब आप ये जान लें कि NC1 इज ऑलवेज इक्वल टू N। अब N कोई भी नंबर होगा, 100C1 ले लो, 100 बच्चों में से एक बच्चा चुनना है, कितने तरीके हैं भाई? 100 तरीके हैं, अपने पास 100 बच्चे अवेलेबल है, कोई भी उठा लो उसमें से। अच्छा, मान लो नोटिफिकेशन आता है, मान लो नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने स्कूल से 2 बच्चे भेज सकते हैं डिबेट कंपटीशन में, तो मतलब मुझे 5 में से 2 बच्चा सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब तुम 5C2 को कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, जरा ध्यान से सुनो, ऐसे लिखोगे 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। भाई ये तो कट गया, ये 2 भी कट गया, है ना, तो कितने हो गए? 10। अब आप यहां तक देखो ना यार, ये देखो ना, सिर्फ ये देखो 5 इंटू 4 आया था, ये देखो 2 इंटू 1 आया था, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल तो कट गया ना, है ना। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर दिया गया हो, मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनना, 5C2, तो इसे पता क्या करना है? ऊपर क्या लिखा है? 5, है ना, नीचे क्या लिखा है? 2, तो 2 जो नीचे लिखा है, ऊपर 2 ही नंबर होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए, मतलब 5 को ऊपर हम मल्टीप्लाई करें जिस भी नंबर से, ताकि न्यूमरेटर में जो नंबर आ रहे हैं वो 2 हो बस। तो क्या आ जाएगा? 5 गुना में 4, बस 5 और उसके पिछले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 2 नंबर होने चाहिए। और नीचे क्या आएगा? 2 इंटू, कितना हो गया? 10। अगर मैं तुमको दे रहा हूं मान लो 6C2, मतलब क्या हो जाएगा? 6 को 2 बार खोलो, 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1, खत्म बात, इतना ही करना है। अगर दे दूं 8C3, तो 8 को 3 बार खोलो, 8 इंटू 7 इंटू 6, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में 3 ही नंबर आएंगे, 8 7 6, 8 से पीछे जाते जाओ, और नीचे ये जो है इसी का फैक्टोरियल, 3 2 से कट गया, 8 7 से 56। ये समझ में आ गया? करेक्ट, ओके। अब एक बात और वो ये है कि अगर मैं कहूं 8C6 निकालना है, तो ये 6 जो है, यहां पर जो R आपको दिख रहा है, ये 8 के हाफ से बड़ा है, 8 के हाफ से बड़ा है। 8 का हाफ कितना होता है भाई? 4 होता है। तो अगर R की वैल्यू 8 के हाफ से बड़ी है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8C8 माइनस 6, यानी कि 8C2। ओके, तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में है NCR, है ना, और अगर R ग्रेटर देन है N/2 के, R ग्रेटर देन है N/2 के, N के हाफ से बड़ा है, तो बेहतर होगा कि आप इसको ऐसे लिख दें, NCN माइनस R, NCN माइनस R इक्वल होता है, ठीक है ना। तो मेरे को जरा बताओ इसे कैसे लिखोगे? 10C7, 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है ना, तो ये जो 7 है ये तो 10 के हाफ से बड़ा है, करेक्ट। क्या बन गया? 10C3। ये आसान हो गया, क्योंकि अब सिर्फ 3 बार खोलना है। 10 इंटू 9 इंटू 8 क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व कर लेंगे बाद में, लेकिन काम आसान हो गया ना, नंबर कम हो गए। तो खैर जी, मैं वहां पर बात कर रहा था आपसे 5C2 की, इसे अलग रखिएगा। तो 5C2 क्या बना? मैंने बताया ऊपर 2 बार खोलो, 5 इंटू 4, नीचे 2 इंटू 1, कैंसल, तो ये कितना बन गया? 10 बना। 5C3, अगर वो कह रहे हैं भाई आप 3 बच्चे भेज दो,
डिबेट कंपटीशन में। हमारे पास तो 5 है, अब 5 में से 3 बच्चा कैसे सेलेक्ट करूं? सेम वे, क्योंकि ये 3 क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 5/2। 3 इज ग्रेटर देन 5/2 कितना होता है? 2.5, 2.5। 3 उससे बड़ा है ना, तो इसको आप लिख दो 5C2, मतलब ये 10 हो गया। ये किया ना यहां पर 5C2, 10 निकाला ना इसको। अगर भाई वहां पर अथॉरिटी बोल रही है कि भाई आप 4 बच्चे भेजो हमारे पास डिबेट कंपटीशन के लिए, तो 5 बच्चे हैं हमारे पास में, उससे 4 बच्चे कैसे चुनेंगे? 5C4 तरीके से। अब 5C4, 4 फिर बड़ा है 5 के हाफ से, तो ये लिख दूंगा 5C1, ये रहा 5C1, ये बन गया 5। और अगर वहां पे अथॉरिटी बोल रही है जहां पर कंपटीशन होना है कि भैया 5 बच्चे भेज सकते हो डिबेट कंपटीशन में, तो हमारे पास तो है ही 5 बच्चे हमने सेलेक्ट किए, तो पांचों के पांचों भेजने के कितने तरीके हुए? एक ही तरीका है यार, पांचों जाओ। सो 5C5 इज 1। तो आप देख सकते हैं भाई 5C1 कितना हुआ? 5। 5C2 कितना हुआ? 10। 5C3 5C2 के बराबर है 10। 5C4 5C1 के बराबर है अर्थात 5, और 5C5 एक ही तरीका है, तो एक ही है, पांचों के पांचों बच्चे भेज दीजिए, एक ही तरीका है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन, ऐसे करते हैं। अब परमुटेशन जो है वो भी आपको बताऊंगा मैं, जरा पहले एक बार ना एक रिवीजन करते हैं। जैसे मैंने कहा NC1 इज इक्वल टू N, 5C1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। NCN इज इक्वल टू 1 किया ना अभी, 5C5 इज इक्वल टू 1। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R अभी किया ना, 5C3 बराबर है 5C2 के। 5C2 ऊपर 2 नंबर आने चाहिए, 5 इंटू 4 नीचे 2 इंटू 1। 8C5 क्या बनेगा? दिस इज इक्वल टू 8C3, ऊपर 3 नंबर 8 7 6, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल। यही है बस। आओ अब परमुटेशन खेलेंगे। हाउ मेनी 3 लेटर ग्रुप्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ABCD विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी लेटर? ओके, एंड हियर इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर जो है वो सही होना चाहिए। चलो भाई, तो ABCD से कितने बनेंगे? बहुत सारे बन जाएंगे ना। देखो AB AC AD है ना, फिर उसके बाद में BC BD, उसके बाद में CD। वैसे तो 6 ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन ऑर्डर भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। AB और BD, AB और BA अलग अलग है, AC और CA, AD और DA, दो बन गए ना, तो 6 तो नहीं 12 बन जाएंगे। अब मुझे पैर चुनने हैं यहाँ पे, तीन चुनने हैं, सॉरी, अरे मैंने तो दो बना दिए यार, 3 चुनने हैं ना, और 3 के अपने अपने ऑर्डर है यार, दो के मैंने बता दिया आपको। तो भाई यहां पर जो स्पेस है, मान लो यहां पर डालने के लिए मेरे पास में कितने लेटर्स हैं, कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस है ना, या तो A डाल दूं, या B रख दूं, या C रख दूं, या D रख दूं। ठीक है ना, तो 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से एक तो यहां पर यूज हो जाएगी, तो 4 - 1 हो गया। अब यहां पर भरने के लिए कितनी ऑप्शंस है, कितने लेटर्स हैं? 3 है, उसमें से एक इस्तेमाल हो जाएगा, फिर यहां भरने के लिए 2 बचेंगे। लो जी, 4 3 अब 12 दूनी 24 ग्रुप बन सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर के। मतलब ABC BCA CAB ये सब अलग अलग है, ABC ACB भी अलग है, BCA BAC भी अलग है, CAB CBA भी अलग है ना। अब ऐसे ही यहां पर देखो, इस बार 5 लेटर्स है ABCDE, और कितने कितने के ग्रुप बनाने हैं? 3 के बनाने हैं। तो 5 चॉइसेस हैं यहां पर भरने के लिए आपके पास, 5।
-1 कीजिए, यहां पर बची 4 में से कोई भी रख दीजिए, -1 कीजिए, यहां पर 3 में से कोई भी रख दीजिए, 20 या 60। तो समझ में आया भाई? ये है जी परमुटेशन। और क्वेश्चंस जो हैं वो सीसैट में बड़े इजी आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस डरना नहीं है उनसे, है ना। डरावने भयानक होते हैं लेकिन डरना नहीं है आपको उनसे, ये याद रखिएगा हमेशा। अब 4 लेटर ग्रुप्स बनाओ सच दैट फर्स्ट लेटर इज अ वाल विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी लेटर। लो जी, अब वाल्स तो यहां पर 2 ही है ना यार, देखो A B C D E F G, एक तो E है और एक A है ना। फर्स्ट लेटर इज अ वाल, तो यहां पर वाल आना चाहिए, या तो A आएगा या फिर E आएगा, करेक्ट। तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास केवल 2 ही लेटर्स हैं जिनमें से हमें चूज करना है, 2 ही ऑप्शन है बस सिर्फ, है ना। चलो इसमें से एक तो लग गई, और ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ये, है ना। उसमें से एक तो लग गया, बचे कितने, 6। तो यहां पर 6, उसमें से एक लग गया तो 5, एक लग गया तो 4, खत्म हो गई बात। तो भाई ये देखो 6 तो नहीं 12, और ये कितना है 20, तो 12 तो नहीं 24, 240। अच्छा चॉइसेस नहीं थी, क्लियर हो गया। तो भाई सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है ये। चलो नंबर्स का भी खेला शुरू करते हैं, कुछ नंबर्स का भी करते हैं। चलो ये बनाने की कोशिश करो, कोशिश कोशिश, चलो शाबाश। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरा, कोई जरूरत नहीं है एनपीआर वगैरह की यूज करने के लिए, कोई जरूरत नहीं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। अरे भाई बड़ा आसान है, एक तो 4 डिजिट बनाना है, कौन सा नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। अगर इवन नंबर बनाओगे तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 2 या 4 या 6, बस 1 3 5 तो नहीं आ सकते ना यार इवन में लास्ट डिजिट। तो मतलब अपने पास 3 ही चॉइसेस हैं, 3 ऑप्शंस हैं बस, या तो 2 लगा दो लास्ट डिजिट, या फिर 4 बना दो, या फिर 6 बना दो। तो मतलब ये स्थान भरने के लिए अपने पास में केवल 3 ही डिजिट हैं, 2 या 4 या 6। अब इसमें से एक तो लग जाएगा, टोटल 6 डिजिट दे रखे हैं आपको। तो पहला स्थान भरने के लिए
5 है, तो इसमें से फिर 1 लग जाएगा, है ना। तो अब यहां पर भरने के लिए 6 - 1 यहां पर हो गया एक, तो यहां पे 4 है हमारे पास में बचे हुए हैं, यहां पर लगाने के लिए 3 है, बस हो गया। तो 5 चौके 20, 3 तिया 9, 180 आंसर आना चाहिए। किसी का आया है यहां पे, मैंने देखा है। अरे वाह, क्या बात है भाई, इतनी जल्दी, शाबाश। करण, वंशिका, मयंक, सौंदर्य, और भी किसी ने दिया है लेकिन नाम नहीं लिखा, फरीन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सही जवाब, बहुत बढ़िया। देखो जी, कंडीशन अच्छी तरह पढ़ लेना जरा। चलो चलो, शाबाश। अरे वाह, सही जवाब। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, अच्छा 4 डिजिट नंबर बनाऊं क्या, कैन बी मेड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स है। कोई कंडीशन दी हुई है यहां पे, देखो, विच आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 5 का, लास्ट डिजिट शुड बी आइदर 5 और 0। अब 0 तो है नहीं यार हमारे पास में, तो इसका मतलब पक्की बात, यहां पर भरने के लिए अपने पास एक ही नंबर है और वो है 5, और कोई नंबर तो भर ही नहीं सकते हम, एक ही चॉइस है बस, 5। तभी जाके यहां पर हमें वो नंबर्स मिलेंगे विच आर डिविजिबल बाय 5। अब नंबर 6 है, उसमें से एक नंबर तो यहां लग गया, डिजिट 5, तो बचे कितने, 5 नंबर बचे, तो उसमें से एक यहां लग जाएगा, यहां के लिए 4, उसमें से एक लग जाएगा, यहां के लिए 3, तो ये क्या हो गया, 5 चौके 20, 3 एकम 3, 60 आना चाहिए। अच्छा, ए आ रहा है, कितनों का आ रहा है, वंशिका, सुहासी, कनन, फरीन, मयंक, सौंदर्य, राधाकृष्ण, काशिफ, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगला पढ़ो, कंडीशन पढ़ लेना ढंग से, पहले डिसाइड कर लो इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, देख लो ढंग ढंग से जरा, ठीक ठीक लगा लो।
ओके, वंशिका का जवाब आया है। बाकी बेटा अब यहां पर ये कोई पॉइंट्स अलग अलग बता रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या ABCDEFGHIJ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉइंट्स। तो यहां पर सीक्वेंस तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना पॉइंट्स की, है ना? तो भाई देयर आर 10 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ प्लेन wherein no 3 points lie in a straight line. On this plane how many straight lines can be made? तो एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं भाई? एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं बस। तो इन 10 पॉइंट में से अगर लाइन बनाओगे तो 2 पॉइंट चूज करोगे आप, करेक्ट? कितने वेज में ऐसा कर सकते हो? 10C2, so that is 10 into 9 by 2 into 1, काटिए इसको। 45 is what you should get. Choice A is the correct answer. अरे वाह, वंशिका का आंसर सही है। काशिफ, मयंक, सुहासी का भी सही है, लेकिन वो 46 बाई चांस उसने टाइप करा है शायद। हाँ 45 कर दिया। अब सौंदर्य सही है सबका। छा गए भाई तुम लोग तो, ऐਵੇਂ डर रहे हैं कोई भी यार, ये तो बहुत आसान है। आओ जी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या या अलग है? इस बार ट्राइंगल बनाने हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो जरा फिर। सही जवाब आइए जी। इस बार 10 पॉइंट्स हैं और ट्राइंगल बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट चूज करने हैं? 3 पॉइंट। तो 10C3, करेक्ट? तो ये क्या बन गया? 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। बहुत आसान है भाई, 3 को काटो 3, ये आ गया 4, 4 तिया 12, भाई 120 बनेंगे यहाँ पे ट्राइंगल। आप कितने बना रहे हो? हाँ सुहासी का सही है। हाँ वंशिका का भी सही है। सौंदर्या, करण, फरीन, इनका सबका सही है। फरीन का आंसर सबसे पहले आया था। राधु का सही है, मयंक का सही है, पल्लवी सही है, काशिफ सही पकड़े हैं। वेरी गुड। चलो अगला देखो। लाखों का भी सही है, लाखों, लाखों। How many different 6-letter words with or without meaning can be formed from the letters of the word belief? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है? अच्छा इसका अगला भी क्वेश्चन देख लूं, कहीं बाई चांस मालूम पड़े। हाँ मैंने अच्छा वो रिपीट नहीं किया ना, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। अच्छा चलो मैं तुमको एक वर्ड देता हूं। ओके, द वर्ड इज अडोर। 5 लेटर का वर्ड है, करेक्ट? तो इससे मैं कितने अरेंजमेंट्स बना सकता हूं टोटल, है ना? वर्ड्स बना सकता हूं विद और विदाउट मीनिंग। कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, कितने सीक्वेंसेस बन सकते हैं लेटर्स के यहां पे? तो वो है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल। जितने नंबर है उतना फैक्टोरियल। ऑब्वियसली ये स्थान भरने के लिए 5 लेटर है, यहां भरने के लिए 4 है, यहां भरने के लिए 3, यहां भरने के लिए 2, यहां भरने के लिए 1, हो गया ना 5 फैक्टोरियल। तो देखो वैसे ही और भी बताता हूं मैं आपको, है ना?
लो कितने लेटर्स हुए? ये 1 2 3 4 5 6 हुए ना, तो इनसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको वर्ड दूं एप्पल, तो है ये 5 लेटर्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल बेस। लेकिन परंतु यहां पर एक बात है, और वो ये है कि 2 बार पी आ रहा है, तो अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, जितनी बार लिखा जा रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। मतलब पी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। अगर पी 3 बार आता तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं भाई, है ना। तो देखो मैं आपको एक और वर्ड बताता हूं मैं, ओ कोई वर्ड है अपेरेंट, ऑलराइट। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स को हम 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कोई ऐसा लेटर है क्या कि रिपीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना जी। ये देखो ए 2 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल फॉर 2 एज। अच्छा और भी आ रहा है कुछ यार, ये देखो ना 2 बार पी आ रहा है, तो फिर 2 फैक्टोरियल और यहां पर किसके लिए? 2 पी के लिए। और तो कुछ नहीं हो रहा ना रिपीट। तो बस इस चीज का ख्याल रखना है। अब देखो ये वर्ड दिया है आपको क्या? बिलीफ। कितने इसमें लेटर्स है? 6। तो 6 फैक्टोरियल वे में हो गया। कुछ रिपीटिशन है भाई? अरे बिल्कुल है जी सर जी, ये देखिए रिपीट हो रहा है, तो बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, बस 2 इंटू 1 तो नीचे है ही है ना, वो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये हो गया 30 गुना में 12, 12 3 36, 360। सी आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा निहारिका सिन्हा का आ गया सी, करण का आ गया, फरीन का आ गया। फरीन ने पार्टी चेंज की थी। काशिफ का आ गया, मयंक का आ गया, लाखों लाखों का आ गया, लाखों या लाखों, I don't know how to pronounce, but it's an interesting name. चलो जी, गुड है जी। ये वाला देखो आप मेरा, श्रेया, मयंक, वंशिका, पल्लवी, काशिफ, फरीन, सौंदर्या, विनय, बहुत बढ़िया। अब अपील, यहां पे ये मेरे को दे रखा है
ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हो गया। सॉरी, 2 तो पी आ रहे हैं, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और 2 ही ए आ रहे हैं बाय 2 फैक्टोरियल। 2 दूनी 4 होता है, तो ये बन गया 6 इंटू 5 इंटू 4 तो हटा दो, 3 इंटू 2 ऐसे ही होगा, 30 इंटू 6 180। लो जी, CSAT 2020 का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बताइए। How many different sums can be formed with the denominations rupees 50, 100, 200, 500 and rupees 2000, taking at least 3 denominations at a time? अच्छा, at least 3 क्या होता है? कम से कम 3। कम से कम 3 का मतलब 3 ले लो, 4 ले लो और 5 डिनोमिनेशन ले लो, 5 वैल्यूज ले लो। डिनोमिनेशन मतलब वैल्यूज, ठीक है ना। तो क्या करने वाले हो, बनाओगे इसको, बहुत टाइम ही लग जाएगा, है ना। इट टेक यू लॉट ऑफ टाइम इन फैक्ट। और जी, हाँ, तो एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 3 ले लेता हूं यार, उसमें मतलब 5 है, तो इन 5 में से मुझे 3 लेने पड़ सकते हैं, 5C3, अगर मैं 3 डिनोमिनेशंस लेता हूं। तो ये तो वैसे भी पता है 5C2 के बराबर होता है, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 5/2। तो ये क्या बन गया, 5 इंटू 4/2 इंटू 1, कैंसिल करो यार, 10 तो यही आ गए जी। फाइव सी फोर, अगर 4 लूं तो 5C4 क्या होता है, 5 ही होगा ना यार, वो तो है ना, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 5C1। 5C1 इज 5 ओनली, NC1 इज N। और अगर पांचों इकट्ठे ले लोगे तो भाई उसका तो एक ही रास्ता है, तो कुल 16 बन जाएंगे। नहीं 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 सुंदर, आपने 3 का कर दिया, सिर्फ 4 का और 5 का किया ही नहीं। करेक्ट वंशिका। अच्छा, बाकी लोग अटक गए है ना। ये समझ में है। अब इसमें अरेंजमेंट थोड़ा बनाने हैं यार, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा अरेंजमेंट बनाओगे तो, लेकिन लॉट ऑफ टाइम, है ना। सो वी हैव 10, 5 एंड 1, टोटल 16 बेस। अच्छा, अरेंजमेंट अगर बनाने हैं तो ये लो। नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा हिसाब किताब पड़ेगा। 5 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन, कम से कम 5 मिनट खाएगा, ठीक है। तो लीजिए, अपने परमुटेशन का ही इस्तेमाल कीजिए, हर जगह पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, बनाया क्वेश्चन। ये लो भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिए और प्लीज सॉल्व कीजिए इसको, प्लीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट करना है इसको बिल्कुल, कमान। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमान।
बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो. फॉर अ स्पोर्ट्स मीट अ विनर स्टैंड कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक्स, ये 3 वुडन ब्लॉक्स दिए हुए यहां पे, इज इन द फॉलोइंग फॉर्म. देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स, 6 कलर हैं टू चूज फ्रॉम, एंड ईच ऑफ 3 वुडन बॉक्स इज टू बी पेंटेड सच दैट नो 2 ऑफ देम हैज द सेम कलर, है ना. तो इसका मतलब तीनों पे अलग अलग कलर होना चाहिए, तो कहां प्रॉब्लम है. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द विनर स्टैंड बी पेंटेड. अरे यार 6 कलर है, तो इसको भरने के लिए, पेंट करने के लिए अपने पास 6 ऑप्शन है, 6 कलर से. तो उसमें से एक तो कलर इधर रख जाएगा, रिपीट हम कर नहीं सकते, ठीक है ना. तो 6 - 1, इसे पेंट करने के लिए 5 है, एक यहां यूज हो जाएगा, उसे रिपीट कर नहीं सकते, है ना. नो 2 एडजेसेंट ब्लॉक्स शुड बी ऑफ सेम कलर. तो बेटा जी ये भी हो जाएगा, बस इतना ही था. 6 5 30, 34 मैंने वही कहा ना, वुडन ब्लॉक बना दिया उन्होंने, इतना लंबी कहानी बना दी, तो डर लगना तो स्वाभाविक था. तो बस यही कह रहा हूं, डरो मत, जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना उतना इजी होता है. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट longer the question, shorter is the answer, tougher or the more difficult the appearance of the question, the more simpler is the solution. और जब सॉल्यूशन बनाते हो सिंपल वे में सोचो, कंफ्यूजन होगी नहीं. कंफ्यूजन कहां हो रही है, आप कोई ऐसा मेथड निकालने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कभी आपने किया ही नहीं. सिंपल वे में करो ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा वो. चलो जी, हेक्सागन पता क्या होता है? छह वर्टिसेस या 6 साइड्स होते हैं ना. बेटा ये तो बहुत आसान है. अच्छा देखिए, यहां पर वर्टिसेस टोटल है कितने हेक्सागन में? देयर आर 6 वर्टिसेस, ऑलराइट. एंड टू मेक अ ट्राइंगल यू रिक्वायर हाउ मेनी वर्टिसेस? 3 वर्टिसेस एट अ टाइम. तो 6 में से 3 चुनने के कितने तरीके हैं? 63. सो दिस इज 6 into 5 into 4 by 3 into 2 into 1. लीजिए जी, हटाइए इसको. 5 4 20. दैट शुड बी द आंसर. इजी है. ये एक्चुअली में सीसैट का ही क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है ये. ऑलराइट, मुझे याद नहीं है कौन से साल का है. ऑक्टागन का बता दो भाई, ऑक्टागन में कितने होते हैं? 8 होते हैं, बस ठीक है. फटाफट से कैलकुलेट करो और बताओ. तो ट्राइंगल कितने बन जाएंगे? 8C3. 8 को 3 बार खोलो, 876 बाय 3 into 2 into 1. हटाओ यार ये 6 को. 8 7 56. अब तक 56. अब तक 56. पार्ट 1 पार्ट 2. सही पकड़े हैं. ये वाला बताओ भाई, डायगोनल्स. अब आएगा मजा, बहुत मजा आएगा, बहुत 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 ही मजा आएगा.
फरीन, सौंदर्य, भाई थोड़ा तो सोच के चलना था। वंशिका, अच्छा देखो एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर में कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 होते हैं ना, 4 होते हैं ना, है ना, 4 साइडेड फिगर है, तो उसमें कितने डायगोनल कितने बनेंगे? हमें पता है 2 बनेंगे। आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो 4c2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/2, तो ये तो 6 बनने चाहिए, 2 क्यों बन रहे हैं? These are 6 lines। अरे ये 4 बाहर की लाइनें भी तो बन रही हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए, 6 में से ये 4 लाइनें माइनस कर देने चाहिए, तो अपने को मिलेंगे 2 डायगोनल। ठीक है, सो in any polygon, the number of diagonals रुको यार, इसको ऐसे करते हैं, in any polygon of n sides, the number of diagonals is always equal to n c2 minus n, याद रखना, n c2 minus n। बेटा ये तो किया था स्क्वायर में भी, n c2 क्या आया था 6, उसमें से माइनस n मतलब 4 साइड्स निकाल दी थी, 2 डायगोनल आए थे। अब समझ में आया? तो हेक्सागन, हेक्सागन क्या बना, 6 है उसमें साइड्स, 6c2 माइनस 6 बनेगा, 6 इंटू 5/2 माइनस 6 मतलब 15 माइनस 6 होगा, आंसर 9 आएगा बेटा। देखो ना, ये स्क्वायर वाला एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, इससे ऑब्जर्व करो। अरे फरीन ने एकदम से अपना आंसर चेंज किया क्या? फरीन, आंसर चेंज किया तुमने। यू वर द फर्स्ट वन टू आंसर एंड यू गेव सी एज द आंसर। मयंक का सही था, वंशिका का गलत था, विनय का सही था, करण का गलत था, काशिफ का सही था, लाखों का सही था, पल्लवी नहीं। फिर फरीन ने हमारी पलटी। कोई बात नहीं, इलेक्शन का टाइम है ना बेटा, सभी पलटी मारेंगे। ये लो, कर लो सीसैट का क्वेश्चन। चलो चलो शाबाश, अब तो जल्दी कर दो, अब तो यू नो द फॉर्मूला ऑल्सो भाई, क्या प्रॉब्लम है?
अब सही पकड़ा ना। सो फॉर्मूला क्या है, NC2 माइनस N। आइए, तो ऑक्टागन है, ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, 8C2 माइनस 8, तो 8 इंटू 7 माइनस सॉरी बाई 2 माइनस 8, ठीक है ना, 4 कर दूं तो 7 चौक 28 माइनस 8, कुल मिलाकर हो गया 20। एंड माइंड यू 28 भी यहां पर दिया हुआ है फंसाने के लिए, है ना, तो यू शुड बी केयरफुल। लो जी, CSAT 2022 का क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही इजी है। अच्छा, ये देखते हैं इसको, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है, आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड। तो ऑड कौन से होते हैं भाई, 1 3 5 7 9, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। आहा, डिविजिबल बाय 5 मतलब यहां पर एक ही नंबर आएगा 5, तो ये भरने की एक ही जगह है। तो कितने थे ये, 5 थे ना, 1 3 5 7 9, उसमें से एक तो गया, तो कितने बचे, 4, उसमें से एक गया, कितने बचे, 3, खत्म बात। इतना आसान क्वेश्चन बताओ, और दुनिया रो रही है कि अरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन हो गया। भगवान से प्रे करो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आए, इट इज सो सिंपल, इतनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। देखिए, CSAT 2022 में मेरे ख्याल से 5-7 क्वेश्चन आए थे, 5-6 क्वेश्चन। चलो आप ट्राई तो करो इसको, ट्राई करो, 1 मिनट लगाओ इस पे, क्वेश्चन में घुसो, उसके बाद ही मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। थोड़ा आइडिया तो लो क्वेश्चन के बारे में। तो वंशिका देखो जरा ध्यान से, चलो जी बेटा पढ़ो इसको। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज अ 3 डिजिट पिन, पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7 है सिर्फ, 8 और 9 नहीं है।
There is no repetition of digits. Digits in the pin from left to right are in decreasing order. तो अगर यहां पर कोई पिन है 3 डिजिट का, तो इट इज व्हाट, इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. मतलब यहां पर पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर. ठीक है ना. एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2. अब ये है आपका कैच. एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? 2 और 2 से अधिक. ठीक है ना. तो भाई एक काम करो, यहां पे 7 ले लो पहले. अब डिफरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 2 का तो होना चाहिए. तो यहां पर मैं 7 ले लेता हूं, यहां 5 ले लेता हूं, यहां 7, यहां 4, यहां 7, यहां पर 3, यहां 7, यहां पर 2. लेकिन ये आएगा नहीं. इतने में देख लो अभी तो. अब 7 इज ग्रेटर देन 5, 2 का डिफरेंस है ना. तो यहां पर भी कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए. मतलब यहां पर क्या क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 2 का डिफरेंस है. अच्छा 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है. सही है ना. एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना चाहिए यहां पे कह रहा है. एटलीस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा का भी डिफरेंस हो सकता है. तो ये 3 तरीके हो गए जी. 3, 2, 1. यहां 7 है, यहां 4 है. तो यहां पर 2 का डिफरेंस तो मुझे चाहिए कम से कम. तो 2 हो सकता है और 1 हो सकता है. एक तो फिर 2 ही हो गए. अब यहां 7 है, यहां 3 है, यहां पर तो सिर्फ एक ही आएगा ना यार. डिफरेंस 2 का है ना. ठीक है ना. तो ये एक ही तरीका हो गया. दिस इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग सो. ठीक है. 7 से तो निपट गए. सो लेट्स नाउ टेक दिस अप एट 6. ठीक है. तो ये 6 है. तो भाई यहां 4 हो सकता है, तो यहां 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है. 2 तरीके हो गए. ये 6 है, यहां 3 और 1, ये भी हो सकता है. एक तरीका. और फाइनली एक और मिलेगा ना भाई. 5, 3, 1 है ना. ये भी एक तरीका है कि ना. 3 और 2 5, 6, 7, 8, 9 और 1 कितना? 10 आएगा जी. अच्छा ऑलरेडी कर भी दिया. मयंक ने बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ, मतलब मुस्कान वैसे नहीं कह रहा हूं, मयंक ने बहुत ही प्यारी हंसी के साथ में, अच्छे इमोजी के साथ में भेजा है. सी, सुहासी का सी. किसी ने C10 भेजा है, नाम नहीं लिखा. वंशिका गड़बड़ हो गई. विनय का सी है. मयंक ने पलटी मारी है इसलिए हंस रहा है. अच्छा अब समझ में आया. पलटू राम लाखों का सही है, इसलिए इतनी हंसी आ रही है ना. अब मुझे समझ में आ गया. एटलीस्ट 2 वाला कंसेप्ट नहीं किया था ना. एटलीस्ट 2 वाला वो इसी में फंसे थे, मुझे मालूम पड़ गया. अब समझ गया. देख लो. मैं एक और लो. ये तो भाई बहुत ही आसान था. 2022 का क्वेश्चन. कम ऑन. वन नॉन जीरो डिजिट. अच्छा नॉन जीरो डिजिट मतलब जिसमें जीरो ना हो. कहां से कहां तक? 1 से लेकर 9 तक. कितने हुए ये टोटल? 9. 1 वाल तो AEIOU कितने हुए? 5 ही तो हुए. एंड 1 कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं. फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल या इन लोअर केस डजंट मैटर, आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड्स. अब पासवर्ड्स बोल के आपको डरा रहा है, पिन बना रहा है, पासवर्ड बना रहा है. तो क्या हो गया यार? अरेंजमेंट्स ही तो होते हैं उसमें भी. सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू
स्टार्ट विद अ वाल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। कैच मिल गया? करो भाई। स्टार्ट विद अ वाल, कितने वाल होते हैं? 5 वाल होते हैं। एंड विद अ कॉन्सोनेंट कितने? 21, है ना? तो अब बीच में बचा क्या? ये 9 बचे, 1 to 9 जो नॉन जीरो डिजिट्स है। सही है ना? मल्टीप्लाई करो यार, क्या प्रॉब्लम है? 45 इंटू 21, 21 का पहाड़ा, 21 5 जा 105, 10 बचा, 21 4 जा 64, नहीं 84, 84 और 10 94। लो जी, ट्राई करो जरा। कितना आसान क्वेश्चन है। 2022 में देखो भरे पड़े थे, 5-7 क्वेश्चन आए थे। करो तो सही। 23 में भी आया काफी, देखेंगे। अरे वाह, करंट पलटी खा गया, गड़बड़ कर दी। A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B. A to B, 3 different roads. ये कैसा 3 बन गया भाई? 4 different roads from B to C. B to C, 4 different roads. 3 different roads from A to C. A to C भी तो 3 जा रही हैं। In how many different ways can one travel from A to C? अब देखो, A to C या तो A से B और B से C ऐसे पहुंच सकता है, या फिर डायरेक्टली A से C पहुंच सकता है। A से C पहुंचने के 3 यहां पर तरीके हैं, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है ना? तो ये कितने हुए? 3 इंटू 4 12, और ये 3 15 हुए ना यार। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? 3 इंटू 3 इंटू 4, ये ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ा तो 3 रास्ते डायरेक्ट जा रहे हैं A टू C। देखा नहीं, पढ़ा नहीं, अपनी प्रोसेस अपने आप लगा दी, क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, है ना? हाँ, करेक्ट, एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। पता नहीं दिया किसने ये। चलो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो भैया ध्यान से प्लीज। ये तो मतलब सीसैट 2022 के पूरे पेपर में इजीएस्ट क्वेश्चन था, और पूरे पेपर का इजीएस्ट क्वेश्चन आया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से।
और लोग डर गए। जी हाँ, सही पकड़े हैं। करना ही क्या है भाई, इसमें 0 पॉइंट से क्यों डर रहे हो? तो डरने वाली बात ही क्या है? अपने को क्या करने का है भाई? 0 पॉइंट, हाँ साफ साफ कह रहा है, हाँ डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स तो मतलब 1 to 9, और डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो कितने होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स? 9 होते हैं। एक यहां लग गया, बचा हुआ है 8 में से एक यहां लगा देना, 72 हो गया, खत्म बात। देखा, मैंने कहा था सबसे आसान था, 8 9 72, नहीं तो 9 8 72, जैसे ठीक लगे। सबसे आसान क्वेश्चन थे। चलो जी, अब आते हैं 2023 पे। देखो कैसे बेवकूफ बनाया उसने तुमको इस क्वेश्चन में। इतने आसान प्रश्न को कैसे भयानक बनाया उसने, देखो जरा। अब तो यार ये तो आ जाना चाहिए था यार। हाँ, फालतू का स्क्वायर बनवा रहा है यार वो। स्क्वायर बनाने की जरूरत भी नहीं थी सच। आओ जी, ABCD is a square. Now one point on each of AB and CD. जनरली आप लेंगे भी तो मिड पॉइंट ही लेंगे. And two distinct points on each of BC and DA. लो जी, BC और DA are chosen. How many distinct triangles can be drawn? बेटा जी, क्या है ये? हेक्सागन ही तो है. कर तो चुके हो तुम इस पे क्वेश्चन. इस हेक्सागन में कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 6 पॉइंट्स हैं. कितने चाहिए? 3 चाहिए. बात खत्म हो गई. ठीक है, तो हो गया ये 6 into 5 into 4
बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, काट दो। कर चुके हो तुम ये क्वेश्चन, बस उसने थोड़ा सा डराने के लिए, धमकाने के लिए स्क्वायर बनवा दिया तुमसे, कुछ था ही नहीं इसमें। हाँ पल्लवी करेक्ट। और किसी का है क्या यहाँ पे? आया ही नहीं कुछ खास। एक और आया है 21C, लेकिन जवाब नहीं दिया है। आदमी कौन है, इंसान कौन है? हाँ सौंदर्य का है 21C। 2 का पहुंचा अभी तक मेरे पास में, बाकी रास्ते में है, ट्रैफिक जैम। हाँ अटक गए मुझे लगता है। How many distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits of the number 11, 22, 33, 44 such that odd digits occupy odd positions, even digits occupy even position? तो देख लो भाई, odd position कौन कौन सी है? टोटल पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? ये है odd positions। है ना? और ये होनी चाहिए इवन पोजीशंस। तो ऑड पोजीशंस पे क्या आएगा? 1 1 3 3, है ना? तो ये प्लेस भरने के लिए वी हैव अ चॉइस ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, उसमें से एक यूज हो जाएगा तो 3 यहां, उसमें से एक यूज हो जाएगा तो 2 यहां, एक यूज हो जाएगा तो 1 यहां। अब ऐसे इवन डिजिट्स कौन से? 2 2 4 4। तो मतलब यहां पर रखने के लिए, हाँ रिपीटिशन अभी देखेंगे, रिपीटिशन देखेंगे, तो यहां पर रखने के लिए 4 डिजिट है, उसमें से एक लग जाएगा, यहां 3, यहां 2, यहां 1। वाजी वाह, मजा आ गया। तो ये बेसिकली क्या है? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो है 4 फैक्टोरियल 4321 इंटू 4321, है ना? अच्छा, अब ये 4 फैक्टोरियल है मान लो ऑड के लिए, तो उसमें 2 बार 1 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये इवन का है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो ना यार, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
ये क्या है 1 1, ये क्या है 3 3, ये क्या है 2 2 और ये क्या है 4 4। ये है ना, तो क्या करूं बोलो। यार ये तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अबे यार क्या 1 लिखेंगे, छोड़ दो यार। 2 इंटू 2 हटाओ, 4 4 काट दो, खत्म बात। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। आ गया जी 36। ठीक है, तो टोटल 36 numbers can be formed using the rule, alright, as per the rules which are laid down or instructions which are laid down. ये लो, एक और लो, ये मैं साथ में करेंगे भाई, ये ऐसे अकेले करना थोड़ा खतरनाक है, मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता, इस राह पे खतरा है। क्योंकि काफी जगह पर YouTube पे और बहुत सी वेबसाइट्स में बहुत लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स दिए हैं, लंबे लंबे आंसर्स दिए हैं इस क्वेश्चन के, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगा, देखना। In how many ways can a batsman score exactly 25 runs? By scoring single run, single एक होता है ना, 4 runs and 6s only, irrespective of the sequence of scoring shot. ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर में कर लो, स्कोरिंग शॉट कुछ भी हो। तो बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास में वंस पड़े हुए हैं, फोर्स पड़े हुए हैं, सिक्सेस पड़े हुए हैं, तो कितने वे में इन सभी के अलग अलग प्रोपोर्शन को कंबाइन करके आप सम जो है वो 25 ला सकते हो। सीधी सी बात है। देखो यहां पर हम लेते हैं वंस, यहां ले लेते हैं फोर्स, यहां ले लेते हैं सिक्सेस, ठीक है, यहां ले लेता हूं नंबर ऑफ वेज। तो इस सबसे पहले एक काम करते हैं कि वंस से स्टार्ट होते हैं, है ना। मैंने यहां पर 25 सिंगल ले लिए, कोई चौका नहीं मारा, कोई छक्का नहीं मारा, टोटल आ गया 25। कितने तरीके हैं? अब सीक्वेंस ऑफ रन्स तो इंपॉर्टेंट है नहीं, उसने कहा है सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स इररिस्पेक्टिव, मतलब पहले कौन सा सिंगल मारा, ऑफ ड्राइव ऑफ में मारा या पहले लेग में मारा, इससे कोई मतलब नहीं है, पहले स्ट्रेट लिया या बैक में लिया। तो सीधी बात है, एक तरीका हो गया है ना 25 सिंगल का। अब एक काम करता हूं, छक्के मारना शुरू करते हैं। तो भाई आप यहां पर पहले सीधी सीधी सी बात बताएं कि 25 रन्स में आप कितने छक्के मार सकते हैं? मैक्सिमम 4 मार सकते हैं, 6 4 24, करेक्ट। तो छक्के कितने मारेंगे? 4 या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1, बात खत्म। तो 4 आ गए, तरीका। बाकी आप सिंगल्स ले रहे हैं, फोर्स आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, तो सिर्फ सिक्सेस और सिंगल बस, ठीक है। अभी तो ऐसे कर रहा हूं मैं। अब यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, 6 चौक 24, तो यहां पर एक सिंगल है, 6 3 18, तो फिर 7 सिंगल्स है। अबे क्यों यार, कोई सबमिशन थोड़ा करना तुमने वहां पर डिटेल में, रफ में काम करो ना। अब मैं सिर्फ फोर्स और वंस ले रहा हूं, सिक्सेस नहीं ले रहा। तो 25 रन्स में कितने फोर्स मारे जा सकते हैं मैक्सिमम? 6 चौके सकते हो। तो भाई या तो 6 मारोगे या 5 या फिर 4 या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1, बचे हुए सिंगल्स ले लोगे। तो कितने तरीके हुए? 6 तरीके हो गए भाई। कितना आसान है भाई, देखो, है ना। अब यहां पर अगर एक छक्का मारते हो, अब इनका मिक्सचर ले लेता हूं ना। देखो आपने सिर्फ सिंगल्स ले लिए, सिर्फ सिक्सेस और वंस ले लिए,
सिर्फ 4s और 1 ले लिए, अब तो 6 4 1 कंबाइन करना पड़ेगा ना, करो ना, एक 6 मारो, कितने रन बचे? अरे 25 में से 6 गया 19, 19 में कितने चौके मार लोगे? 19 में मैक्सिमम कितने चौके मार सकते हो? 4 4 16, ज्यादा से ज्यादा 4 ही चौके मार पाओगे। तो एक 6 के साथ या तो 4 4s या फिर 3 4s या फिर 2 4s या फिर 1 4s, बाकी सिंगल है ही है। तो 4 तरीके हो गए। 2 6 के साथ देखो, मतलब 12 रन तो ऐसे ही मार दिए तुमने, 2 छक्के मार के 25 में से बचा कितना? 13 रन। 13 रन में कितने फोर्स मार सकते हो मैक्सिमम? 3 फोर्स, 4 3 12। या तो 3 4 मारोगे या 2 मारोगे या 1 मारोगे, देखो कितना आसान है, बाकी सिंगल आ जाएंगे, है ना। तो ये 3 तरीके हो गए। अब अगर आपने 3 छक्के मार दिए तो 18 रन तो वैसे ही मार गए 25 में से। 25 माइनस 18 कितना होता है? 7 होता है। 7 रन और बढ़ा दें तो उसमें से कितने चौके मार सकते हो? एक ही तो चौका मार सकते हो, बस खत्म, बाकी ये आ जाएगा। अब 4 छक्के आप यहां पर मार चुके हो, उनकी कोई 4 होगा नहीं उसमें, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, बस, ओवर एंड आउट। इतने ही तरीके हैं। 11 15 16 17 18 19। नहीं, पल्लवी 20वां कौन सा है तुम्हारा? सी क्यों आ रहा है? ये क्या किया पल्लवी ने? पहले सी किया, फिर अच्छा वो 21 का सी है, 22 का भी सी दे रहे हो आप। 23 का तो आंसर ही नहीं दिया, सॉरी आपने, सॉरी। भाई टोटल 19 हो गए, है ना। ये सारे टाइप्स लेने थे, बस दैट्स इट। सर इसका कोई शॉर्टकट है? यही शॉर्टकट है। इतना काम तो करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई 2023 वाज अ बिट लेंथी, क्योंकि वहीं पर एग्जाम सिचुएशन में ये वाली टेक्निक स्ट्राइक करना इमीडिएट, ये मुश्किल हो जाता है। बाद में तो देख रहे हो तो सॉल्यूशन इजी लग रहा है, एग्जाम टाइम में 1.5-2 मिनट में कंप्लीट करना प्रेशर के साथ में, और एकदम से ये स्ट्राइक भी कर जाए, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ऐसे ही यहां पर आ गया, देखो ये भी मैं खेल रहा हूं तुम्हारे साथ। P Q R S, नंबर ऑफ वेज। देखो जी, इन एन एग्जाम, अलग अलग कर दूं उसको थोड़ा सा सुंदर सुंदर सा। कह रहा है इन एन एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स मेनली PQRS इज 100। तो ये सारे के सारे पेपर जो है ना, ये 100 नंबर के हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स आर इन इंटीजर्स, पॉइंट्स में नहीं है। 99.5 97.5 ऐसा कुछ नहीं है। A student can score 99% in n different ways. What is the value of n? भाई ये टोटल जो आ रहा है ये 400 आ रहा है ना। इसका 99% कितना होगा? छोड़ो ना यार, इसका 1% कितना होगा? 4 होगा। तो 400 माइनस 4, 396। 99%, 4 9 जा 4 9 जा क्यों करोगे? 1% निकालो। 400 का 1% 4 होता है, 400 में से माइनस कर दो, 99% आ गया। 396 हो गया, सही है। अब यहां पर आपने मार्क्स ऐसे बांटने हैं कि टोटल मार्क्स 396 आए। कितने तरीके हो सकते हैं? तो चलो जी, पहले तो यही ले लेते हैं, पहले तो यही ले लेते हैं ना सीधा, पहले तो यही ले लेते हैं कि सभी ने 99 मार्क्स स्कोर किए। 99 99 99 99। कितने तरीके हुए? एक ही तरीका हुआ भाई।
अब कम से कम एक आदमी 100 स्कोर करता है, तो मान लो P ने 100 स्कोर किया, ये 99, ये 99, ये 98, है ना। अब इन चारों नंबर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हैं? 4 फैक्टोरियल, और ये दो बंदों के 99 आ रहे हैं, ऐसे किसी और दो बंदों के भी आ सकते हैं, मतलब ये रिपीटिशन हो रहा है, डिवाइड कर दो, तो मतलब 4 into 3, टोटल 12 वेज। दो लोगों के 100 आ रहे हैं, तो क्या क्या हिसाब बन सकता है बताओ? 200 तो यही हो गया, 196 ही तो है, 296 ही तो है जो एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं 196 है और जो एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो यार 98 98 कर देता हूं, है ना। अच्छा ये 97 99 भी तो हो सकता था, कौन सी बड़ी बात हो गई, है कि नहीं। पहले वाले में देखोगे तो 4 फैक्टोरियल है बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 into 2, ये हो गए 6। 100 भी रिपीट हो रहा है, 98 भी रिपीट हो रहा है। दूसरे वाले में देखोगे तो 100 100 97 99, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, सिर्फ 100 ही दो बार रिपीट हो रहा है, 97 99 अलग अलग है। तो ये कितना बना? 4 into 3, कितना हो गया फिर से? 12। अच्छा और एक काम हो सकता है कि 3 बंदों के 100 आ सकते हैं। ओहो हो सकता है ना। एक बंदे के 96 आ गए यार, क्या कर सकते हैं। तो सिंगल एक बंदे के, किसी के भी 100 नहीं आए तो एक तरीका, एक बंदे के 100 आए, दो बंदों के 100 आए, 3 बंदों के 100 आए, चारों के तो 100 आ ही नहीं सकते ना, 396 है टोटल, 400 नहीं है। तो ये कितने तरीके हो गए? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब ये कितने हुए? 4 हुए। कितना है ये? 12 दूनी 24 और 6 30, 35 हो गए। इससे ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं, 35 जो है वो सबसे बड़ी चॉइस है, उससे बड़ी चॉइस ही नहीं है कोई। नहीं बेटा और कोई फॉर्मूला वर्मूला नहीं है, यही तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के। मैन्युअली करना होगा, उसमें आपको देखना होगा कि हर एक बिट के अंदर फैक्टोरियल वाइज कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ वेज। चलो ये देखते हैं। भाई 4 धारियों वाला तो मुश्किल है ना, कभी देखा नहीं मैंने। A flag has to be designed with 4 horizontal stripes, 3 वाला तो देखा है, using some or all of the colors red, green and yellow, 3 है। What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent stripes have the same color? बहुत आसान है। तो पहले में तो तीनों में से कोई भी एक कलर लग जाएगा, तीनों में से कोई भी एक लग जाएगा, सीधी बात। तो फिर अब यहां पर मान लो रेड लगा, तो यहां पर क्या लग सकता है? ग्रीन या फिर येलो, दो की चॉइस है। मान लो यहां पर ग्रीन लगा तो यहां क्या लग सकता है? रेड या येलो, दो चॉइसेस हैं। मान लो यहां येलो लगा तो यहां क्या लग सकता है? रेड या ग्रीन, दो चॉइसेस हैं। 3 into 2 6, 2 जा 12, 2 जा 24, सिंपल। दिस वाज अ डैम सिंपल क्वेश्चन। ऊपर 3 चॉइसेस हैं, बचे हुए 2 में से कोई एक रंग कर दो, फिर बचे हुए 2 में से कोई एक रंग कर दो, फिर बाकी बचे हुए 2 में से कोई एक रंग कर दो, खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2023 का क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट डू यू से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इसको मैं बताता हूं आपको कैसे करना है ये।
पता नहीं कैसे है ये, मैंने ऐसे बना दिया ये। कह रहा है जी 40 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड वन ऑफ देम से चाइल्ड 1 हैज अ रिंग, रिंग इज पास क्लॉकवाइज, पोशंपा भी पोशंपा, चाइल्ड 1 passes on to child 2, child 2 to 4, 4 to 7 and so on, मतलब so on मतलब कोई पैटर्न है भाई। सो 1 ने दिया 2 को, 2 ने दिया 4 को, 4 ने दिया 7 को, भाई साहब कुछ तो चक्कर है, +1 है ये, +2 है ये, +3 है, सो ऑन होता जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड 1 विल द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ द चाइल्ड 1 अगेन? आओ देखते हैं। तो अब क्या करूं? +4 11, यही था क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं? +5 है ना, नेचुरल नंबर्स ऐड कर रहे हैं ना, तो 16, +6 22, +7 29, +8 37, 37 +9 कितना हो जाएगा? 46 नहीं, हाँ तो 46 में 40 तो हो गया ना, तो 6 पे आ जाएगा फिर ये। +10 कितना आ गया? 16, +11 27, +12 39, +13 39 के बाद 13 करना पड़ेगा अभी, कितना आ गया? 52, 52 मतलब 40 हटा दो 12, देखना मैंने कहीं गलती ना की हो, बस और कुछ नहीं है। +14 12 और 14 26, +15 26 और 15 41, 40 नंबर पूछे पूरे हो गए, आ गए नंबर 1 पे, बिल्कुल आ गए जी। तो टोटल टर्न्स कितनी लगी? 15 दिख रही है ये, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, है ना मजेदार क्वेश्चन। एक्चुअली शुरू में लोगों ने सोचा कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन में सर्कुलर टाइप का, अरे नहीं पूछते इतना डिफिकल्ट, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, है ना, वो सिंपल आपको कॉम्बिनेशंस दे, सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कॉमन सेंसिकल बेसिस, ऑलराइट। तो चले जी, दैट वाज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फॉर यू, होप यू एंजॉयड इट, होप यू लाइक्ड इट। सो टुमारो आई विल ब्रिंग some flurry of more topics we will discuss. Kindly do practice and keep on working hard. This is Kapil Datta signing off and wishing you all the best. Thank you.